option to go. Pitch has some grass covering, so hopefully we can exploit that initially. Some very tricky selection matters. You want to shed light on who you've left out and who's playing today? I'll make it very easy. There was only one call that we had to take between Dinesh and Rishabh. Rishabh unfortunately misses out. We're going to go with Dinesh Karthik. And then Avesh obviously makes it as a third seamer. And it's a question that has been asked a million times. I've got to ask it again. India-Pakistan. It's an international match with a slightly different flavor, I guess. Yeah, absolutely. I think it's always a special game, not just for us, but also for the fans who are here, and also the fans who are watching back home as well. It's such an important game. But for us cricketers, we are professionals. We just want to think about the opposition, not who we are playing. We just want to think about, it's just another game for us where we want to try and correct, the mistakes that we keep making along the way. And it's important that we focus on that rather than the opposition. Just once again, I want to ask for everyone, what have you decided to? Are you batting, bowling? I'm bowling first. Bowling first. All the best. Thank you very much. You were also waiting for that news, is it? So, Babar, you'll have to bat first. Had you won the toss, what would you have done? We would also bowling first, but toss is not our hand, so we're trying to put runs on the board and put pressure on them. And of course, a few key players missing, but what's your selection like? Tell us about who's not playing today. That will make it easier. I think I told you 3 fast bowlers, 2 spinners, and Naseem Shah is debut, and rest of the batsmen are playing. And what do you think of this new Indian team? The one that you faced the last time was slightly different in their approach? Yeah, definitely there are new faces, a few new faces, otherwise all are same faces, so we are trying to take a level best. All the best, Babu. Thanks. So there it is, the news from the centre is India won the toss and they've elected to bowl first. And there is the good news coming in for all the Indian fans as we we are all about to start the India-Pakistan clash. Indian captain Rohit Sharma winning the toss, choosing to bowl first. Venkat, I'll come down quickly to you from there. It's a good toss to win today? Well, in Sharjah and in Dubai, we have seen that the team that wins the toss usually wins the match, because you end up chasing a score and the wicket plays differently in the evening. Having said that, it's a very special match for India, particularly for Virat Kohli. He's playing his 100th first T20 match. His average is 39 or so in T20, which is not a bad average, because, you don't score that many hundreds in T20 cricket. And he's not an opening batsman generally, though he has opened in T20 matches once or twice. But basically, he's a 1 down or a 2 down batsman. It's interesting to see what number he bats. Having talked about a good toss to win, India's top 3 are a bit shaky. So, our openers are not, Rahul is coming back from injury. Rohit has got a few runs in Zimbabwe. Kohli has not played for a long time. So, this is a pressure game. Let's see how they perform. We are in for a good match. That's what we want to see. स्वामी, आपको लगता है कि असली मुकाबला तो इस ग्रुप में यही है, क्योंकि उसके बाद तो इकलौती टीम हांगकांग है, लेकिन कल जैसा हमने देखा कि अफगानिस्तान ने बहुत ही दमदार प्रदर्शन किया, तो इस मुकाबले में जिसे कि बहा मुकाबला माना जा रहा है, यहाँ पर विकेटकीपर ऋषभ पंत की जगह एक तरह से फिनिशर के तौर पर दिनेश कार्तिक को लिया गया है. ये किस तरह का स्टेप है? देखिए, I think if you have brought back Dinesh Karthik into the team and he's shown some excellent finishing abilities, so I think it was almost like, Rohit Sharma had actually, even before they came to Dubai, made up his mind that he would give Dinesh Karthik a chance. And he's also made it clear that this is not just the Asia Cup, but it's also kind of, his view and the way he wants to see and who he wants to take with him to the World Cup in Australia. So obviously, Rishabh Pant has shown what he is good at and what he's capable of. And this does not actually mean that Dinesh Karthik is better than Rishabh Pant or vice versa. It's just that he now wants to see Dinesh Karthik perform at this level, say, in a multi-nation tournament like the Asia Cup, particularly if he does well against, say, Pakistan. It certainly does, kind of bolster his chances to make the Indian team to Australia. So I would say that I'm not surprised at all that Dinesh Karthik is playing, but it is not to
say that he is better than Rishabh Pant or vice versa. So that's the caveat. So Dinesh Karthik playing is not a surprise for me. Okay, वेंकट, एक चीज मैं आपसे पूछूंगी, जो भी बात करी हमने कि of course दिनेश कार्तिक coming in. पाकिस्तान की तरफ से अगर बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी is going to be absent, and he was the man who demolished us last year. Let's not forget, in the month of October in the World Cup when we faced Pakistan, and it was a bad experience for Indians. Do you think Pakistanis will miss his absence and Indians will somewhere be satisfied also happily internally? So India is also missing Bumrah. Haan. So this debate can go on all the time. Are you missing this guy? Are you missing that? Doesn't make any sense. You have to go with what you have. Horses for courses. Today's match, a young Naseem is making his debut. I'd like to see him bowl. I'm sure he'll bowl at 145, 150 if he's a fast bowler. I don't know if he's a batsman or a bowler, but the Pakistan captain said that he's a debutant. And Pakistan has got immense talent. They've got a lot of good talent. Like India, they're full of talent. So you can never underestimate a Pakistani team. They're an all-round team. They've got a lot of all-rounders. They understand cricket. They know how to play this type of cricket. They'll play ugly shots without hesitation. That's the way they play. And it doesn't matter how the runs come. They're not looking to be, scientific or correct. They're wanting runs on the board. So, this is a different type of game. This suits them. And they're good at this type of game. And I'm sure we'll be in for a terrific match because they'll run quick between wickets, especially at the top, and put pressure on the Indian bowlers. अब ये तो वक्त बताएगा कि कितना प्रेशर, लेकिन हम अपने सुनने वालों को बता दें कि आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। 23421084 23421085 ये हमारे टेलीफोन नंबर, और दिल्ली से बाहर के श्रोता 011 लगाना ना भूलें। हम अपने सुनने वालों को बता दें कि जो हमारी टीम यानी भारतीय टीम आज खेल रही है वो इस तरह से: रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, दिनेश कार्तिक, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार, आवेश खान, युजवेंद्र चहल और अर्शदीप सिंह। स्वामी, कल जिस तरह का विकेट था, ऐसा माना जा रहा है कि आज भी कुछ घास है, तो भारतीय गेंदबाज क्या उस तरह का फायदा उठा पाएंगे जैसा कल अफगानिस्तान के बॉलर्स ने उठाया? एब्सोल्युटली, क्यों नहीं, क्योंकि थोड़ी सी कहीं पे क्लस्टर्स में ग्रास है जिस प्रकार से देखने को मिल रहा है और सुनने को भी मिल रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि रोहित शर्मा को दाद देनी चाहिए। I mean, he's not seeing this match as just a high intensity India-Pakistan match, but he's also seeing it as a very good way of testing some of the youngsters, some of the new faces in the Indian squad in preparation for the World Cup. I think he's got a long-term view. उनका जो देखने का नजरिया है वो ये नहीं है कि इसी हफ्ते में मुझे, इसी सप्ताह में मुझे किस प्रकार के रिजल्ट चाहिए, मगर वो लॉन्ग टर्म के लिए रिजल्ट देख रहे हैं। वर्ल्ड कप की तरफ एक उनकी नजर है, इसीलिए आवेश खान और अर्शदीप सिंह दोनों जो खेल रहे हैं, मेरा ख्याल है उनको जो खिलाना है काफी अच्छा किया उन्होंने और उनको मौका दिया जा रहा है। और दूसरी ओर आप देखें तो एक चीज मैं समझ सकता हूं कि क्यों दिनेश कार्तिक को खिला रहे हैं, क्योंकि उनको देखना चाहते हैं। मगर एक चीज मुझे जो समझ नहीं आई वो ये है कि रविचंद्रन अश्विन को आप लेके गए हैं और उस प्रकार के जो स्पिनर है, जो कि माने जाते हैं कि विश्व में नंबर 1 स्पिनर है, वो अगर क्यों खिलाए नहीं गए, तो मतलब ऑब्वियसली 15 में से 11 चुनना आसान नहीं है कि 4 को छोड़े। मगर ये है कि हो सकता है कि अश्विन को आप अगले मैच में जरूर देखेंगे। एक मैच में अगर पाकिस्तान के साथ अश्विन नहीं खेले तो अगले में मुझे लगता है पक्का खेलेंगे। राइट, हाँ जी। और इस समय हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ चुके हैं। आइए सबसे पहले कॉलर से सुनते हैं कि वो क्या कहना या पूछना चाहते हैं। नमस्कार, गुड इवनिंग। हाँ नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या नाम है आपका, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ, मुकेश कुमार स्वर्णकार मेरा नाम है। स्वागत है आपका मुकेश जी, क्या कहना या पूछना चाहते हैं आप? और ये मेरा कार्यक्रम में लगभग तीसरा कॉल है। लगभग नहीं, तीसरा ही कॉल है। कल 2 बार आपका फोन लगा था। और क्या कहते हैं, सबसे पहले तो ये बता दूं कि मैं भारत को जितवाने पर विश्वास रखता हूँ जी। कोई सवाल भी कर लीजिए। सवाल ये है कि ऋषभ पंत को क्यों बाहर कर दिया गया है? जी जरूर, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और लिसनर से बात करते हैं। हेलो, नमस्कार सर, क्या हाल है? आदेश सर, मैं तो आपकी आवाज सुनने के लिए कई महीनों से तरस गया था सर। जी हम भी आपकी आवाज सुनने के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि हमारे कार्यक्रम के जान तो हमारे श्रोता हैं। कृपया अपना नाम बताइए। जी सर, पीरे खान बात कर रहा हूँ, बाड़मेर राजस्थान से। काफी दूर से फोन किया, फरमाइए। जी जी सर, और मेरा सवाल तो यही था, जो मतलब जो पहले कॉलर ने इससे पहले जो किया था वही था कि आकाश ऋषभ होते तो सिचुएशन ऐसी होती तो बनना। जी देखिए, ऋषभ पंत को, सवाल ये है सर कि यूट्यूब पर
इसकी जानकारी चाहिए। जी, प्रसार भारती स्पोर्ट्स यूट्यूब पर आप हमारा ये कार्यक्रम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। वेंकट स्वामी ने हालांकि बहुत अच्छी तरह से हमारे श्रोताओं को बताया था कि क्यों दिनेश कार्तिक टीम में शामिल हैं। जवाब आपसे मांगेंगे, लेकिन एक लिस्नर से और जुड़ते हैं। जी नमस्कार, गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मैं कृष्ण कुमार डाबी बात कर रहा हूँ, बाड़मेर राजस्थान से। स्वागत है आपका कृष्णा जी। सबसे क्या पहले तो मैं आपको और पूरी आकाशवाणी की टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस बार क्रिकेट की कमेंट्री रेडियो पे दे रहे हैं आप। चलिए, हमें जान के अच्छा लगा, शुक्रिया तारीफ के लिए। 99 के वर्ल्ड कप से जुड़ा हुआ हूँ आकाशवाणी के साथ, तब से रेडियो पे कमेंट्री सुन रहा हूँ। आपका शुक्रिया हमारे साथ इतना लंबा सफर हमारे साथ तय रखने के लिए। बताइए क्या कहना या पूछना चाहते हैं आप? ऐसा लगता है कि लाइन ड्रॉप हो गई। हाँ, तो आपसे हम जानना चाहेंगे वेंकट की क्यों हमारे श्रोता बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं इस बात में कि दिनेश कार्तिक को जिस तरह से टीम में शामिल किया गया। जी, मैं एक तो हंसी मजाक की बात है, दिनेश कार्तिक बहुत अच्छा कमेंट्री कर रहे थे अंग्रेजी में, और लगभग सारे शो मैं भी उनका सुनने को बहुत शौकीन था। और कमाल की बात है कि कुछ खिलाड़ियों ने ये भी कहा कि उन्हें कमेंट्री करनी चाहिए, क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए। तो इसीलिए शायद इसलिए सिलेक्टर्स ने कहा होगा नहीं आप आके खेलो पहले। तो मैं समझता हूँ कि इंडियन टीम में एक फिनिशर चाहिए, और जब तक आपके पास एक अच्छा फिनिशर जो 6-7 में बैटिंग करके मैच कंप्लीट करके दिया है, वो एक एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए, और एक प्लेयर चाहिए जो कंसिस्टेंट हो और केपेबल हो। ऋषभ जो खेलते हैं बहुत अच्छे खेलते हैं और ही इज आल्सो केपेबल, बट उसमें क्या है, ही इज अ चांसी प्लेयर, तो यू वांट समबडी मोर डिपेंडेबल, इसलिए शायद मेरे को लग रहा है कि उनको चांस दे रहा है कि आप आके प्रूव करिए। एक चीज मैं ये भी पूछना चाहूंगी स्वामी, आई कम टू यू नाउ। अभी आदेश जी ने ऑफ कोर्स इंडियन स्क्वाड बताया, तो आई जस्ट क्विकली रन आवर लिसनर्स थ्रू द पाकिस्तानी स्क्वाड एंड देन आई कम टू यू आल्सो विद व्हाट आई वांट टू आस्क कि पाकिस्तान की तरफ से आज प्लेइंग 11 ये रहेगा: बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फकर जमान, इफ्तिकार अहमद, कुश्ती शाह, आसिफ अली, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, हारिस रौफ और शहनवाज दहानी। Now coming to the question over here for you, Swami, that they are going ahead with 3 fast bowlers and 2 spinners today, and of course Naseem Shah की हम बात कर चुके हैं. For the pitch that we're looking at, and given the fact that Pakistanis have been put into bat first, chasing a target जब वो करने वाले हैं, तो उस एंगल से ये कॉम्बिनेशन जो आज लेकर उतर रहे हैं 3 फास्ट बॉलर्स एंड 2 स्पिनर्स का, यू थिंक इट्स गोइंग टू कम इन हैंडी फॉर देम? देखिए, बाबर आजम को ये नहीं पता था कि वो टॉस हारेंगे, तो इसलिए टीम उन्होंने पहले सेलेक्ट की और टॉस बाद में हारे। और जिस प्रकार से आप देखेंगे कि भारत की टीम में भी जो है 3 पेस बॉलर है और 2 स्पिनर, ठीक है, तो मतलब लगभग जो कॉम्बिनेशन लेके गए हैं वो बिल्कुल मेरा ख्याल ऑलमोस्ट सिमिलर है। जो छठा बॉलर है भारत के पास हार्दिक पांड्या के रूप में है, तो उसी प्रकार से जो है पाकिस्तान के पास भी एक दो इस प्रकार के जो यदि जब जरूरत पड़ेगी तो एक छठा बॉलर जरूर है, मगर उनकी स्ट्रेंथ इस समय शाहीन अफरीदी और मोहम्मद वासिम नहीं है, तो इसलिए उनकी स्ट्रेंथ इस समय जो है बैटिंग है। नसीम शाह बिल्कुल नए खिलाड़ी उन्होंने सेलेक्ट किया है, तो मेरा ख्याल पाकिस्तान भी एक्सपेरिमेंटेशन के रूप में जो है काफी कुछ देख रहा है इस समय, और उनकी स्ट्रेंथ अगर इस प्लेइंग 11 में आप देखेंगे तो बैटिंग इज अ बिगर स्ट्रेंथ फॉर देम, इवन दो बाबर आजम सेड दैट ही वुड हैव bowled first and chased it, but I think right now I think this might be a good opportunity for him to set up a good target or a good total for India to try and get, and he himself is Pakistan's premier batsman. Sometimes I think he's with विराट कोहली, तो इसलिए आप देख सकते हैं कि उनका स्तर कितना है, क्या स्टैचर है उनका वर्ल्ड क्रिकेट में। और अब हमारे रिजवान, आई थिंक they've got a fantastic opening. और अब हमारे प्रीमियर श्रोता भी हमसे जुड़ रहे हैं। हाँ जी, सबसे पहले श्रोता के सुनते ही कौन हमारे साथ जुड़ रहा है? नमस्कार, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम, मैं धर्मेंद्र यादव दिल्ली से बात कर रहा हूँ। स्वागत है आपका धर्मेंद्र जी हमारे शो पर। क्या कहना या पूछना चाहते हैं आप? मैं ये पूछना चाहता हूँ जी, ऋषभ पंत के स्थान पे आपने कार्तिक को शामिल किया है जी, तो कार्तिक ऋषभ पंत के स्थान पे खेलेंगे या पांड्या के बाद खेलेंगे? वेल ओके, ये हमें देखना पड़ेगा अभी, बिकॉज ऑब्वियसली टीम अभी उतरी नहीं है खेलने के लिए। एक और श्रोता हमारे साथ आदेश जी जुड़ रहे हैं इसमें। जी, बात करते हैं उनसे। हेलो। हाँ जी, रुमाना बोल रही हूँ एमपी से। जी, बहुत बहुत स्वागत है रुमाना जी, कहिए। जी, मेरे को ये बोलना है आदेश जी कि सब लोग ये बात बोल रहे हैं दिनेश कार्तिक की, मुझे लगता है दिनेश कार्तिक का जो हेलो जी, हाँ, दिनेश कार्तिक का जो परफॉर्मेंस है वो काफी हद तक मुझे लगता है 1-2 साल के अंदर बहुत ज्यादा बेहतर हुआ है जी। मतलब जैसे लोग कहते हैं कि उम्र बढ़ते से ढलान पे खेल आता, पर इनका चढ़ाव पे आ रहा है, तो अभी जिस तरीके से वो खेल रहे हैं तो मुझे लगता है 1-2 चांस तो ऋषभ पंत की जगह अगर दिया गया तो ज्यादा बेहतर दिया गया है,
और मतलब हमारे को ये अच्छा लग रहा है कि हमारी इंडियन टीम टॉस जीतकर फील्डिंग और बॉलिंग कर रही है, ये बहुत बेहतर है। नहीं, हम हमेशा टॉस जीत के बैटिंग करना पसंद करते थे, तो मुझे लगता है कि ये भी एक नया कुछ बदलाव है, क्योंकि बॉलिंग में भी हमारी। जी देखिए, आप कृपया सवाल पूछिए। जी जी, तो मेरे को यही बोलना है कि दिनेश कार्तिक ज्यादा बेहतर है अभी इस टाइम ऋषभ पंत से, या ऋषभ पंत ही सही? जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेंकट, आपने भी और श्रोताओं को बताया कि हमारे साथ एक और कॉलर इस समय जुड़ रहे हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। नमस्कार, गुड इवनिंग। नमस्कार भाई, वेंकट रेड्डी बोल रहा हूँ। वेंकट रेड्डी जी, स्वागत है आपका हमारे शो पर एक बार फिर से। थैंक यू फॉर कॉलिंग इन। क्या कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ, एक सुझाव देना चाहता हूँ। जी दे। सभी मैचों का आंखों देखा हाल रेनबो चैनल पर होना चाहिए। जी जरूर, आपका सुझाव। बहुत कम लोगों के पास जा रहे रिसीवर, इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ। दूसरी बात यह है, हमारा टेल बहुत लॉन्ग हो गई होगी, ये मेरा मानना है। वेंकट सुंदरम साहब क्या कहते हैं? जी, फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टेल क्या डायनासोर की टेल की तरह लंबी हो गई? आजकल कोई टेल है ही नहीं, आजकल तो सिर्फ सिर है। तो ऐसा है कि दी टेल एंडर्स आर आल्सो कंट्रीब्यूटिंग। नाउ टेल स्टार्ट्स एट नंबर 5-6 बिकॉज अभी ये T20 मैच है, तो इसमें टेल और सिर का बात नहीं है, ये 120 बॉलों का खेल है। तो अगर आपके ओपनर्स खेल गए या आपके पहले 3 बैट्समैन खेल गए तो टेल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये टेल, और देखिए ऑलराउंडर्स भी हैं काफी, तो दे कैन ऑल बैट नाउ। हमने कल भी देखा कि 31 रन्स का लास्ट विकेट पार्टनरशिप हुआ, तो आप वो टेल बोलोगे कि डबल फिगर्स पे तो कोई खेले ही नहीं कल का, 3 ही बैट्समैन के डबल फिगर्स। और स्वामी, यदि किसी भी टीम को बैटिंग में अगर टेल की जरूरत पड़ गई तो मतलब बिल्कुल मुसीबत में है, मतलब जबरदस्त मुसीबत में है। मतलब ये गेम, जैसे वेंकट ने बिल्कुल ठीक कहा, पहले 4 बल्लेबाज जो हैं, यदि आपके 20 ओवर नहीं खेल पाए तो मतलब थोड़ी सी मुश्किल तो हुई किसी। जी, और हमने कल भी देखा जिस तरह से शुरुआती विकेट ढह गए ताश के पत्तों की तरह। विकेट ये क्या मास्टर स्ट्रोक माना जाए? जैसा कि स्वामी ने और आपने दिनेश कार्तिक को जिस तरह से आका है और बैक भी कर रही है टीम उन्हें, लेकिन दूसरी तरफ दिखाया ऋषभ पंत ने भी कि पिछले कुछ मुकाबलों में जब भारतीय टीम लगा कि हार जाएगी तब उन्होंने जिताया। तो क्या ये हेल्दी कंपटीशन इंडियन टीम में शुरू हो गया? देखिए, ये T20 का मैच है, तो ऋषभ पंत ने जिताया जरूर। T20 मैच का क्रिकेट जो है वो अलग टाइप होता है, इसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलता, आपको शायद 12 बॉल में 35 रन बनाने, ऐसा सिचुएशन होता है। तो इसमें आप ऋषभ पंत को खिलाओ या दिनेश कार्तिक को खिलाओ, ज्यादा फर्क नहीं है। आपको याद होगा कि राहुल द्रविड़ भी कीपिंग कर चुके थे पहले, और अच्छा, बिकॉज आपको यू हैव टू जस्ट कलेक्ट द बॉल, ज्यादा उसमें वो नहीं है, प्रेशर नहीं है वो कीपर पे, जितना आपको वनडे मैच या टेस्ट मैच में होता है। तो मैं समझता हूँ कि दोनों अच्छे कीपर हैं, और अपना जो दिनेश कार्तिक वो बहुत अनुभवी है, बहुत साल से खेल रहा है, और बहुत मैच आपको याद होगा श्रीलंका में उसने मैच जिताया और टूर्नामेंट जिताया। तो ये बहुत ये प्रेशर क्रिकेट में वो ही हैज प्लेड वेल। आप उनका परफॉर्मेंस देखिए ओवर द इयर्स अंडर प्रेशर फॉर हिज फ्रेंचाइज और हिज स्टेट और even for India, he has done well. So I think it's fair that you go for horses for courses. You have to go with your best team. If the captain feels he's better, good luck. Let him prove it. Yeah, since you're talking about that, Swami, I'll come to you and ask you the same. इसी को पढ़ाते हुए कि KL Rahul, या अगर big names की हम बात करें, विराट कोहली की बात करें, तो KL Rahul is coming back, of course, after COVID, and he hasn't played any recent games. कोहली की बात करते हैं तो उनकी performance के ऊपर question mark रहा है, because West Indies में भी at par performance raha. So do you think somewhere the pressure is going to be more on the Indians today, given the fact that the biggies, also the big names, have to go out there and put themselves? Certainly, I mean, there is no doubt about it. There is some kind of pressure on both Rahul, because he's coming back, as you rightly said. Kohli, he has not scored many runs, but also I think hats off to Kohli. I was reading his interviews and I was listening to it. I mean, it's also, I mean, he had a lot of guts to say that he was actually, he's taken time away from just kind of training, batting, etc., to try and reset his entire mental approach. So taking time off, for 20-30 days without touching a bat, I think maybe is also a great approach.
Because remember, at the age of 33, he has been playing cricket for nearly 20 years. So when you play non-stop cricket and at that level, with that kind of intensity, it is bound to take a toll. And I think that is the kind of toll it has taken. He is a very high intensity player. I mean, he does not, he does not mince words. जब वो या कप्तान हो या कप्तान ना हो, उनकी जो intensity में बिल्कुल कमी नहीं है. And you cannot say there is any player who is fitter than Virat Kohli. There is no man with more intensity than Virat Kohli. It's just that, like any other cricketer across the world, across the cricketing world, who's not had a bad patch, I don't know. I can't really recall of any batsman who's not had a bad patch. So he is going through one. It's been extended a little while, but I'm 100% sure he also knows that this is a great platform for him to come back, strike back, and I think if he does it, nothing can be better for Indian cricket, especially ahead of the World Cup, as I keep repeating. स्वामी, आपने काफी समय लिया विराट पर, अब हम थोड़ा समय चाहेंगे वेंकट का पाकिस्तानी टीम पर, क्योंकि बाबर आजम बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी हैं. तो आपको लगता है कि अब जब कितना दमखम है वो तो थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा, लेकिन आपको लगता है कि जिस तरह से भारत ने तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले दिनों लगातार मैचेस खेले हैं, पाकिस्तान ने इतने मुकाबले नहीं खेले, फिर भी आप कितनी उम्मीद करते हैं इनके बैट्समैन से आज के मुकाबले? मैं समझता हूँ उनकी टीम बहुत अच्छी है, उनका बैलेंस अच्छा है. आप देखिए ना, 3 सीमर, 2 स्पिनर और बाकी विकेट कीपर बैट्समैन सारे हैं. पहले 4 प्लेयर्स देख लीजिए, आजम, रिजवान और फकर जमान. दे आर ऑल गुड प्लेयर्स. They can turn a match. They got the capability and they're technically correct. They know this ground. ये इनका होम ग्राउंड था, तो यहाँ पे कैसा खेलना उनको मालूम है, तो उनके लिए कोई नई चीज नहीं है. तो मैं समझता हूँ कि ये मैच अच्छा रहेगा. Don't underestimate them. They're a very good team. They can shock you. Well, they can shock you. We'll have to wait and watch which team goes on to shock us today. लेकिन इस समय 2 श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं. सबसे पहले श्रोता से मुलाकात करते हैं. नमस्कार, गुड इवनिंग. हेलो. हाँ जी, गुड इवनिंग, नमस्कार. सुन सकते हैं जी. जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मैं राजपुरा टाउन डिस्ट्रिक्ट पटियाला पंजाब से उरन सुरेंद्र सिंह संधू मेरा नाम है. मैडम स्वागत है आपका सुरेंद्र जी. क्या पूछना या कहना चाहते हैं आप? 83 से आपके जब हमने वर्ल्ड कप जीता था उसी टाइम से कमेंट्री सुना हूँ. मैडम सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आकाशवाणी का जो हमें कमेंट्री सुना रहे हैं. शुक्रिया, आपका शुक्रिया. हमारे इतने अच्छे. मैडम दूसरा क्वेश्चन है, हमारे ओपनर जो है तो ये ओपनिंग जो करेंगे, सबसे पहले तो मैं इनके परमात्मा चाहता हूँ ये आज बहुत अच्छा खेल जाए, हमारा टीम आज विजेता बन के निकले तो हमें बहुत खुशी होगी. जी, फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. एक और लिस्टर से बात करते हैं. हेलो. हाँ जी, नमस्कार, आदाब, सलाम. जी, आपको अभी बहुत बहुत खैर मकदम हमारे इस प्रोग्राम में. फरमाइए. धन्यवाद. आदर्श कुमार गुप्ता जी, कैसे हैं आप? जी, आपकी इनायत है. आप अपना नाम फरमाइए. जी, मैं मुस्तकिम मुत्ता बात कर रहा हूँ भुज गुजरात से. जी, कहिए. सबसे पहले तो हम आकाशवाणी का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि क्रिकेट कमेंट्री. और बहुत जल्दी से सवाल कीजिए क्योंकि टीम में मैदान में पहुंच चुकी हैं. जी जी बिल्कुल. तो सर, रोहित शर्मा ने टॉस अच्छा जीता है, टॉस काफी इम्पोर्टेंट था आज के मैच में, और मेरे ख्याल से अगर भारत 150 प्लस में पाकिस्तान को रोक लेता है तो मेरे ख्याल से भारत इजीली मैच जीत लेगा. और कमेंट्री के साथ बैकग्राउंड में स्टफ माइक और दर्शकों का भी आवाज होना चाहिए तो कमेंट्री सुनने में मजा आएगा. बहुत बहुत शुक्रिया सुझाव के लिए. तो इस समय दोनों टीमें मैदान में. वेंकट, क्या ड्रीम स्टार्ट मिल पाएगा? दोनों एक्सपर्ट से छोटा सा सवाल. ऐसा है कि ये प्रेशर गेम है और दोनों सबके नर्व्स जो है वो इस वक्त सवाल पूछ रही होगी. तो मैं समझता हूँ कि जो टीम अपने नर्व्स को कंट्रोल कर ले, जो अपने सांस धीरे धीरे करे, वही अच्छा खेलेगी. और ये मैच दिलचस्प रहेगा और बहुत भीड़ है आज वहाँ पे, स्टेडियम पैक्ड है, और मैं समझता हूँ इससे अच्छी बात भी नहीं हो सकती. इससे अच्छी बात. I think both teams are testing ground. I think क्योंकि उन्हें मालूम है कि दोनों टीमें जो है सुपर 4 में जरूर पहुंचेगी, जो फाइनल 4 है. तो ये वाला जो मैच है, दोनों एक दूसरे को भांप रहे हैं. तो इसमें ऑफ कोर्स दोनों टीमें जीतना चाहती हैं, मगर मेरा ख्याल है there will be a lot of things to take away from it. और क्राउड को लेकर क्या कहेंगे? आज तो जैसे 25,000 की क्षमता है. इंडिया पाकिस्तान इन दुबई और इन इंडिया और इन पाकिस्तान और इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. बिल्कुल.
मतलब is always a great match. Of course, we can see that vibe in the crowd also because national anthems दोनों ही देशों के इस समय बज रहे हैं. And चलते चलते एक सवाल आप दोनों से मैं पूछूंगी. वेंकट आपसे शुरू करूंगी कि हम nerves की बात कर रहे थे. Do you think today is going to be more about holding the nerves or is it going to be about putting up a good target? Well, you can put up a good target only if you hold your nerves. Otherwise, you can't. So I think it is definitely going to be a nerve testing game, and it is going to be one-upmanship. These two teams may again reach the final. So the bragging right starts now. And और स्वामी राहुल द्रविड़ टीम के साथ जुड़ गए हैं. Yes. देखिए ऐसा है, राहुल द्रविड़ का टीम के साथ आ जाना एक बहुत ही पॉजिटिव थिंग है क्योंकि मेंटली हैविंग द्रविड़ इन योर कॉर्नर, having him sit with you and giving you advice, nothing can be better than Yeah, that. we'll take that So I would say conversation. that's a big plus mentally, but at the end of the day you have to perform on the field. We'll take that conversation in the break. अभी फिलहाल वक्त हो चुका है कि यहाँ पर हम आपसे विदा लें. स्वामी एंड वेंकट बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. आदेश Thank you. जी हाँ. फन आपके साथ यहाँ जुड़ने के और लिए. साक्षी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. और अब हम चलेंगे अपनी कमेंट्री टीम के पास. फर्स्ट बॉल 2020. इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता प्रवीण चंद. ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया. आकाशवाणी ले आया फिर से आपके लिए क्रिकेट का रोमांच. क्रिकेट एशिया कप 2022 के सभी मैचों का लाइव एक्शन. भारत के सभी मैचों का प्रसारण एफएम रेनबो नेटवर्क, प्राइमरी चैनल्स, LRS, FM रिले चैनल्स, DRM एंड DTH और अन्य मैचों का प्रसारण LRS, FM रिले चैनल्स, DRM एंड DTH पर सुन सकेंगे. तो सुनना ना भूलें क्रिकेट का लाइव एक्शन शाम 7 बजे से सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी पर. All India Radio is back with live action of Asia Cup 2022. All India matches on FM Rainbow Networks, primary channels, LRS, FM Relay channels, DRM and DTH. All other matches will be broadcast on LRS, FM Relay channels, DRM and DTH. Just tune into All India Radio for live action of Cricket Asia Cup 2022 from 7 p.m. onwards. For ball by ball commentary, let's go across to our commentary team for the live action. नमस्कार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन. सुपर संडे है आज और जैसा कि आप जानते हैं कि एशिया कप के तहत आज एक महासंग्राम भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट टीमों के बीच अब से थोड़ी ही देर के बाद शुरू होने वाला है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड पर. और हो भी क्यों ना, यही वो मैदान था जहां पर अब से लगभग 10 माह पूर्व भारत को एक बहुत बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा था पाकिस्तान की टीम के खिलाफ. दोनों ही टीमों के बीच जो अपेक्षित रोमांच है वो मानो श्रृंगार करे बैठा है, पराकाष्ठा की ऊंचाइयों को छूने के लिए आतुर है. और इस समय दोनों ही टीमें निश्चित रूप से तैयार हैं इस मुकाबले को शुरू करने के लिए. और जैसा कि आप जानते हैं कि इस मुकाबले में आज टॉस भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने जीता है. और जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि टॉस जीतने के बाद उन्होंने पहले आमंत्रित किया है बल्लेबाजी के लिए पाकिस्तान की टीम को. जहां तक टीमों का प्रश्न है तो भारतीय टीम के बारे में सबसे पहले आपको बताऊं, भारत में रोहित शर्मा टीम के कप्तान, KL राहुल उप कप्तान, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, दिनेश कार्तिक को आज टीम में जगह मिली है ऋषभ पंत के स्थान पर. और उम्मीद की जा रही थी कि शायद ऋषभ पंत टीम का हिस्सा होंगे, लेकिन उनकी जगह पर दिनेश कार्तिक को टीम में शामिल किया गया है. ये देखते हुए कि उन्होंने IPL में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और एक अच्छे फिनिशर के रूप में उभर करके सामने आए थे. इसके अलावा हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार, आवेश खान, युजवेंद्र चहल और अर्शदीप सिंह भारतीय टीम का हिस्सा रहे. जबकि पाकिस्तान की टीम की तरफ से बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फकर जमा, इफ्तिकार अहमद, खुशदिल शाह, आसिफ अली, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह T20 में अपना डेब्यू कर रहे हैं. बहुत ही तेज तर्रार खिलाड़ी हैं जहां तक तेज गति के गेंदबाज का सवाल है. इसके अलावा हैरिस रऊफ और शाहनवाज दहानी जिन्होंने काफी बढ़िया प्रदर्शन किया PSL में पिछले 2 वर्षों की यदि बात की जाए. तो खेल की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इस मुकाबले का विवरण आकाशवाणी के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाऊंगा. आशीष चरणगू, अपने साथी कमेंटेटर पंकज अठावले, स्कोरर
ओम प्रकाश शर्मा और स्टैटिस्टिशियन कुंजेश गुप्ते के साथ। तो इससे पहले कि इस मैच की पहली गेंद की जाए भारतीय गेंदबाज के द्वारा, माइक्रोफोन पर स्वागत है पंकज अठावले का। Thank you, Ashish. Welcome to the magical world of India versus Pakistan. We are ready for some blockbuster matches. And of course, India and Pakistan start their campaign of this Asia Cup with this particular match here. At the same venue, Ashish, you mentioned about something that happened about 10 months back. There was a bit of a deja vu, but this match is different. And huge crowds have come here at the Dubai International Stadium. Temperatures of about 36, 37 degrees Celsius, which might just come down. But all is set, and we are about to see the first over being bowled by Bhuvaneshwar Kumar. तो खेल शुरू होने के लिए तैयार है। स्टेडियम अपेक्षा के अनुरूप पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ और दुबई के अनुसार इस समय जो स्थानीय समय है वो शाम के 6 बजे, जबकि भारत में इस समय शाम के 7:30 बजे। पहली गेंद लेकर तैयार भुवनेश्वर कुमार और ऑफ स्टंप पर आती हुई इस गेंद को फ्रंट फुट पर आकर हल्के से गेंद को पुश कर दिया था ऑफ साइड में आसानी के साथ, लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में वहां पर गेंद पहुंचती हुई। पहली गेंद पर कोई रन नहीं और निश्चित रूप से ये वही पिच है जैसा कि आप जानते हैं जिस पर कल श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला खेला गया था। और घास अभी भी इस पिच पर काफी अच्छी नजर आ रही है पंकज, और उम्मीद की जा सकती है कि शुरुआती ओवर्स में भारतीय सीमर्स को यहाँ पर खासी अच्छी मदद मिलेगी। तैयार मोहम्मद रिजवान के लिए अगली गेंद लेकर 2 स्लिप के साथ, और इस बार क्रॉस द लाइन गेंद को पुल करना चाहते थे। गेंद में ज्यादा उछाल नहीं था, गेंद जाकर पैड पर टकराई। अंपायर से अपील की गई और अंपायर ने वहां पर अपनी उंगली हवा में उठा दी है। हालांकि थोड़ा सा वहां असमंजस की स्थिति में जरूर है मोहम्मद रिजवान। देखना है कि क्या DRS के लिए जाते हैं या फिर नहीं। भारत को यदि यहाँ पर यह सफलता मिल जाती है तो निश्चित रूप से भारत के लिए एक बहुत बढ़िया शुरुआत होगी। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि उन्हें आउट दिया गया है अंपायर के द्वारा। इस अपील पर शुरुआती लम्हे जैसा कि मैंने कहा काफी मुश्किल भरे हो सकते हैं पाकिस्तान की टीम के लिए, देखते हुए कि भारत के तेज गेंदबाज खासी अच्छी स्विंग कराने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं इस मैदान पर। ये देखते हुए कि घास यहाँ पर काफी है और खासा इस बार जो स्लो मोशन में नजर आ रहा है, गेंद टप्पा खाने के बाद उछाल लिए हुए थी और शायद इसी वजह से अचंभित थे मोहम्मद रिजवान कि उन्हें क्यों कर अंपायर ने वहां पर आउट दिया। जहां तक अंपायर का सवाल है, आपको बता दें आज ऑन फील्ड अंपायर है मसूदर रहमान बांग्लादेश के, और उसके अलावा रुचिरा पालियगुरगे जो कि श्रीलंका के हैं, और मैच रेफरी जेफ्रो और टीवी अंपायर रविंद्र विमलासिरी जो कि श्रीलंका से हैं। इसके अलावा बांग्लादेश के गाजी सोहेल रिजर्व अंपायर के रूप में है। इसी बीच जबकि तीसरे अंपायर तमाम स्लो मोशंस का इस समय मुआयना कर रहे हैं अपने स्क्रीन पर और देख रहे हैं कि क्या एल्ट्रेज की सहायता से कि गेंद और बल्ले के बीच में कोई वहां पर संपर्क हुआ था, लेकिन नहीं हुआ और गेंद निश्चित रूप से उछाल लेती हुई थी और स्टंप के ऊपर से जा रही थी। और इस तरह से पाकिस्तान का ये रिव्यू इनके लिए फायदे का सौदा साबित हुआ और इस समय मोहम्मद रिजवान सुरक्षित है बीच मैदान पर। एक खुशी की लहर पाकिस्तान के तमाम दर्शकों के बीच जो कि समय स्टेडियम पर मौजूद हैं उनके बीच दौड़ती हुई, और हो भी क्यों ना एक कांटे का मुकाबला है, एक ऐसा मुकाबला जिसकी बरसों से इंतजार रहती है दोनों ही देशों के क्रिकेट के चाहने वालों को। अगली गेंद लेकर भुवनेश्वर कुमार एक बार फिर से तैयार, दाएं हाथ से ओवर द विकेट, और इस बार ये गेंद लेग स्टंप की तरफ थी। गेंद को कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए मोड़ दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में। अर्शदीप वहां पर मौजूद हैं, गेंद को उन्होंने फील्ड किया, बाएं हाथ से थ्रो किया, लेकिन इससे पहले कि गेंद विकेट कीपर दिनेश कार्तिक के हाथों में पहुंचे आसानी के साथ दौड़कर 1 रन पूरा रिजवान का खाता खुला। पाकिस्तान की पारी की शुरुआत 1 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। 3 गेंदें अब तक आ चुकी हैं और अब तक जो गेंद और बल्ले के बीच संघर्ष है निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं एक संकेत है, एक सूचक है कि किस तरह का मुकाबला इन दोनों देशों की क्रिकेट टीमों के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट मैदान पर होने वाला है। लगभग 130-35 के बीच गेंदों की रफ्तार अब तक रखने में कामयाब हुए हैं। इसी बीच अगली गेंद और इस बार फ्रंट फुट पर जाकर बाबर आजम ने इनको खूबसूरती के साथ खेल दिया। मिड ऑफ की पोजीशन पर हार्दिक पांड्या वहां पर थे, गेंद को नहीं पाए और उनके सामने से गेंद निकलती हुई सीधा गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। एनर्जाइजिंग चौका। इस चौके की मदद से स्कोर बढ़कर के पाकिस्तान की टीम का 5 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के, और बाबर आजम निश्चित रूप से खतरनाक खिलाड़ी हैं। हालांकि
2022 की यदि बात करें तो T20 के मुकाबले बहुत ज्यादा पाकिस्तान की टीम ने खेले नहीं है, मात्र एक मुकाबला खेला। लेकिन जहां तक एक दिवसीय मैचों का सवाल है तो निश्चित रूप से उसमें उनका काफी शानदार प्रदर्शन रहा। पिछले 10 एक दिवसीय मैचों में 9 मरतबा उन्होंने अर्धशतक लगाया है। इसी बीच अगली गेंद बाबर आजम के लिए, और इस बार हल्के से गेंद को पुश कर दिया। वहां पर एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में गेंद को वहां पर फील्ड किया जाए इससे पहले कि आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। और इस 1 रन की मदद से पाकिस्तान टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करता हुआ दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर एशिया कप के अपने पहले मुकाबले में भारत के खिलाफ 6 रन बना चुका है बिना किसी विकेट के नुकसान के। अब तक 6 रन इस ओवर में आ चुके हैं। हार्दिक पांड्या निश्चित रूप से जो प्रयास उन्होंने किया था बाबर आजम के स्ट्रोक को रोकने में बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाए थे। इसी वजह अगली गेंद और गेंद को वहां पर खेलने के प्रयास में चूकते हुए कॉट बॉइंग के अपील वहां पर, लेकिन अंपायर पर उसका कोई प्रभाव नहीं। देखना है कि क्या भुवनेश कुमार और रोहित जबकि मंत्रणा कर रहे हैं, साथ में दिनेश कार्तिक भी हैं, क्या भारतीय टीम डीआरएस के लिए जी आएगी? जी हाँ, लगभग 6 सेकंड का समय शेष था और भारत ने भी अपना पहला डीआरएस ले लिया है। तो देखना ये है कि क्या यहाँ पर ये फैसला भारत के पक्ष में जाता है। पहला रिव्यू पाकिस्तान ने लिया था और फैसला उनके पक्ष में गया था। एक घटनापूर्ण ओवर पहला ही भुवनेश्वर कुमार का साबित होता हुआ, जिसमें दोनों टीमों ने अब तक एक एक रिव्यू दिया है। Isn't it surprising? It's not surprising at all. It's a blockbuster Sunday and 2 reviews in the very first over of a T20 international. And in fact, the ball when it beat the outside edge of the bat of their Rizwan, Bhuvaneshwar was quite confident. The wicketkeeper Dinesh Karthik was like, okay, looks like something. And Rohit Sharma was not sure whether he heard something because the huge crowds here at this stadium. But if we take a look at the ultra edge which is going on, looks like there is no contact with the bat and the ball. जी हाँ, जो हमें नजर आ रहा है, हालांकि तीसरे अंपायर के आधिकारिक निर्णय का अभी हमें इंतजार रहेगा। उसके हिसाब से गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं हुआ है और ये जो डीआरएस भारत ने लिया वो इस तरह से बेकार जाता हुआ। भारत अपना एक रिव्यू गवा चुका है। भारत के पास अब सिर्फ 1 रिव्यू बचा है और पाकिस्तान के पास इस मुकाबले में 2 रिव्यू शेष है। Interesting beginning to the India-Pakistan encounter in the Asia Cup. Of course, both teams coming in with a lot of expectation. And of course, the first over turning out to be quite eventful. But the fact remains that India taking, in fact, the chances here with Dinesh Karthik getting into the team ahead of Rishabh Pant. And of course, Pakistan going ahead with a lot of exuberance. But the best part about this Pakistan side is that the top 3 of Fakhar Zaman, Babar Azam and Rizwan have scored almost 68% of the runs in the last 1 year if you look at the T20 in fact performance as far as Pakistan is concerned. But Ashish, looking at the wicket before the match began, we did see a bit of a tinge of green, slight green. The same wicket which was used yesterday, we saw a lot of lateral movement, but Bhuvaneshwar Kumar, who's capable of it, hasn't been able to get or extract that much as Arshdeep starts a new over. Left arm over the wicket, first ball on the off stump, on the good length, moving in and bouncing after pitching. Babar Azam goes back on the back foot and plays it defensively. Introduction of Arshdeep Singh. He has had a very good season last time as far as the IPL is concerned, and he has actually worked through the ranks. That has been the situation for Arshdeep. But Babar Azam opening his account with that lovely off drive through mid-off. He's batting on 5. Pakistan 6 without the loss of any wicket. India, of course, winning the toss and deciding to bowl first. Arshdeep will continue. In fact, in the very first over, Bhuvaneshwar had a couple of players in the slip. Now, we'll have to see, will Rohit Sharma look for some other fielding strategies or not. Just a slip in place, left arm over the wicket, way outside the off stump, angled across. Babar Azam should be called as a wide, and yes, it is. Ashish, the pressure of a big match definitely showing on Arshdeep. But overall, if you look at Babar Azam, the way he has made runs or accumulated runs in the last 12 months has been phenomenal. In fact, he has more runs at this particular stadium than he has played in Pakistan. But overall, this particular encounter will bring or should bring the best out of both the teams. India going with the option of Arshdeep, Avesh and Bhuvaneshwar as the fast bowlers, Jadeja and Yuzvendra Chahal as the spinners, and of course Hardik Pandya, another option available. Incoming delivery from over the wicket.
wicket, trying to play it on the onside. Babar Azam finds Rohit Sharma. And if you look at most number of runs, Kunjesh Gupte, our statistician, immediately throws in some numbers. Babar Azam, in the 9 matches that he has played at this ground, has scored 446 runs, followed by Shehzad, who also has 390 runs in 9 matches. Paul Sterling of Ireland has played 11 matches here and has accumulated 379 runs, and followed by David Warner and Mohammad Hafiz. So this venue favorable for a lot of players, especially Babar Azam, who's getting ready to face the next one. Slightly short, and there's a lot of bounce in this drag. It goes over the helmet of Babar Azam, and it has been called as a wide. So 2 reviews in the first over, 2 wide deliveries in this over. Ashish is not really able to kind of regulate himself on this particular track. ये काफी युवा गेंदबाज हैं, मात्र 23 वर्ष की उनकी उम्र है। हालांकि प्रदर्शन उनका हाल फिलहाल में काफी अच्छा रहा है जहां तक डोमेस्टिक क्रिकेट का सवाल है, लेकिन देखना होगा कि इस प्रेशर वाले मुकाबले में वो किस तरह का प्रदर्शन करते हैं। क्षमताएं उनमें अपार हैं, लेकिन उसे प्रदर्शन में तब्दील करने की आवश्यकता है। That's the formula. Can you in fact convert your talent into something real? Here comes the next delivery. A good length, slightly short outside the off stump, trying to cut that ball, which was a bit away from his body. Babar Azam missing it completely, and in fact it was the ball just beating the outside edge of the bat. The T20 format is so peculiar and so interesting that it doesn't give you a lot of time in order to adjust, be it a batsman or be it a bowler. Arshdeep will need to really get into the groove very, very quickly, because as you said, he has loads of talent and he can actually get that ball to move in as well as away from the right-handed batsman. So getting a wicket very early is very, very important for India, because we know this particular pair of Babar Azam and Rizwan, what they did to India last time in the World Cup match. Also, the fact is this pair has been doing exceedingly well as far as having a lot of number of century stands. I'll ask Kunjesh to give us some numbers on this century stand for the pair of Babar Azam and Rizwan. In the meanwhile, the ball on the middle stump, jumping up on the toes, Babar Azam just works it, flicks it towards deep fine leg for a single. That will take Pakistan to 9 without the loss of any wicket. Not able to get wickets in the early overs for India can be very kind of a bit of a problematic situation, because India won the bowl first, a lot of assumptions, a lot of hindsight. Yesterday, same track, the ball was moving, the Afghan bowlers got the Sri Lankan batsmen in all sorts of trouble. The bounce that we saw in this over by Arshdeep Singh, the ball went over the head of the batsman. All these things combined together, in fact, India decided to bowl first, but we have not seen a lot of lateral movement till now, and there are still 2 deliveries left in this particular over. Babar Azam is on, in fact, Rizwan is on strike right now. This time outside the off-stump, just pushing that ball gently between point and cover. A good run stolen there by Rizwan, and this is the intelligence with which Rizwan has been batting under Babar Azam, and that's the reason why this pair has become so very dangerous for Pakistan. Just tapping the ball in front of short point. By the time Ravinder, who's at backward point, comes in there, a run has been stolen. 10 without the loss of any wicket. There's a slip, there is a shot third man, there's a backward point, there is a cover and a mid-off. That's the fielding on the offside, and on the onside there is a short mid-wicket along with a mid-on. So India trying to get something happening, because they need wickets. Power play is going to be a very crucial time, and you cannot let this pair settle very, very quickly. Lovely straight drive there by Babar Azam, full length delivery, standing tall, full face of the bat. The ball ends into the long off boundary for 4 runs. End of 2 overs. Pakistan 14 without the loss of any wicket. REC energizing chowk. 7 रन प्रति ओवर के हिसाब से फिलहाल पाकिस्तान की टीम की पारी पिछले 2 ओवर में आगे बढ़ी है, और जिस अंदाज में बाबर आजम बल्लेबाजी कर रहे हैं निश्चित रूप से दर्शनीय है। अब तक कुल मिलाकर उन्होंने 10 रन अपनी टीम के लिए अर्जित किए हैं, जबकि मोहम्मद रिजवान ने 2 रन अब तक अपने टीम के लिए बनाए हैं। कुल मिलाकर स्कोर पाकिस्तान की टीम का 14 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। 2 ओवर की समाप्ति के बाद टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी कर रही है पाकिस्तान की टीम। एशिया कप के अपने इस पहले मुकाबले में भारत का भी ये पहला मुकाबला है। कल से इस संस्करण की, जो कि 15वां संस्करण है एशिया कप का, उसकी शुरुआत हुई थी, और उस पहले मैच में कल एक बहुत ही रोचक
मुकाबले में, बल्कि अगर मैं कहूं तो शायद गलत नहीं होगा, अफगानिस्तान की टीम ने श्रीलंका की टीम को पराजित कर दिया था। फिलहाल नए ओवर की शुरुआत होती हुई और इस बार धीमी गति की गेंद थी, गेंद में ज्यादा उछाल भी नहीं था, ऑफ स्टंप के बाहर थी। रिजवान खेलने के प्रयास में पूरी तरह से चूकते हुए और बाकी का काम पूरा किया। वहां पर बहुत आसानी के साथ दिनेश कार्तिक ने, जो कि आज विकेट कीपर बैट्समैन के रूप में टीम में शामिल किए गए हैं। मोहम्मद रिजवान की पंकज यदि बात करें तो निश्चित रूप से इस 30 वर्षीय खिलाड़ी ने, जिनके बारे में शुरुआत में यही सोचा जाता था, एक परसेप्शन था उनके बारे में कि शायद शॉर्टर फॉर्मेट के लिए वो बहुत ज्यादा उपयुक्त नहीं है, लेकिन जिस तरह से पिछले 2 वर्षों में उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में प्रदर्शन किया है मुल्तान सुल्तान्स के लिए, वो निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की फहरिस्त में पिछले वर्ष भी दूसरे नंबर पर थे और इस वर्ष भी वो दूसरे नंबर पर है। पहले स्थान पर फकर जमा रहे थे। फिलहाल अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार, एक बार फिर से भुवनेश्वर कुमार, और इस बार ये गेंद हवा में टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकली थी और इस गेंद को फ्रंट फुट पे आके हल्के से पुश किया था। बहुत तेजी के साथ दौड़कर एक रन चुराया जरूर वहां पर, लेकिन खतरा था इस रन में। A slow delivery and very intelligently Rizwan pushed it. He knew Hardik Pandya was there at mid-off and both Hardik Pandya also dashed for the ball. Rizwan also took off immediately and that has been the hallmark. The upgradation of Mohammad Rizwan not only has been in the shot selection but also in the running between the wickets. यह शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट, और इस रन को लेने में निश्चित रूप से जोखिम जरूर था, मैं एक बार फिर से कहूंगा, लेकिन तारीफ करनी होगी मोहम्मद रिजवान की, जिस तरह से डाइव लगाकर उन्होंने अपनी क्रीज के अंदर अपने बल्ले को टिकाया और स्टंप पर जाकर गेंद टकराई भी नहीं थी, तो ऐसे में कोई अवसर भी नहीं था। इस एक रन के साथ पाकिस्तान की टीम का स्कोर 15 बिना किसी विकेट के नुकसान के। तीसरा ओवर इस समय प्रगति पर है। बाबर आजम जो कि टीम के कप्तान हैं, तीनों फॉर्मेट्स में इस समय पाकिस्तान की टीम की कप्तानी कर रहे हैं और 2019 में उन्होंने बागडोर संभाली थी पाकिस्तान की टीम की शॉर्टर फॉर्मेट की। इसी बीच अगली गेंद भुवनेश्वर कुमार की और इस बार इस गेंद को फिर से फ्रंट फुट पे आकर ड्राइव किया था, लेकिन गेंद सीधा मिड ऑन की दिशा में 30 गज के दायरे के अंदर फील्ड की जाती हुई केएल राहुल के द्वारा बिना किसी रन के। रनों की औसत रफ्तार फिलहाल 6 रन प्रति ओवर है और भुवनेश्वर कुमार की गेंदबाजी की यदि बात करें तो बीच बीच में धीमी गति की गेंदों का सम्मिश्रण कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह की स्विंग की अपेक्षा कर रहे थे अब तक उनकी गेंदों में उस तरह की स्विंग देखने को नहीं मिली है। देखना यह है कि अपने इस ओवर की बाकी बची हुई गेंदों में किस तरह का प्रदर्शन करते हैं। 3 गेंदों का आना बाकी है, एक स्लिप के साथ गेंदबाजी करते हुए इस बार पटके हुए गेंद और गेंद को वहां पर हुक कर दिया। गेंद हवा में है और अर्शदीप ने कोई गलती नहीं की, गेंद को उन्होंने आसानी के साथ लपक लिया और इसके साथ ही बाबर आजम जो कि खतरनाक होते हुए नजर आ रहे थे पाकिस्तान की टीम के लिए, इस समय वापस पवेलियन लौट रहे हैं मात्र 10 रन बनाकर 9 गेंदों का सामना करने के बाद और भारत को पहली सफलता मिलते हुए बाबर आजम के इस बड़ी विकेट के रूप में। What a catch and what a delivery that was surprising Babar Azam with that short delivery and the ball as Babar tried to pull it, took the top edge and went in the short fine leg zone. While this pair was trying to spook the opposition, Bhuvaneshwar Kumar, if he is not getting lateral movement, he has used the bounce, exploited the bounce of this particular track and he has almost, we can say, manufactured this wicket. बाबर आजम को अब तक फ्रंट फुट पे खेलने के लिए आमादा कर रहे थे भुवनेश्वर कुमार, लेकिन इस बार रणनीति में परिवर्तन किया। शॉर्ट पिच गेंद की पहली गेंद थी जो कि शॉर्ट पिच गेंद थी और उसी पर गचका खा गए बाबर आजम। गेंद को हुक कम पुल करने के प्रयास में लीडिंग एज दे बैठे और बहुत आसानी के साथ शॉर्ट फाइन लेग पर 30 गज के दायरे के अंदर अर्शदीप ने उस गेंद को लपका और कैच को मुकम्मल करने के साथ ही बाबर आजम की पारी का अंत कर दिया। तो पहला झटका पाकिस्तान की टीम को लगता हुआ टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 15 के कुल स्कोर पर, जबकि तीसरे ओवर की 2 गेंदों का आना अभी भी बाकी है। So good start as far as India is concerned. The first couple of overs when Rizwan was playing some cross-batted stroke, he was told to play straighter. He started playing straighter, but Babar Azam, the wicket is going to be very important because Babar Azam has been a very important component as far as run getting is concerned for Pakistan. Now it will be interesting to see, Ashish, how Fakhar Zaman and others take this situation and take this ahead because India have drawn first blood and that is what they were looking for after winning the toss and deciding to bowl. जी हाँ, देखने वाली बात होगी कि अब जबकि संभवतः फकर जमा वहां पर बाबर आजम का स्थान लेने के लिए बीच मैदान पर पहुंचेंगे, ये रिजवान के साथ मिलकर किस तरह से यहां पर पाकिस्तान की पारी को आगे बढ़ाते हैं देखना दिलचस्प होगा निश्चित रूप से। एक बड़ा झटका इस समय पाकिस्तान की टीम को भुवनेश्वर कुमार दे चुके हैं अपने इस ओवर की
चौथी गेंद पर फकर जमान, जो कि अब तक 66 एक दिवसीय मैच खेल चुके हैं, 1253 रन उन्होंने अब तक बनाए हैं और लगभग 22 की औसत के साथ 132 का स्ट्राइक रेट, जिसमें 7 अर्धशतक और शतक का जहां तक सवाल है उसका इंतजार अभी उन्हें बाकी है। भुवनेश्वर कुमार की अगली गेंद और इस बार फिर से पटकी हुई गेंद को पुल करने का प्रयास किया था, गेंद ने लीडिंग एज लिया, विकेट कीपर के ऊपर से होती हुई गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए। REC energizing चौका। इस चौके की मदद से, हालांकि भाग्य के स्वरूप में कहूंगा, बहुत ज्यादा आत्मविश्वास के साथ लगाया गया स्ट्रोक निश्चित रूप से नहीं था और इस बार खंडों का खासा अच्छा इस्तेमाल किया था इस गेंद को। और वहां पर जैसे ही फकर जमान ने, जो कि अभी अभी बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे थे, शॉर्ट पिच गेंद से उनका स्वागत किया, गेंद को पुल करना चाहते थे, गेंद ने बल्ले का ऊपरी किनारा लिया और विकेट कीपर के पीछे से होती हुई गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए चले गए। बहुत आत्मविश्वास से भरा हुआ स्ट्रोक नहीं, लेकिन फिलहाल 4 रन जरूर पाकिस्तान के खाते में जोड़ते हुए पाकिस्तान 19 एक विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद इस बार फ्लर रन की गेंद और देखना है कि क्या गेंद वहां पर सीधा कैच के रूप में पहुंची थी। रोहित के पास अपील वहां पर उन्होंने मजाक में जरूर किया, लेकिन कैच जैसी कोई बात नहीं। ओवर की भी समाप्ति हुई और 3 ओवर की समाप्ति के बाद 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर पाकिस्तान की टीम का स्कोर। Interesting over, and Bhuvaneshwar Kumar, we need to really, talk about his intelligence as a bowler. This is what experience is all about. If you're getting lateral movement, you exploit that. But here, you're getting the bounce, and he is surprising the batsman, even with Fakhar Zaman. And the point is, Bhuvaneshwar knows that Fakhar Zaman is a very instinctive player, and he likes to play those cross-batted strokes on a very regular basis. So he, in fact, surprised him with the very first delivery, which was a bouncer, and the top edge, the ball went over the keeper. Overall, if we look at the Pakistani side, they also look a bit circumspect. They are not really in command or full of confidence, as we may say, as far as this particular match is concerned. India will be very happy to see this. But Arshdeep will continue from the other end. 19 for the loss of a wicket. After 3 overs, Arshdeep starts a new over with a slip. First ball outside the off stump, beating. Beautiful delivery to Mohammad Rizwan. Almost a floater on the good length and just moving away, beating that outside edge of the bat. And in fact, the length of this delivery was immaculate because Rizwan was caught in no man's land. He really couldn't decide whether to go ahead, and without any foot movement, he tried to drive and the ball beating the outside edge of the bat. So the Indian bowlers taking advantage of this particular pitch, the conditions quite well, and it's going to be a bit of a tough time for Rizwan as well as Fakhar Zaman. A slip, a shot third man in the form of Chahal. In fact, Jadeja is there at backward point. There is a cover, there's a mid-off. Here comes Arshdeep for the next delivery just outside the off-stump. This time, much better, playing closer to the body, pushes the ball towards point. Mohammad Rizwan will not get any run. He's batting on 3, and Fakhar Zaman, of course, has opened his account with that boundary. But getting the wicket of Babar Azam, who generally is the mainstay of the Pakistani batting lineup, and around him, all the others really exploit the situation. But with Babar Azam gone, it will be interesting to see, will Fakhar Zaman sort of take the back seat and let Rizwan do the needful? Because Rizwan hasn't looked in a very good rhythm as far as the 9 deliveries that he has played. So we'll have to see what will be the role that Rizwan plays, or Fakhar Zaman, what he decides to go after. 19 for the loss of a wicket. Here comes Arshdeep. The first 2 deliveries have been very good. Slightly full. Again, a quick delivery, pushing it towards the point, and Ravinder Jadeja is still there. So 3 dot deliveries, Ashish, in this particular over, really building up the pressure. And be it test matches, be it ODI or the shorter format of the game, whenever a wicket falls, there is always a bit of a lull which follows that. And in T20, normally you try not to have that by artificially manufacturing some strokes. But this is a high-stakes game, high-voltage game, and the Pakistani batting lineup probably may not take so many risks initially. Even if the power play generates about 40-odd runs, they'll be more than happy considering that they have lost the wicket of Babar Azam. Next delivery outside the off-stump, driven past the short third-man fielder. This is the risk of having that fielder up over in the 30-yard circle. The ball races towards third-man boundary for 4 runs. REC energizing चौका।
opening the face of the bat, placing the ball between the short third man and the backward point fielder. Very intelligent stroke there, slicing that ball. And Mohammad Rizwan, if he cannot get runs by hammering, he will sculpt them. That's what he has thought for this particular match. And with those 4 runs, the score, of course, goes up. A lovely boundary there. A very sort of a artistic way of getting a boundary, even in T20 matches. 23 for the loss of a wicket. Pakistan in the 4th over. They are batting after India put them into bat after winning the toss. Much better compact delivery on the good length coming into Rizwan on the off stump. Played the ball back to the bowler. This has been a very good over because 4 dot deliveries, just a boundary, pretty much acceptable because this is the 4th over and Pakistan haven't really got a flying start. That's extremely important. And whenever Arshdeep comes back, Hardik Pandya is there at mid-off talking to him. Rohit Sharma from short mid-wicket comes and talks to him. So the pressure can definitely be seen on all the players, even though outside the field, all of them were very, very normal. Big game whenever India and Pakistan take each other. This match happening at Dubai, and of course Shaheen Shah Afridi injured, not playing this particular match, and of course there was talk of a lot of hope for the Indian openers because Shaheen Shah is not playing, but you really can't do much about it. Whenever India and Pakistan play, there will be the build-up, and that is the fun and that is the excitement. But this over has produced only 4 runs. Let's see how the last ball culminates because Zama is playing on 4, but on strike is Mohammad Rizwan batting on 7. Here comes Arshdeep, slightly short outside the off stump, trying to open the face of the bat and run it towards third man, and that is the end of the over. No run, 4 overs, 23 for 1 Pakistan. This commentary is brought to you by All India Radio in association with Channel 2, exclusive audio global right holders. खेल के शायकीन, भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैचों का जहां तक सवाल है और भी ज्यादा तादाद में देखना चाहते हैं, एशिया कप का ये पहला मुकाबला है इस 15वें संस्करण का। और अगर दोनों टीमें फाइनल में पहुंचती है, हालांकि कभी भी अब तक पिछले जो 14 संस्करण हुए हैं उसमें कभी भी दोनों टीमों का आमना सामना फाइनल में नहीं हुआ, लेकिन इस बार अगर दोनों टीमें फाइनल में पहुंचती है तो ये संभावना है कि दोनों टीमें इस टूर्नामेंट में 3 मर्तबा एक दूसरे के आमने सामने होगी। एंड अंग्रेजी में जिसे कहते हैं कि इट विल बी रियली a feast for the cricket lovers. You can't ask for more, Ashish. बिल्कुल दुरुस्त। और फिलहाल पाकिस्तान की टीम की पारी की यदि बात करें तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर इस समय मोहम्मद रिजवान 7 रन बनाकर खेल रहे हैं और फकर जमा, जिन्होंने कि आते ही पहली गेंद पर एक चौका उनके बल्ले के ऊपरी किनारे से लगती हुई गेंद विकेट कीपर के पीछे चली गई थी, उस चौके की मदद से 4 रन उन्होंने अब तक बनाए हैं। तो 23 1 विकेट के नुकसान पर पाकिस्तान की टीम टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करती हुई दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर एक स्लिप के साथ इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। गेंदबाजी में परिवर्तन वहां पर भुवनेश्वर कुमार के स्थान पर हार्दिक पांड्या को लगाया गया है और पहली गेंद पर खूबसूरती के साथ वहां पर फकर जमा ने गेंद को निकाल दिया एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में 4 रनों के लिए। जैसे ही देखा थी हार्दिक पांड्या के लिए निश्चित रूप से, और इस गेंद को जो कि बहुत अच्छी गेंद नहीं थी उसका भरपूर लाभ उठाने में कामयाब रहे वहां पर फकर जमा। इस चौके की मदद से 27 1 विकेट के नुकसान पर हम अपने श्रोताओं को याद दिला दें कि अब से कुछ ही देर बाद यानी ठीक 8 बजे आप माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का अंग्रेजी अनुवाद इन्हीं मीटर्स पर सुन सकेंगे। फिलहाल अगली गेंद हार्दिक पांड्या के, इस बार बल्ले का मुंह खोलते हुए गेंद को दिशा देते स्क्वायर थर्ड मैन पर फील्डर मौजूद है अर्शदीप के रूप में, और उससे पहले कि उनका थ्रो पहुंचे नॉन स्ट्राइकिंग एंड की तरफ चहल ने उसको गैदर किया, लेकिन तब तक आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन के लिए छोर बदल लिया। इस 1 रन के साथ पाकिस्तान की टीम का स्कोर 28 1 विकेट के नुकसान पर। लग रहा था कि संभवतः आविश खान को परिवर्तित गेंदबाज के रूप में मौका दिया जाएगा पहले फर्स्ट बॉलर चेंज के रूप में, लेकिन कप्तान की मंशा यहाँ पर कुछ और, उन्होंने आविश खान की जगह हार्दिक पांड्या को यहाँ पर पहले चेंज बॉलर के रूप में मैदान पर उतारा है और अब तक पहली 2 गेंदों पर उनके 5 रन लिए हैं पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने। पाकिस्तान 28 1 विकेट के नुकसान पर। भारतीय बीसीसीआई के सचिव जय शाह इस समय लुत्फ लेते हुए अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ इस संग्राम का, इस मुकाबले का, हार्दिक पांड्या ने अब तक 68 मैचों में 50 विकेट हासिल किए हैं
और लगभग 8.3 की उनकी इकोनॉमी है, लेकिन पहली 2 गेंदों पर बहुत ज्यादा आश्वस्त नहीं लगे हैं अपनी गेंदों पर। फिलहाल तैयार अगली गेंद का सामना करने के लिए मोहम्मद रिजवान वहां पर, और इस बार इस गेंद को फ्रंट फुट पे आके बैक टू द बॉलर हल्के हाथों से पुश किया था, लेकिन फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया और रन बनाने की वहां पर कोई संभावना नहीं। रिजवान एक सूत्रधार की भूमिका में नजर आ रहे हैं पंकज इस समय, और 14 गेंदों का सामना करते हुए उन्होंने 7 रन बटोरे हैं। जहां तक T20 मुकाबलों का सवाल है तो 2022 में पाकिस्तान की टीम ने जहां सिर्फ एक T20 मुकाबला खेला है, वहीं पर भारत ने 21 T20 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 17 में उन्हें विजय हासिल हुई है, और ये कहीं ना कहीं एक Stand by for our next program. This is All India Radio. We now bring you the English version of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi's Man Ki Baat, broadcast earlier this morning at 11 on the national network of All India Radio. My dear countrymen, Namaskar. In this month of August, all your letters, messages and cards have soaked my office in the hues of the tricolour. I've hardly come across any letter which does not carry the tricolour or does not talk about the tricolour and freedom. Children and young friends have sent beautiful pictures and artwork on the Amrit Mahotsav. In this month of independence, in our entire country, in every city, every village, the nectar of the Amrit Mahotsav is flowing. On this special occasion of Amrit Mahotsav and Independence Day, we've seen the collective might of the country. There has been a sense of realization. Such a big country, so many diversities. But when it comes to hoisting the tricolour, everyone seems to flow in the same spirit. People themselves came forward, becoming the vanguard of the pride of the tricolour. We'd also seen the spirit of the country in the cleanliness campaign and the vaccination campaign. We are getting to witness the same spirit of patriotism again in the Amrit Mahotsav. Our soldiers hoisted the tricolour on the peaks of high mountains, on the borders of the country, and in the middle of the sea. People also came up with different innovative ideas for the tricolour campaign, such as young friend Krishnil Anilji. Anilji is a puzzle artist and has created beautiful tricolour mosaic art in record time. In Kolar, Karnataka, people presented a unique sight by holding the tricolour that was 630 feet long and 205 feet wide. In Assam, government employees created a 20 feet tricolour with their own hands to hoist at the Dighali Pukhuri War Memorial. Similarly, people in Indore made the map of India through a human chain. In Chandigarh, the youth made a giant human tricolour. Both these efforts have also been recorded in the Guinness records. In the midst of all this, a great inspirational example was also seen at the Gangot Panchayat of Himachal Pradesh. Here, the children of migrant labourers were included as chief guests in the Independence Day program of the Panchayat. Friends, these colours of the Amrit Mahotsav were seen not only in India, but also in other countries of the world. Local singers living in Botswana sang 75 patriotic songs to celebrate 75 years of India's independence. What is more in this is that these 75 songs were sung in languages like Hindi, Punjabi, Gujarati, Bangla, Assamese, Tamil, Telugu, Kannada, and Sanskrit. Similarly, in Namibia, a special stamp has been released on the Indo-Namibian cultural traditional relations. Friends, I want to share with you another thing of joy. Just a few days ago, I got an opportunity to attend a program of the Ministry of Information and Broadcasting, Government of India. There, they had organized the screening of Swaraj, the Doordarshan serial. I got an opportunity to attend its premiere. This is a great initiative, the program of the Ministry of Information,
who took part in the freedom movement. है पिछले कुछ समय से बनते हैं और जिंदगी बर्बाद कर डिशेज बनवाऊं और मिलेट्स मोटर कल्चर और सिविलाइज। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में मोटे अनाज का हिस्सा प्रोत्साहन देने को प्रोत्साहन ध्यान देने के और नवाचार पूर्व उन्होंने कहा किसान और एकात्म चिंतन आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि हमारी संस्कृति में हजारों वर्ष पहले से ही जल और जल संरक्षण का महत्व That is August 2020. दृष्टि और एकात्म ये तो पता चल ही गया कि हमारी संस्कृति में हजारों वर्ष पहले से ही जल और जल संरक्षण का महत्व So significant even our thousands of years old Rigved. In Rigved it is said, Oman mapu manushihi amritkam. So significant की अपील प्रशासन सहित सभी के प्रयासों से अब जन आंदोलन बन गई है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आजादी के अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस के विशेष अवसर पर Halas लगाओ छाको छाका क्यों सो जब ऐसे में छाको अवे इस पर चुबासान छाको है इसको गया था कि कमेंट्री की खबर क्या त्राठा पे ईमान करो सबर सबर करो दोस्तों सबर करो। ये छक्का है ये चौका है ये तो छक्का है फिर क्यों दिखा रहा है 41। खैर जो भी है देश ने सामूहिक शक्ति के दर्शन किए हैं। उन्होंने कहा कि इससे राष्ट्रीय चेतना की अनुभूति हुई है। हमारे पूरे देश में हर शहर हर गांव में अमृत महोत्सव की अमृत धारा बह रही। After that, the construction of Amrit Sarovars has become a mass movement. When there is a deep feeling to do something for the country, people connected. गुजराती, बांग्ला, असमिया ताकि बस लड़के को उसकी अंगूठी संबंधों पर of Amrit Sarovars has become a mass movement. When there is a deep feeling to do something for the country, realize one's duties, concern for the coming generations, then the capabilities also get added up. अरे यार जल्दी बता बंद कर यार अपनी बकबक। I've come to know of a brilliant effort from Warangal in Telangana. A new Gram Panchayat has been formed here, named Mantya Valya Tanda. एक बेहतरीन पहल है का प्रसारण होता है और मुझे बताएं campaign. This time, due to the rains during the monsoon, this lake has been filled to the brim and has further enhanced the beauty of this area. The newly constructed Shahid Bhagat Singh Amrit Sarovar. मैं थोड़ा वेट तो करना पड़ेगा दोस्तों। कमेंट्री रुक गई है कुछ इनको भाषण है शायद पीएम मोदी साहब का जो भी है उस चक्कर में अभी अटक गया है। जो आएगा जो ही कमेंट्री रिज्यूम होगी मैं आपको फिर से। अरे यार ये कहाँ से खुल गया क्या मुसीबत है यूसी ब्राउज़र बंद हो जाए तो अभी तो स्कोर ही दिखा पाऊंगा बाकी तो सब्र करो अभी फिर से स्टार्ट होगा तो बताऊंगा। टीकाकरण में भी देश की यही भावना देखने को मिली थी। अच्छा अमृत महोत्सव में भी फिर संडे को मिश्रा जी की दुकान बंद होगी। लो दूसरा आउट हो गया। परिवार इकट्ठा होगा। कौन आउट हुआ? गाना नहीं गाना नहीं गाना नहीं सरकारी गाना लगा नहीं सकता। 4G इंटरनेट सेवा शुरू हुई। उन्होंने कहा कि इंटरनेट ने विद्यार्थियों के पढ़ने हर साइड न्यूज़ में भाई क्या हुआ भाई आकाशवाणी
से विद्यार्थियों के being rejuvenated. Amrit Sarovars. Under this campaign, at many कौन places, आउट हुआ है? old water bodies are अच्छा also being rejuvenated. Amrit Sarovars रिजवान are खेल रहा, being दूसरा used. आउट हो गया। गांव में बिजली पहुंच रही अरे बिजली पहुंच जाएगी मोदी जी, कोई ना, हुआ है मैं तो सुन ही As रहा हूँ well तब से। as for farming. nutrition man ta तला hian आखमेंटा rontel vek turin ka som cheu ani ka अच्छा kole tui du tak teu mai रेनबो एफएम Greenery is also increasing around them. Not only this, people at many places are also engaged in preparations for fish farming in Amrit Sarovars. आकाशवाणी I urge all of you, especially my young friends, ओए गाना नहीं, अरे भाई ये क्या मसला हो गया, गाना नहीं इसकी वीडियो। भाई वेट तो करना पड़ेगा। स्कोर तो है 43 पे 2 आउट हो चुके हैं, लेकिन कमेंट्री के लिए रुकना पड़ेगा। इसको पड़ गई है त्रट। पंजाबी रेडियोस कहाँ गया यार? इस पे तो चल रहा था अच्छा खासा, कल तो पूरा सुनाया इसने, आज क्या हो गया? were called. A Matka program was also held, in which the Mera Bacha Abhiyan in Datia district युग के लिए भविष्य की अपार संभावनाओं का क्या मसला है? बनेगा। A Matka program was also held, in which women bring a handful of grain. वो दैट आई नो मटका प्रोग्राम प्रो। अभी दोस्तों को कुछ और सुनना Anganwadi है। centers, malnutrition has been prepared in Giridih, Jharkhand. Through play, children learn about good and bad. जापान दोस्ती का उदाहरण। अभी रखी सुजुकी ग्रुप। मोदी ने कहा है कि इसमें जान गंवाने वन की स्थापना 2001 के भूकंप में जान गंवाने वालों के प्रति श्रद्धांजलि है। साथ ही ये कच्छ के लोगों के जुझारू जज्बे को भी नमन है। कच्छ में भारत के पहले भूकंप स्मारक स्मृति वन को देश को समर्पित करने के बाद एक जनसभा में श्री मोदी ने कहा कि इस स्मारक में कच्छ की पीड़ा परिलक्षित होती है। इसमें विनाशकारी भूकंप में जान गंवाने वाले 12,000 से अधिक लोगों के नाम उकेरे गए हैं। स्मृति वन को भुजियो पहाड़ी के ऊपर 175 एकड़ क्षेत्र में 375 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री ने भूकंप के मलबे में दबे 185 बच्चों और 20 शिक्षकों को श्रद्धांजलि देने के लिए अंजार शहर में निर्मित वीर बालक स्मारक को भी वर्चुअली राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये स्मारक अनेक परिवारों की स्मृतियों से जुड़े हुए हैं। स्मृति वन मेमोरियल और अंजार में Cunningham, he wasn't even expecting that, and it's bounced straight to Hull, and Hull are going to get a bonus set here from their own 40-metre line with a minute left. It's really poor, isn't it, from Toulouse there, and there's no real excuse for that for me, Mark. You know, the players are out there and they've got to play smarter than that. Oh, an error now from Laidlaw. Yeah, not the best pass, maybe just overran it, tried to clutch it in over his shoulder, and the half just coming to a bit of a scrappy end here. 42 seconds on the clock as Toulouse will get a scrum inside the centre circle. I think Hull will be delighted, Brett Hodgson will be delighted, because it could have been a really difficult afternoon, couldn't it? If Toulouse come here with nothing to lose and everything sticks, then, and the way Hull have been playing, you know, low on confidence, not really won too many games themselves, it could have been a really difficult afternoon.
Wow, look at that. Cunningham just fed the scrum and he peeled away expecting the loose forward to pick it up. The loose forward didn't. अब ये गुरेला क्रिकेट क्या है भाई? The VAR would have got involved in that subsequently. भारत रही थी के लिए नमस्कार नमस्कार Good evening. This ऑल इंडिया and Nope, nothing working. Run of results and only 2 games remaining. You wondered were they right for a bit of an upset against relegated Toulouse, but right आप रमी खेलते हो? अपने ग्रुप का बादशाह हूँ मैं. कितना from the outset, Hull have been bang on the money. Harvey Barham with an early double after good work from Jake Connor, who booted 2 great kicks from the sideline to make it 12-0. Then Will Gardner on his first team start for Hull FC. He went over from close range. That was 18-0. Grains have been a part of our our coarse grains. अगर आप कॉम्पिटिशन्स की तैयारी Abhas.air News. Millets, coarse grains have millets are mentioned in our Vedas, and similarly, they are also mentioned in Purana Nuru. इस बार का विषय और सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 31। अभ्यास हमारा प्रयास। क्या आप वरिष्ठ नागरिक हैं? क्या आपके मन में Ragi, Savan, Kangni, chief holders of us Indians. Together, we all have to make it a mass movement. आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप ना 4-0 करने से पहले मुख्य आकाशवाणी से यार अब इसमें टाइम लगेगा Summon यार. the people of the country. आपका फिर स्वागत। एक नजर Very well. एक नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी In a very short time, मंत्री ने beneficial. कहा करते हुए हर घर तिरंगा Now, along with reducing obesity, हरियाणा और गुजरात आपको आज के शेष और कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण दे दें झरोखा में. वर्चुअली मिलता नहीं Stomach and liver ailments. We refer to malnutrition. रुक जाओ, एक Just बार a मैं while कुछ ago. और जुगाड़ देखता हूँ. Millets are also very beneficial in fighting malnutrition since they are packed with energy as well as protein. Today, a lot is being done to promote millets in the country. Along with focusing on research and innovation related to this, FPOs are being encouraged so that production can be increased. It is my request to my farmer brothers and sisters to adopt millets, that is, coarse grains, more and more and benefit from it. It feels good to see that many such startups are emerging today which are working on millets. Some of these are making millet cookies, while some are also making millet pancakes and dosa. There are some who are making millet energy bars and millet breakfasts. I wish all the very best to all the people working in this field. In this festive season, we also use millets in most of the dishes. You must share the pictures of such delicacies made in your homes on social media so that it helps in increasing awareness among people about millets. My dear countrymen, just a few days ago, I saw news from Jorsing village in Siang district of Arunachal Pradesh. This news was about a change that the people of this village had been waiting for many years. In fact, in Jorsing village this month, 4G internet services have started from Independence Day. Like, earlier people used to be happy
when electricity reached the village. Now, in New India, the same happiness is felt when 4G reaches there. There has been a new sunrise in the form of 4G in the remote areas of Arunachal and Northeast. Internet connectivity has brought a new dawn. Facilities which were once available only in big cities have been brought to every village through Digital India. For this reason, new digital entrepreneurs are rising in the country. Setha Singh Rawatji of Ajmer district of Rajasthan runs Darzi Online, an e-store. You will wonder, what is Darzi Online? Actually, Setha Singh Rawat used to do tailoring work before COVID. When COVID came, Rawatji did not take this challenge as a difficulty, rather as an opportunity. He joined the Common Service Center, that is, CSC e-store, and started working online. He saw that customers were placing orders for masks in large numbers. He hired some women and started getting मैं masks कुछ जुगाड़ made. करता हूँ तब तक इसकी After बकवास this, सुनो दोस्तों. he started his online store named Darzi Online, in which he started selling stitched clothes of many other kinds. Today, with the power of Digital India, the work of Setha Singh Ji has increased so much that now he gets orders from all over the country. He has given employment to hundreds of women here. Digital India has also turned Om Prakash Singh Ji of Unnao, UP, into a digital entrepreneur. He has established more than 1,000 broadband connections in his village. Om Prakash Ji has also built a free Wi-Fi zone around his common service center, which is helping the needy people a lot. Om Prakash Ji's work has increased so much that he has hired more than 20 people. These people are providing broadband connection to the schools, hospitals, tehsil offices, and Anganwadi centers of the villages, and are also getting employment from it. Like the Common Service Center, there are many such success stories being seen on the government e-marketplace, that is, GEM portal. Friends, I get many such messages from villages which share with me the changes brought about by the internet. The internet has changed the way our young friends study and learn. For example, when Gudiya Singh of UP came to her in-laws' house in Amoya village of Unnao, she was worried about her studies. But BharatNet resolved her concern. Gudiya carried on her studies through the internet and also completed her graduation. How many such lives in villages are getting new strength from the Digital India campaign. Do write to me as much as you can about the digital entrepreneurs of the villages and also share their success stories on social media. My dear countrymen, some time back, I received a letter from Ramesh Ji, a listener of Man Ki Baat from Himachal Pradesh. Ramesh Ji has enumerated many specialities of the hills in his letter. He wrote that the settlements on the mountains might be far apart, but the hearts of the people are very close to each other. Indeed, we can learn a lot from the lives of the people living in the hills. The first lesson we get from the lifestyle and culture of the hills is that if we do not come under the pressure of circumstances, we can easily overcome them. And secondly, how we can become self-sufficient with local resources. The first lesson that I mentioned, a beautiful picture of it, is being seen in the Spiti region these days. Spiti is a tribal area. Here, these days, pea plucking goes on. This is a laborious and difficult task on hill farms. But here, the women of the village gather and together pluck peas from each other's fields. Along with this task, women also sing the local song, Chapra Maji Chapra. That is, mutual cooperation here is also a part of folk tradition. The best example of utilization of local resources is also found in Spiti. Farmers who rear cows in Spiti dry up the dung
and fill it in sacks. When winter comes, these sacks are laid out in the sheds where the cows live, which is called khood here. During snowfall, these sacks give protection to the cows from the cold. After winters, this cow dung is used as manure in the fields. That is, the animals' protection using animal waste and also manure for the fields. The cost of cultivation is also low, and the yield in the fields is also high. That is why this area these days is also becoming an inspiration for natural farming. Friends, many such commendable efforts are also being seen in our other hill state, Uttarakhand. Many types of medicines and plants are found in Uttarakhand, which are very beneficial for our health. One of them is the fruit, bedu. It is also क्या known मसला as है Himalayan यार? fig. In this fruit, minerals and vitamins. सर आप रमी खेलते हो? अपने ग्रुप का बात हुआ है। कितना बड़ा ग्रुप? Are found in abundance. People consume it not only in the form of fruit, but it is also used in the treatment of many diseases. Not only in the form of fruit, but it is चाहते हैं. The remains poised in all three dimensions. in these successful in bringing Prevent and treat. it in different forms. क्या होता है? By branding along with the great festival of स्कोर देखो, मैं पहले देखता हूँ मसला क्या हुआ। पहले मसला तो समझ आया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा पंगा क्या हुआ। मसला क्या हुआ है दोस्तों, मेरे को समझ क्यों नहीं आ रहा। संग्राम का इस मुकाबले का हार्दिक पांड्या ने अब तक 68 मैचों में 50 विकेट हासिल किए हैं और लगभग 8.3 की उनकी इकॉनमी है, लेकिन पहली 2 गेंदों पर बहुत ज्यादा आश्वस्त नहीं लगे हैं अपने गेंदों पर। फिलहाल तैयार अगली गेंद का सामना करने के लिए मोहम्मद रिजवान वहां पर, और इस बार इस गेंद को फ्रंट फुट पे आके बैक टू द बॉलर हल्के हाथों से पुश किया था, लेकिन फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया और रन बनाने की वहां पर कोई संभावना नहीं। रिजवान एक सूत्रधार की भूमिका में नजर आ रहे हैं पंकज इस समय, और 14 गेंदों का सामना करते हुए उन्होंने 7 रन बटोरे हैं। जहां तक T20 मुकाबलों का सवाल है तो 2022 में पाकिस्तान की टीम ने जहां सिर्फ एक T20 मुकाबला खेला है, वहीं पर भारत ने 21 T20 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 17 में उन्हें विजय हासिल हुई है। और ये कहीं ना कहीं एक Stand by for our next program. This is All India Radio. We now bring you the English version of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi's Mann Ki Baat, broadcast earlier this morning at 11 on the national network of All India Radio. My dear countrymen, Namaskar. In this month of August, all your स्वागत है आपका हमारे शो। वो मानो श्रृंगार के इस मुकाबले में आज टॉस भारत के कप्तान Independence Day. Many more festivals. कि टॉस जीतने के बाद उन्होंने पहले आमंत्रित किया बल्लेबाजी के लिए पाकिस्तान की टीम को। जहां तक टीमों का प्रश्न है तो भारतीय टीम के बारे में सबसे पहले आपको बताऊं, भारत में रोहित शर्मा टीम के कप्तान, राहुल उप कप्तान, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, दिनेश कार्तिक को आज टीम में जगह मिली है ऋषभ पंत के स्थान पर, और उम्मीद की जा रही थी कि शायद ऋषभ पंत टीम का हिस्सा होंगे, लेकिन उनकी जगह पर दिनेश कार्तिक को टीम में शामिल किया गया है। ये देखते हुए कि उन्होंने आईपीएल में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और एक अच्छे फिनिशर के रूप में उभर करके सामने आए थे। इसके अलावा हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार, आवेश खान, युजवेंद्र चहल और अर्शदीप सिंह भारतीय टीम का हिस्सा रहे, जबकि पाकिस्तान की टीम की तरफ से बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फकर जमा,
इफ्तिकार अहमद, खुशदिल शाह, आसिफ अली, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह T20 में अपना डेब्यू कर रहे हैं। बहुत ही तेज तर्रार खिलाड़ी हैं जहां तक तेज गति के गेंदबाज का सवाल है। इसके अलावा हैरिस रऊफ और शाहनवाज दहानी, जिन्होंने काफी बढ़िया प्रदर्शन किया PSL में पिछले 2 वर्षों के Just a few days from now. खेल की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इस मुकाबले का विवरण आकाशवाणी के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाऊंगा। आशीष चरणगू, अपने साथी कमेंटेटर पंकज अठावले, स्कोरर ओम प्रकाश शर्मा और स्टैटिस्टिशियन कुंजेश गुप्ते के साथ। तो इससे पहले और गुप्ता जी कैसे हैं आप? सामने राहुल Cup 2022 All India matches on FM Rainbow Networks, primary channels, LRS, FM Relay channels, GRM and DTH. All other matches will be broadcast on LRS, FM Relay channels, GRM and DTH. Just tune into All India Radio for live action of Cricket Asia Cup 2022 from 7 p.m. onwards. For ball by ball commentary, let's go across to our commentary team for the live action. नमस्कार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। सुपर संडे है आज और जैसा कि आप जानते हैं कि एशिया कप के तहत आज एक महासंग्राम भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट टीमों के बीच अब से थोड़ी ही देर के बाद शुरू होने वाला है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड पर। और हो भी क्यों ना, यही वो मैदान था जहां पर अब से लगभग 10 माह पूर्व भारत को एक बहुत बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा था पाकिस्तान की टीम के खिलाफ। दोनों ही टीमों के बीच जो अपेक्षित रोमांच है वो मानो श्रृंगार करे बैठा है, पराकाष्ठा की ऊंचाइयों को छूने के लिए आतुर है। और इस समय दोनों ही टीमें निश्चित रूप से तैयार है इस मुकाबले को शुरू करने के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस मुकाबले में आज टॉस भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने जीता है और जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि टॉस जीतने के बाद उन्होंने पहले आमंत्रित किया बल्लेबाजी के लिए पाकिस्तान की टीम को। जहां तक टीमों का प्रश्न है तो भारत में टीम के कप्तान राहुल, कप्तान विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, कार्तिक को आज टीम में जगह मिली है ऋषभ पंत के स्थान पर। और उम्मीद जा रही थी कि शायद ऋषभ पंत टीम का हिस्सा होंगे, लेकिन उनकी जगह पर दिनेश कार्तिक को शामिल किया गया है। ये देखते हुए कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और एक अच्छे फिनिशर के रूप में। इसके अलावा हार्दिक पांड्या, रविचंद्रन जडेजा के साथ फील्ड करके रन बनाने की तमाम संभावनाओं को समाप्त कर दिया। पाकिस्तान का स्कोर अभी भी स्थिर 74, 2 विकेट के नुकसान पर। 11वां ओवर प्रगति। भाई फाइनली लाइव कमेंट्री स्टार्ट हो गई है। ये मोदी जी की बीच में एक की बात थी, उसके चक्कर में बहुत से दोस्तों को वेट करना पड़ा। मैं माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा रुके, इसलिए मैं आपको ये लो स्कोर कार्ड वापस और स्कोर कार्ड भी वापस और कमेंट्री भी वापस। शुक्रिया दोस्तों सब्र रखने के लिए, थैंक यू सो मच। और गेंद को कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए मोड़ दिया 30 गज के दायरे के अंदर मिड विकेट क्षेत्र में। खुद जडेजा ने जाकर गेंद फील्ड की, लेकिन तब तक 1 रन का अवसर बन चुका था रिजवान के लिए। रिजवान पहुंचे इस 1 रन की सहायता से 35 पर। और अब इफ्तिकार अगली गेंद का सामना करेंगे जो कि जडेजा के इस ओवर की अंतिम गेंद होगी। 15 गेंदों में 17 रन अब तक इफ्तिकार अहमद ने बनाए हैं। इस बार ये गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ लेग स्टंप की तरफ हटते हुए गेंद को पुश कर दिया। स्वीपर कवर पर फील्डर मौजूद है युजवेंद्र चहल के रूप में, लेकिन इससे पहले कि उनका थ्रो पहुंचे 1 रन का अवसर और बन चुका था। और इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़कर के पाकिस्तान की टीम का 76, 2 विकेट के नुकसान पर 11 ओवर की समाप्ति के बाद तीसरे विकेट के लिए अब तक 31 गेंदों में 34 रनों की साझेदारी हो चुकी है। जहां तक मोहम्मद रिजवान और इफ्तिकार अहमद की इस जोड़ी का सवाल है और ये साझेदारी पंकज कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए एक चिंता का सबब बन सकती है। No doubt about it, because both these batsmen have tried to take risks. They have tried to get some aggressive strokes growing. But this wicket, Ashish, is quite tricky because we saw a lot of bounce from the faster bowlers. But when the slow ones are bowling, if the delivery is a bit slow, it sticks on the wicket and it's not easy to hit through the line. We saw one of the strokes from Iftikhar and also another one from Rizwan. When Ravinder Jadeja or Yuzvendra Chahal bowls it a bit slower, there's a bit of stickiness on this particular wicket. So this track is going to be very challenging. And it's not easy to hit through the line. So जहां तक इस ट्रैक का सवाल है पंकज, तो कल जिस तरह का मूवमेंट, लैटरल मूवमेंट देखने को मिल रहा था, आज उस तरह का देखने को नहीं मिला। भारत ने जो 2 विकेट हासिल किए, दोनों ही शॉर्ट पिच गेंदों पर।
So that means to say this time, first ball upon the over by Chahal, and Iftikhar Ahmed hoiks that ball towards deep mid wicket. Hardik Pandya runs in from long on, and the batsmen take a couple of runs. Once again, that onside stroke, that is what is being attempted by both these batsmen. Iftikhar moves up to 20, and you mentioned about the lateral movement. So that yesterday we can say there was a lot of movement on the x-axis. Today it's more on the y-axis if you look at the geometrical parameters. But 12th over, 78 for 2. Iftikhar looking a bit aggressive. He's batting on 20 of 17 deliveries. Here comes a Chahal flighted delivery, but on the legs, and no space whatsoever to exploit as Iftikhar drives it towards long on for a single. Iftikhar, I guess, has made his intentions very clear. He's the one who's now going to go after the bowling. Rizwan at the other end is batting on 35. Both these players, as you said, have constructed a very, very interesting partnership from where Pakistan can take off, but they're not getting that space, they're not getting that momentum, they're not getting that opportunity as Chahal will get ready to bowl to Rizwan. Pakistan 79 for the loss of 2 wickets. Coming down a track, but not getting under the ball. Rizwan drives it in the end towards a long off for a single, and both Jadeja as well as Yuzvendra Chahal have been constantly trying to sort of proactively understand what will be the move of the batsman and then accordingly make changes in their deliveries. We have seen very different deliveries being bowled by both of them. A lot of variety within 1 over as Pakistan 80 for the loss of 2 wickets. The 2 wickets that have fallen off that of Babar Azam and then of Fakhar Zuma. Iftikhar on strike. He gets a flighted delivery outside the off stump, hits it high in the air over the bowler. It's gone. Oh, long on, and it goes into the stands for a huge sixer. What a shot. In fact, normally you would see a batsman hitting that ball over the covers, but with a cross-batted stroke, a lot of power involved in it. Iftikhar went for it, and the ball went very, very high in the air and beat the fielder at long on. That was Hardik Pandya. Very slow, flighted delivery, juicy delivery, and Iftikhar took complete advantage of it. मजबूत कद काठी के हैं और पंकज बिल्कुल आपने ठीक कहा, ऑफ से काफी ज्यादा बाहर की थी ये गेंद, और ऐसे में अमूमन बल्लेबाज ज्यादातर इन गेंदों को ऑफ साइड में खेला करते हैं, लेकिन घुटनों पर बैठते हुए इस गेंद को आड़े बल्लों से उन्होंने बिल्कुल उठा करके खेल दिया था, और हार्दिक पांड्या सिर्फ सीमा रेखा पर उस गेंद को निहारते रहे बाहर की तरफ जाते हुए। इसी बीच अगली गेंद, और इस बार कॉटन बोल्ट का अवसर था, लेकिन छिटकी गेंद वहां पर चहल के हाथों से। He tried to grab that ball at the second attempt as the ball went towards the stumps, and he couldn't really recover in time. That could have been a good revenge for Yuzvendra Chahal, but he misses a full toss there, a slow full toss, and in fact, Iftikhar wanted to hammer it out of the park once again. It went straight back to the bowler. Yuzvendra in his follow-through tried to attempt. He did get a hand to it, but the ball popped out of his hand. Almost a Yorker length delivery for Iftikhar. The next one, he drives it towards long on for a single. 12 overs have been bowled. Pakistan 87 for the loss of 2 wickets. This commentary is brought to you by All India Radio in association with Channel 2, exclusive audio global right holders. चहल अपनी फ्लाइट पर नियंत्रण नहीं रख पाए थे उस अवसर पर, और फुल टॉस के रूप में गेंद को आड़े बल्ले के साथ बैक टू द बॉलर खेल दिया था इफ्तिखार अहमद ने, और गेंद चहल के दाएं हाथ की कलाई पर जाकर लगी। उनके हाथ में अगर जाकर गेंद आती तो शायद संभवतः वो एक कैच के रूप में गेंद मुकम्मल हो सकती थी, लेकिन फिलहाल इन तमाम जो ऐसा होता और वैसा होता, इन सब प्रश्नों से अलग होकर जो स्थिति है 87 2 विकेट के नुकसान पर पाकिस्तान की टीम का स्कोर 12 ओवर की समाप्ति के बाद 8 ओवर यहां से और शेष बचे हैं पाकिस्तान की पारी में, और देखना यह है कि बचे हुए 8 ओवर में और कितना स्कोर अर्जित कर सकती है पाकिस्तान की टीम। लेकिन इस साझेदारी की निश्चित रूप से तारीफ करनी होगी। अब तक काफी बढ़िया प्रदर्शन इस साझेदारी ने करके दिखाया है, और जहां तक साझेदारी का सवाल है, अब तक इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 45 रनों की साझेदारी हो चुकी है। 29 गेंदों का सामना कर 29 मिनटों में 37 गेंदों का सामना करते हुए भारत को निश्चित रूप से इस समय एक विकेट की आवश्यकता है। जहां तक दोनों टीमों के गेंदबाजी का प्रश्न है, तो तेज गेंदबाजों के रूप में दोनों ही टीमों को इस एशिया कप के दौरान क्षति हुई है, जहां पाकिस्तान के शाहीन शाह आफरीदी नहीं है, मोहम्मद इसी बीच अगली गेंद वहां पर हार्दिक पांड्या के परिवर्तित
गेंदबाज के रूप में पहली गेंद पटकी हुई गेंद को वहां पर पुल करना चाहते थे, गेंद ने बल्ले का ऊपरी किनारा लिया और दिनेश कार्तिक ने वहां पर कोई गलती नहीं की और इसके साथ ही इफ्तिकार अहमद जो कि लगातार खतरनाक होते हुए नजर आ रहे थे, गेंद ने बल्ले का ऊपरी किनारा लिया और हवा में ऊपर की तरफ छलांग लगाते हुए दिनेश कार्तिक ने इस कैच को मुकम्मल किया और हार्दिक पांड्या को मिलने वाली ये पहली सफलता और पाकिस्तान को ये तीसरा झटका लगता हुआ 87 3 विकेट के नुकसान पर। और इस समय इफ्तिकार अहमद काफी निराश कदमों के साथ वापस पवेलियन लौट रहे हैं। 28 रन बनाने के बाद 22 गेंदों का सामना उन्होंने किया था, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल था और स्ट्राइक रेट लगभग 127 का था इन 28 रनों को बनाने में। तो निश्चित रूप से जिस विकेट की दरकार भारत को थी वो अंततः उन्हें मिला और ये जो साझेदारी लगातार भारत के लिए एक चुनौती बनाती हुई नजर आ रही थी, उसका अंततः अंत किया हार्दिक पांड्या ने अपने इस स्पेल की पहली ही गेंद पर। Once again, that movement, the bounce of the track, beating the batsman, and a very good catch behind the wicket by Dinesh Karthik. Once again, a lot of work on the X, if not the X-axis, but the Y-axis today. But this pitch is really very interesting, isn't it, Ashish? Because normally in Dubai, we don't see such kind of tracks, but the track behaving in such contrasting manner in 2 days, over 2 matches, is quite interesting. और संयोग देखिए, 3 विकेट जो भारत को हासिल हुए हैं, तीनों ही शॉर्ट पिच डिलीवरी पर। भुवनेश्वर को भी सफलता मिली शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद पर, हार्दिक पांड्या को भी, और उसके साथ ही साथ आवेश खान को भी जो सफलता मिली थी वो शॉर्ट पिच गेंद पर ही मिली थी। नए बल्लेबाज इस समय बीच मैदान पर खुशदिल शाह पहुंच चुके हैं और देखना यह है कि मोहम्मद रिजवान के साथ मिलकर के क्या कुछ कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। Yes, and once again, the ball going over the head of Iftikhar, he tried to kind of pull it, was not in control. The Indian batsmen also have to be careful, Ashish, because the Indian batsmen also not very comfortable against the short of length delivery. But Hardik Pandya is quite surprising, isn't it? As he bowls the next one to Kushdil on the legs, hits the pads, bit of an appeal. And once again, that scoring rate that you mentioned, Ashish, will slow down again. Pakistan will have to do something about it. जी, निश्चित रूप से एक नजर पाकिस्तान की टीम की उस तरफ भी जरूर होगी और देखना यह है कि क्या कुछ कर पाते हैं उनके बाकी के बचे हुए बल्लेबाज। लेकिन निश्चित रूप से इस समय भारतीय गेंदबाजी की तारीफ करनी होगी, एक अनुशासन के तहत, एक रणनीति के तहत गेंदबाजी करते हुए। और जैसा कि मैंने कहा, अब तक जो 3 सफलताएं भारत को मिली है वो शॉर्ट पिच गेंदों पर मिली है और तीनों ही अवसरों पर बल्लेबाज ने गलती की और उसका फायदा उठाया भारतीय टीम ने। 87 3 विकेट के नुकसान पर 12.3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की औसत रफ्तार इस समय ठीक 7 रन प्रति ओवर। अगली गेंद, और इस बार इस गेंद को जो कि थोड़ा सा उछाल लिए हुए थी मिडल और लेग स्टंप पर, कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए ऑन साइड पर स्क्वायर लेग की तरफ खेल दिया एक आसान से रन के लिए। इसके साथ ही खाता खुला। भारत के खिलाफ पहला मुकाबला खेल रहे हैं खुशदिल शाह, जहां तक T20 मुकाबलों का सवाल है, और भारत के खिलाफ इस तरह से ये उनका पहला रन। मोहम्मद रिजवान अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। 36 के व्यक्तिगत स्कोर पर 88 पाकिस्तान 3 विकेट के नुकसान पर रनों की औसत रफ्तार 7 के आसपास मंडराती हुई, जिसे निश्चित रूप से यहां पर बढ़ाने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान के बल्लेबाज। क्या अपने इरादे में कामयाब हो पाते हैं या फिर नहीं, देखने वाली बात होगी। हार्दिक पांड्या को 1 विकेट की खुराक मिल चुकी है। अपने कोटे का इस समय तीसरा ओवर कर रहे हैं, जिसकी 2 गेंदों का आना बाकी है। 16 रन देकर 1 सफलता उन्होंने अब तक हासिल की है। दाएं हाथ से मोहम्मद रिजवान के लिए स्टंप के नजदीक से गेंद मिडल और लेग स्टंप पर आती है। इस गेंद को खेल देना चाहते थे ऑन साइड पर, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क ठीक से नहीं हुआ। हालांकि रन के लिए आगे निकल गए थे, उनके अनुमान था कि शायद गेंद नजदीक खड़े हुए फील्डर को छकाती हुई आगे निकल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फील्डर ने वहां पर बहुत तेजी के साथ फील्ड किया, थ्रो किया, लेकिन तब तक सुरक्षित अपनी क्रीज के अंदर पहुंच चुके थे। गेंद स्टंप्स पर भी नहीं टकराई। आज जितने भी प्रयास हुए हैं भारत की तरफ से, फील्डर्स की तरफ से स्टंप्स को हिट करने का थ्रो के रूप में, वो कामयाब नहीं हुए हैं। ये एक चिंता का विषय भारत के लिए होगा और यहाँ पर ये एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर ज्यादा काम करने की भारतीय टीम को आवश्यकता आने वाले मैचों में महसूस होगी। अगली गेंद लेकर हार्दिक पांड्या, जो कि उनके इस ओवर की अंतिम गेंद है, इस बार पैक ऑफ गेंद को पुल कर दिया और इससे पहले कि डीप मिड विकेट पर फील्डर अर्शदीप के रूप में फील्ड की जा सके, आसानी के साथ गेंद को वहां पर थ्रो किया था उन्होंने। और देखिए, जब मंशा थी स्टंप्स पर हिट करने की, तब गेंदें नहीं लग रही थी, और जब हमने उसकी चर्चा की तो अर्शदीप का नॉन स्ट्राइकिंग एंड की तरफ आता हुआ थ्रो, जिसको अगर स्टंप पे जाकर नहीं भी टकराती तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि बल्लेबाज सुरक्षित क्रीज में पहुंच चुका था। लेकिन वो गेंद जाकर स्टंप पर टकराई, एक हल्की सी मुस्कुराहट
पंकज अठावले के चेहरे पर। इसके साथ ही ओवर की भी समाप्ति हुई और 13 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान की टीम का स्कोर टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 90 रन 3 विकेट के नुकसान पर। खुशदिल 1 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि मोहम्मद रिजवान ने अब तक शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया है। ओपनर के तौर पर आए थे पाकिस्तान की टीम की तरफ से इस मुकाबले में और अब तक 3 चौके और 1 छक्के की मदद से उन्होंने 38 गेंदों का सामना करते हुए अपनी टीम के लिए बेशकीमती 38 रन बना डाले हैं। A very interesting position here for Mohammad Rizwan, because Mohammad Rizwan is normally used to making a lot of runs in the first 10 overs and then building the platform, but here he has to play the sheet anchor's role and now take Pakistan to a distance by playing all the remaining overs. He's batting on 38, but Khushdil has just opened his account and he will be facing Avesh Khan, who will be bowling just his second over, and he is now bowling from the DSC end, as they call it. Yes, Avesh Khan getting the wicket in his very first over. The first 3 deliveries of his first over were very sort of losers, but then he came back pretty nicely. And in fact, he will be bowling to Khushdil. Khushdil, the left-handed batsman, who's now a part of that Pakistani middle order. We'll have to see how both these batsmen, Khushdil and Rizwan, now take charge from this over for the remaining 7 overs. First ball on the middle and the leg, cramping Khushdil for space, played back to the bowler. No chance of any run whatsoever. In fact, getting sort of Ali in this particular position would have been more interesting, because right now Asif Ali is also someone who can hit the ball in a very clean manner, but then if Pakistan is not able to really get some runs in the next couple of overs, the decent rate, they will then get shackled. They'll get sort of caught up in their own situation, and that is where they'll have to be careful about. Avesh Khan bowls a lovely delivery just on that off stump, moving away, beating that outside edge of the bat. Khushdil, no foot movement whatsoever, just the bat hanging in the air somewhere, and this is not what the doctor has in fact ordered for Pakistan. But India will be very happy because they've got 3 wickets, Ashish, and the Pakistani middle order is not able to sort of accelerate. पंकज, मुझे लगता है 1 या 2 गेंदों के बाद यहाँ पर निश्चित रूप से एक शॉर्ट पिच डिलीवरी देखने को मिलेगी आवेश खान के द्वारा. Let's see if your predictions are right, because Avesh is looking for that particular delivery which can surprise the batsman as Khushdil gets ready to face the next one. He has made only 1 run of the 5 deliveries that he has bowled. Slightly short and going on the back foot, pushing it towards a point. Khushdil takes a quick single. Whenever the deliveries are on the middle and the leg stump, Khushdil seems to be cramped up a lot. He's not able to really flick the ball. He's not able to sort of open the face of the bat and run it around here and there. And that is something which Khushdil has to be careful about, because he cannot get shackled, as I said, in these overs, especially from the 14th to the 16th over. Now all eyes will be on Rizwan, who's batting on 38. He's scoring at a strike rate of 100, which is quite unlike Rizwan. He's known for 120s and a 150 strike rate, but he also has not got those kind of deliveries where he can actually belt the bowler. Right now, Pakistan 91 for 3. They would be looking to get as close as possible to 150 at least, because that will give them some sort of a comfortable zone and some areas to think about. But the Indian fans having a great time, the Pakistani fans expecting their players to strike hard. This is a blockbuster Sunday on All India Radio, and in the 14th over, here comes Avesh Khan to Rizwan. It's a full toss, driven through the covers. Beautiful stroke. The fielder is inside the circle at mid-off. 4 runs. REC energizing chowk. A boundary here, 95 for 3, and this is what happens with Avesh once in a while. Lovely deliveries, control suddenly lost, and probably he tried to go for a yorker, which turned out to be a full toss, and a good placement there, I would say, by Rizwan, because he saw that the fielder was inside the circle at mid-off. There was a cover and lovely gap there. That will take Pakistan to 95. They're scoring at 7 runs per over. Avesh bowls the next one, slightly short, but this time the ball doesn't bounce, and Rizwan tries to pull it. The ball goes under the bat into the gloves of the keeper. So this pitch is definitely a tricky one, especially when the faster bowlers are bowling and when the spinners are bowling. Very, very different nature of the pitch, and the batsmen will have to be careful. Ashish, the Indian players will also have to be careful, because it's not easy to hit through the line. Yesterday, we saw a lot of lateral movement only in the first innings, not in the second innings. But here, the slight unevenness of the bounce will probably continue throughout
the match. Outside the off stump, trying to drive it, gets a thick inside edge. The ball trickles around that silly point area, and the batsman crossover for a single. 14 overs have been bowled, and Pakistan have moved on to 96 for 3. Ashish, 14 overs, just 6 overs remaining, and even 100 not even on the board for Pakistan. जी हाँ, 6.85 रन प्रति ओवर के हिसाब से अब तक रन बने हैं पाकिस्तान की पारी के। और यहाँ से अब मुझे लगता है कि वो समय दूर नहीं है निश्चित रूप से जब पाकिस्तान के बल्लेबाज रनों की गति में इजाफा करने का प्रयास करेंगे। और ये देखते हुए कि अब तक 14 ओवर में 96 रन बने हैं, और जैसा कि पंकज ने कहा कि अभी 100 का आंकड़ा भी नहीं छुआ है पाकिस्तान की पारी ने, तो ऐसे में निश्चित रूप से अब काफी बड़ी जिम्मेदारी वहां पर मोहम्मद रिजवान के ऊपर होगी, जो कि अपने अर्धशतक के काफी नजदीक हैं। और यदि वो ये अर्धशतक बना लेते हैं तो T20 मुकाबलों में ये उनका 14वां अर्धशतक होगा। और भारत के खिलाफ ये मात्र दूसरा मुकाबला खेल रहे हैं T20 मैचों में। पिछली बार आपको याद होगा कि इसी मैदान पर उन्होंने 79 रन नाबाद बनाते हुए एक शानदार पारी खेली थी और अपनी टीम की जीत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और कमोबेश आज भी उसी राह पर निकले हुए नजर आ रहे हैं मोहम्मद रिजवान। 41 गेंदों में 43 शानदार रन अब तक उनके बल्ले से निकले हैं। हार्दिक पांड्या इस समय तैयार हैं अपने कोटे का अंतिम ओवर करने के लिए शेख जायद रोड एंड से, और उनके लिए इस समय फील्ड प्लेसिंग सजाई जा रही है कप्तान रोहित शर्मा के द्वारा। और देखना ये है कि जबकि पहली गेंद का सामना वहां पर मोहम्मद रिजवान करेंगे, किस तरह से आने वाली 6 गेंदों का वो सामना करते हैं, और क्या इस ओवर के दौरान कुछ रनों की गति भी बढ़ाने का वो प्रयास करेंगे। इस ओवर की पहली गेंद लेकर हार्दिक पांड्या स्टंप के नजदीक से पटकी हुई गेंद, और इस बार इस गेंद को वहां पर दिशा देने की कोशिश की थी, घुटनों के बल झुकते हुए बल्ले को आड़ा करते हुए, और गेंद सीधा जाकर वहां पर थर्ड मैन पर मौजूद फील्डर युजवेंद्र आवेश खान के हाथों में जाकर कैद होती हुई। और इस तरह से पाकिस्तान की टीम को ये चौथा झटका लगता हुआ 14.1 ओवर की समाप्ति के बाद क्या शानदार अंदाज में वहां पर हार्दिक पांड्या ने अपनी जाल में फंसाया इस अवसर पर शॉर्ट पिच गेंद, और वहां पर मजबूर किया एक तरह से इस गेंद को खेलने के लिए, शरीर को पीछे की तरफ ले जाकर के घुटनों को झुका करके इस गेंद को दिशा देना चाहते थे, लेकिन मन ही मन जानते थे कि वहां पर आवेश खान के रूप में थर्ड मैन पर फील्डर मौजूद है। एक संशय की स्थिति थी उनके मन में, और उस शॉट को खेलने के बाद वो समझ गए थे कि उनका अंत अब निश्चित है। और इस समय 43 रन बनाकर 42 गेंदों का सामना करने के बाद लगभग 102 की स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने ये 43 रन बनाए, और निराश कदमों के साथ वापस पवेलियन लौट रहे हैं। चौथा विकेट पाकिस्तान की टीम का गिर चुका है 14.1 ओवर की समाप्ति के बाद। 96 पाकिस्तान की टीम का स्कोर। Long walk back home for Rizwan, and a very good delivery because he surprised Hardik Pandya, surprised him. Initially, instinctively, Rizwan wanted to pull it, but he got into a position and realized the ball was coming into his body very, very quickly, and somehow thought, okay, let me improvise, and he tried to open the pace of the bat, but that was the end of it. Very intelligent delivery from Hardik Pandya. जी हाँ, शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन। बिल्कुल उनके शरीर की दिशा में ये शॉर्ट पिच डिलीवरी थी, और खेलने के लिए मजबूर हो गए थे। उस गेंद को छोड़ने की कोई गुंजाइश नहीं थी मोहम्मद रिजवान के पास, और एक बड़ा झटका इस समय लगता हुआ पाकिस्तान की टीम को। 96 4 विकेट के नुकसान पर शादाब खान, जो कि टीम के उप कप्तान हैं, वो इस समय खुशदिल शाह का साथ देने के लिए बीच मैदान पर पहुंच चुके हैं। और पाकिस्तान के लिए निश्चित रूप से इस समय परेशानियां काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। शादाब खान की यदि बात करें तो 23 वर्ष की उनकी उम्र, और अब तक कुल मिलाकर 64 T20 मुकाबले उन्होंने खेले हैं। 42 उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर है, 136 के आसपास का स्ट्राइक रेट, और 18 उनका औसत रहा है। पहली गेंद और हल्के से गेंद को पुश करके वहां पर दौड़कर एक रन पूरा कर लिया। सीधा डायरेक्ट थ्रो वहां पर जरूर की थी सूर्य कुमार यादव ने, लेकिन जैसा कि मैंने आज कहा कि जब प्रयास किया है आज भारतीय फील्डर्स ने स्टंप पर थ्रो करने का, उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई है, और यह आज चौथा अवसर था। Yes, and it was aiming at a single stump for Surya Kumar, and Surya Kumar had got it right. Everything was right except that the ball did not kiss the stumps. जी हाँ, अगर वो ये करने में कामयाब हो जाते तो निश्चित रूप से शादाब खान को वापस पवेलियन का रास्ता देखना पड़ सकता था, लेकिन खुशकिस्मत शादाब खान बीच मैदान पर अभी भी डटे हुए हैं, और पाकिस्तान की टीम का स्कोर इस एक रन की मदद से 97 4 विकेट के नुकसान पर। खाता खुला जरूर शादाब खान का, लेकिन जोखिम भरा रन था निश्चित रूप से।
काफी उत्साह के साथ इस समय हार्दिक पांड्या गेंदबाजी कर रहे हैं दाएं हाथ से ओवर द विकेट, स्टंप के काफी नजदीक से, और इस बार फिर से पटकी हुई गेंद और उठाकर के खेल दिया फील्डर गेंद के नीचे आते हुए, और इसके साथ ही एक और सफलता हार्दिक पांड्या के खाते में। एक और विकेट गिरता हुआ पाकिस्तान की टीम का। आधी टीम पाकिस्तान की टीम वापस लौट चुकी है पवेलियन में 97 के स्कोर पर। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 97 पाकिस्तान की टीम का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर। खुशदिल मात्र 2 रन बनाकर 7 गेंदों का सामना करने के बाद इस समय वापस पवेलियन लौट रहे हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि अब तक इस मुकाबले में, इस पूरी पारी में कहीं ना कहीं शॉर्ट पिच डिलीवरी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया है, और जडेजा जो कि वहां पर डीप पॉइंट पर मौजूद थे, उन्होंने कोई गलती नहीं की। आसानी के साथ, अच्छे पूर्वानुमान के साथ ठीक गेंद के नीचे आते हुए उन्होंने उस कैच को मुकम्मल किया, और इस तरह से खुशदिल शाह की पारी का भी उन्होंने अंत कर दिया। What a lovely barrage of short pitch deliveries. Hardik unleashing some very precise short of length deliveries. And once again, Khushdil was not in control of that stroke. He wanted to sort of open the face of the bat. Then he ended up slapping that ball and somehow played that ball in the air. And once again, he didn't have a lot of room to move around. कल श्रीलंका के बल्लेबाज एक के बाद एक आउट हो रहे थे स्लॉप स्वीप करने के प्रयास में, और आज पाकिस्तान के बल्लेबाज एक के बाद एक आउट हो रहे हैं शॉर्ट पिच गेंदों के सामने। और ये कहीं ना कहीं संयोग है, एक अलग तरीके की कहानी आज दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर देखने को मिल रही है दूधिया प्रकाश में। जबकि पाकिस्तान की टीम टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 14.3 ओवर में 97 5 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद इस बार लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा आएगा। शदाब खान वहां पर स्ट्राइक पर थे। इस एक अतिरिक्त रन के साथ पाकिस्तान की टीम का स्कोर 98 5 विकेट के नुकसान पर। In fact, desperation creeping now in the Pakistani batting lineup because 100 is not yet on the board, Ashish. That's a cause of worry because they were looking at about 150 and it seems that they might not be able to even cross 130. जी हाँ, अगर भारत उस स्कोर तक महदूद रखने में कामयाब हो जाती है पाकिस्तान की टीम को, तो निश्चित रूप से भारत के लिए काफी अच्छे संकेत होंगे। क्योंकि जैसा कि हम तेज गेंदबाजी की बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की टीम में शहंशाह अफरीदी नहीं है, जो कि काफी घातक साबित हुए थे इसी मैदान पर जब T20 का मुकाबला हुआ था भारत के खिलाफ। हालांकि भारतीय टीम में बुमराह भी नहीं है, चोटिल है। अगली गेंद और इस बार फिर से वाइड का इशारा आता हुआ और 2 अतिरिक्त रन वाइड के रूप में। उत्साह ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने अनुशासन को भी संभाल करके रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इस तरह की लूज डिलीवरी कहीं ना कहीं आप जो दबाव बनाने में अब तक कामयाब रहे हैं पाकिस्तान की टीम के ऊपर, वो कम कर देता है। Yes, and that's what happens in the India-Pakistan high voltage match. You can get bogged down or you can get super excited. जी हाँ, अत्यधिक उत्तेजना भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती। ऊर्जा के साथ गेंदबाजी जरूर कर रहे हैं और जानते हैं कि अब तक जिस तरह से पांड्या ने कुल मिलाकर 3 विकेट हासिल किए हैं अपने इस कोटे में। अगली गेंद और इस बार खूबसूरती के साथ बैकफुट पे जाकर इस गेंद को स्क्वायर ड्राइव कर दिया। गेंद को वहां पर फील्ड कर रहे हैं आसानी के साथ अर्शदीप। इससे पहले कि थ्रो पहुंचे विकेट कीपर की तरफ, 1 रन आसानी के साथ दौड़कर पूरा कर लेंगे शादाब खान। शादाब खान इन 1 रन की मदद से पहुंचे 2 के व्यक्तिगत स्कोर पर, और आसिफ अली तैयार हैं स्ट्राइक लेने के लिए। आसिफ अली जो कि 30 वर्ष के हैं, वेस्ट इंडीज के खिलाफ कराची में उन्होंने 1 अप्रैल 2018 को T20 मुकाबलों में पदार्पण किया था और अब तक कुल मिलाकर 39 T20 मुकाबले खेले हैं, 435 रन उनमें बनाए हैं। 41 उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर है नाबाद रहते हुए, और लगभग 17 का उनका औसत और 133 की स्ट्राइक रेट। देखना है कि इन मुश्किल परिस्थितियों में अपने उप कप्तान के साथ मिलकर क्या कुछ कर पाते हैं। एक स्लिप के साथ गेंदबाजी करते हुए अगली गेंद और इस बार ऑफ स्टंप पर आती है। उस गेंद को बल्ले का मुंह खोलते हुए दिशा दे दी। स्क्वारिश थर्डमैन पर फील्डर मौजूद आवेश खान के रूप में 1 रन दौड़कर पूरा किया। दूसरे रन के लिए भी बहुत तेजी के साथ पलट लिए इससे पहले कि थ्रो पहुंचे दिनेश कार्तिक के दस्तानों की तरफ, और इन 2 रनों के साथ पाकिस्तान की टीम का स्कोर बढ़कर के पहुंच गया 102 5 विकेट के नुकसान पर। 14.5 ओवर की समाप्ति के बाद हमारे स्कोरर ओम प्रकाश शर्मा बता रहे हैं कि पाकिस्तान के पहले 50 रन 6.5 ओवर में 44 मिनट की बल्लेबाजी के बाद आए और 100 रन उनके बने 14.4 ओवर की समाप्ति के बाद 87 मिनट की बल्लेबाजी करते हुए। अंतिम गेंद लेकर हार्दिक पांड्या का के
ये ओवर महंगा थोड़ा सा साबित तो होता हुआ इस दृष्टिकोण से कि 2 वाइड उन्होंने की, अगली गेंद पटकी हुई थी, गेंद को पुल कर दिया, मिड विकेट पर जडेजा मौजूद, गेंद को फील्ड किया, लेकिन तब तक 1 रन के लिए छोर बदल चुके थे बल्लेबाज। इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़कर के पहुंचता हुआ 103 पाकिस्तान की टीम का। 5 विकेट के नुकसान पर 15 ओवर समाप्त हो चुके हैं और अब पंकज समय है कि जहां से हम पाकिस्तान की तरफ से कुछ आतिशबाजी देख सकते हैं। But will they be able to do that? Because the pitch is behaving in a quite tricky manner, and Asif Ali is the man who can do it. You're right, and Asif Ali has done it before. But if you talk about the Asia Cup, and Kunjesh has given us some numbers, Pakistan's highest total in Asia Cup was in 2016, 4th of March at Mirpur, when they scored 151 for 4 against Sri Lanka. And of course, the lowest total in Asia Cup is 83. They've already surpassed this. That was against India again at Mirpur in the month of February in 2016. Thank you, Kunjesh and OP Sharma. What would we have done without them? Ashish, with the numbers flowing in, thank you very much. And Hardik, of course, has completed 4 overs, 3 for 25. In fact, 3 wickets he has taken by giving away 25 runs. Yuzvendra Chahal will be bowling his last over of his quota, and the fireworks that you're expecting, Ashish, may just come in here. Asif Ali is on strike. Here comes Yuzvendra Chahal. First ball to Asif Ali. Beautiful floater on the leg stump, cramping him for space. And Asif, in fact, wanted to do something extravagant, but really just was kept in doubt till the ball went and hit his pad and ricocheted towards the point region. A quick single has been taken. The score goes up to 104 for the loss of 5 wickets. It took an inside edge on the pads, and Yuzvendra Chahal kept Asif Ali guessing. But a leg spinner, now to another leg spinner. Shadab on strike, going on the back foot, tries to cut that ball. Bottom edge, goes past Dinesh Karthik towards short third for a single. Once again, this pitch, Ashish, the batsmen are not able to hit the ball clean whenever there is change of pace, and that is going to haunt the Indian batsmen also, because Surya Kumar Yadav or Hardik Pandya, they like to really hit the ball. Virat Kohli, they also want to kind of go after the deliveries, but it's not going to be easy. Making room for himself, Asif Ali hits that ball over the covers, not getting enough wood on it, and there's a bit of a misfield there, not good there. Deepak Huda, one of the substitutes, and they come back for the third, or they settle for a couple of runs. No, they come back for the third. Very good running between the wickets. It's a huge stadium, and a slight misfield here and there can allow the batsman to go for the third run. In the days of T20s, when they came, Ashish, the ground size actually started shrinking, but this is a different ball game altogether at the Dubai International Stadium. This time, trying to go, cotton ball delivery. Shadab hits the ball through back to the bowler, but was very, very quick. Tried to get to it in his follow-through. Yuzvendra got a few fingers. The ball goes over the umpire towards long on for a single. Virat Kohli is there, and Pakistan go up to 109 for the loss of 5 wickets. Asif Ali, he is someone who can actually do something for Pakistan. The fireworks definitely expected, but will Yuzvendra Chahal allow Asif Ali to go after him? Here comes Yuzvendra. Outside the off, some slow delivery, hits that ball towards wideish long on. Virat Kohli there, good fielding, good coverage of ground, and in the meanwhile, Asif Ali comes back for 2 runs. So Asif Ali is trying. He's trying to do the needful, but the pace of the ball after it comes, after bouncing off the track, is not an ideal one to hit, as one more delivery left in the 16th over. 1-1 for 5 Pakistan. Asif Ali is batting on 9. Here comes Yuzvendra Chahal, flighted, full toss. Asif Ali surprised, played back to the bowler, no run, 16 overs, 111 for 5 Pakistan. This commentary is brought to you by All India Radio in association with Channel 2, exclusive audio global right holders. तो इस तरह से हार्दिक पांड्या के बाद अब युजवेंद्र चहल ने भी अपने 4 ओवर का कोटा पूरा कर लिया है। 4 ओवर की गेंदबाजी में कोई मेडन नहीं, 32 रन और कोई सफलता उन्हें हासिल नहीं हुई, जबकि हार्दिक पांड्या अब तक के सबसे सफल गेंदबाज भारतीय टीम का जहां तक सवाल है। 4 ओवर की गेंदबाजी में बिना किसी मेडन के 25 रन देकर उन्होंने शानदार 3 सफलताएं आज भारतीय टीम के लिए हासिल की हैं। तो 2 ओवर अभी भुवनेश्वर कुमार के बाकी हैं। अर्शदीप सिंह की बात करें तो 2 ओवर अभी उनके कोटे के भी बाकी हैं, और आवेश खान के पास भी 2 ओवर बचे हुए हैं, और रविंद्र जडेजा के पास भी 2 ओवर बचे हुए हैं। तो कुल मिलाकर इन 4 गेंदबाजों के बीच बचे हुए 4 ओवर
कप्तान रोहित शर्मा को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। देखने हैं कि वहां पर क्या वापसी भुवनेश्वर की होगी या फिर अर्शदीप की। भुवनेश्वर इस समय नजर आ रहे हैं गेंदबाजी के मोर्चे पर, जैसा कि अनुमान था, और शेख जायद रोड एंड वो अपने इस स्पेल की शुरुआत से नीचे है। फिलहाल 6.9 के हिसाब से रन बने हैं। स्ट्राइक लेने के लिए शादाब खान तैयार हैं। भुवनेश्वर कुमार के इस ओवर की पहली गेंद मौसम से काफी ज्यादा बाहर की तरफ थी, थोड़ी धीमी गति की गेंद, लेकिन उनकी पहुंच से बाहर। और ये एक स्ट्रेटेजी है, ये एक प्लॉय होता है अमूमन डेथ ओवर्स में, जब आनन फानन में अपना बल्ला चलाना चाहते हैं बल्लेबाज, तो गेंदबाज ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा गेंदें बाहर रखते हैं कि ताकि वो गेंद तक पहुंच ना पाए, पहुंचे भी तो किनारा का अवसर बन सके या गेंद हवा में उड़ जाए कैच के रूप में। तो पाकिस्तान 111 5 विकेट के नुकसान पे 17वां और इस समय प्रगति पर है। भुवनेश्वर कुमार की अगली गेंद का सामना करने के लिए पूरी एकाग्रता के साथ शादाब खान, और इस बार इस गेंद को बल्ले को आड़ा करते हुए खेल दिया था डीप एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में खड़े हुए फील्डर की तरफ। इससे पहले कि गेंद वहां पर फील्ड हो सके, एक रन का अवसर बन चुका था शादाब खान के लिए। शादाब खान इस एक रन की मदद से अब पहुंचे 5 के व्यक्तिगत स्कोर पर, और पाकिस्तान की टीम का स्कोर 112 5 विकेट के नुकसान पर। शादाब खान को यहां पर निश्चित रूप से एक बड़ी भूमिका निभानी होगी, और जैसा कि पंकज ने भी कहा कि आसिफ सक्षम हैं पूरी तरह से लंबी हिट्स लगाने में, और डोमेस्टिक क्रिकेट में T20 मुकाबलों का जहां तक सवाल है तो वहां उनकी तूती बोलती है और काफी लोकप्रिय हैं अपने देश में। पाकिस्तान में PSL लीग का जहां तक सवाल है, और देखना यह है कि आज इन परिस्थितियों में क्या पाकिस्तान के लिए एक मजबूत पारी, बड़ी पारी खेल सकते हैं। इसी बीच अगली गेंद आसिफ के लिए, और इस बार उन्होंने गेंद को उठा करके खेल दिया फील्डर गेंद के नीचे, और कोई गलती नहीं की वहां पर खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव ने, और इस तरह से एक और सफलता भारतीय टीम को मिलते हुए। आसिफ, जिनकी हम चर्चा कर रहे थे कि लंबे शॉट लगाने में कामयाब हो सकते हैं, इस बार गेंद को उन्होंने उठा करके खेला था लॉन्ग ऑफ की दिशा में, लेकिन सूर्य कुमार यादव वहां पर थे। आसानी के साथ गेंद को उन्होंने अपने हाथों में कैद किया और धीमी गति पर इस गेंद पर शिकार करने में कामयाब रहे थे भुवनेश्वर कुमार। लगातार गेंद पर अपनी निगाहों को जमाए रखा था सूर्य कुमार यादव ने, अपने दाईं तरफ जाकर उस कैच को मुकम्मल किया, और आसिफ अली निराश कदमों के साथ इस समय वापस पवेलियन लौट रहे हैं। पाकिस्तान 112 6 विकेट के नुकसान पर। So Ashish, fortunately this was not of a short delivery. All the wickets have come of short deliveries. This one was of a slow delivery. But then Pakistan now are in a danger of their tires getting punctured as they are running on the highway, because they are just 112 for the loss of 6 wickets. Will they be able to even cross 130? ये एक यक्ष प्रश्न है, और दूसरा प्रश्न ये भी कि क्या पूरे 20 ओवर का कोटा वो खेल पाएंगे। 6 विकेट उनके अब तक गिर चुके हैं, मात्र 4 सफलताएं भारत को और हासिल करनी है 20 ओवर के अंदर ही अंदर समेटने के लिए पाकिस्तान की टीम को। फिलहाल अगली गेंद, और शादाब खान वहां पर स्ट्राइक ले रहे थे, बल्ले का मुंह खोलते हुए गेंद को स्क्वारिश थर्डमैन की तरफ दिशा देने का प्रयास किया, सफल रहे, लेकिन फील्डर को पार नहीं पा पाए। अर्शदीप वहां पर मौजूद थे 30 गज के दायरे के अंदर, गेंद को उन्होंने फील्ड किया और रन बनाने की तमाम संभावनाओं को इसी के साथ समाप्त कर दिया। शादाब खान और साथ ही साथ इस समय नए बल्लेबाज के ऊपर काफी बड़ी चुनौती है। मोहम्मद नवाज वहां पर पहुंचे हैं बीच मैदान पर उनका साथ देने के लिए कि क्या वो यहां पर एक सम्मानजनक स्कोर तक पाकिस्तान की टीम को पहुंचा पाएंगे। 17वें ओवर के 2 गेंदों का आना बाकी है। भुवनेश्वर कुमार अब तक अपनी गेंदबाजी पर 2 विकेट हासिल कर चुके हैं, और देखना यह है कि क्या बाकी की बची हुई 2 गेंदों पर भी कोई चुनौती वो पेश कर पाते हैं इन 2 बल्लेबाजों के सामने। दाएं हाथ से ओवर द विकेट तैयार, बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए इस समय मोहम्मद नवाज के लिए स्टंप के नजदीक से गेंद, और टप्पा खाने के बाद बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए बाहर की तरफ गेंद निकल रही थी। गेंद को ड्राइव करना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं हुआ। खुशकिस्मत रहे, किनारा लगता तो एक आसान सा कैच दिनेश कार्तिक के दस्तानों में जाकर समा सकता था। पाकिस्तान की टीम का स्कोर अभी भी 113 6 विकेट के नुकसान पर, और जिस चतुराई के साथ भुवनेश्वर कुमार बीच बीच में अपनी कटर्स गेंदों का इस्तेमाल करते हैं, स्लोअर वंस का इस्तेमाल करते हैं, वो देखते ही बनता है। लगभग 135 किलोमीटर की रफ्तार
अमूमन उनकी गेंदों के रहती है अपनी गेंद भुवनेश्वर कुमार की, जो कि इस ओवर की अंतिम गेंद, और इस बार ऑफ स्टंप पर आती हुई इस गेंद को हल्के से पुश कर दिया, ऑफ साइड में दौड़कर एक रन पूरा कर लेंगे। हालांकि नॉन स्ट्राइकिंग एंड की तरफ थ्रो जरूर किया था फील्डर ने 30 गज के दायरे के अंदर से, लेकिन बैकअप वहां पर कोई नहीं कर रहा था। और देखना यह है कि क्या यहाँ पर ओवर थ्रो के रूप में कोई अतिरिक्त रन लेते हैं पाकिस्तान के खिलाड़ी या फिर नहीं। कोई रन वहां पर उन्होंने नहीं लिया और इस एक रन के इजाफे के साथ स्कोर अब पाकिस्तान की टीम का 114, 6 विकेट के नुकसान पर 17वें ओवर की समाप्ति इसी के साथ हो चुकी है। Interestingly, Pakistan's vehicle breaking down on the highway every now and then, because of which they have not been able to sort of accelerate their score, and because of which at the end of 17 overs we find them at 114 for the loss of 6 wickets. India winning the toss and deciding to bowl first, and they got 2 very good wickets inside the power play. And since then, Pakistan have tried to come back. There was a good partnership between Iftikhar and Rizwan, but then that did not culminate into something explosive. And even Asif Ali, who could have done that, who has done it time and again earlier for Pakistan, especially against India, was also out. In fact, caught deep in the over of Bhuvaneshwar Kumar. So, in fact, Bhuvaneshwar Kumar, if you look at his bowling, in fact, he has completed 3 overs, 2 wickets, and he has picked up 14 runs. So, 2 wickets for Bhuvaneshwar, 3 wickets for Hardik Pandya, and the Indian bowlers have done a very good job. And in fact, Avesh has picked up a wicket too. Arshdeep has done a decent job, has given away 12 runs in his 2 overs that he has bowled. India definitely would like to keep Pakistan under 130. And as Ashish, you mentioned, the Pakistan scoring run rate sort of has got capped. It's got sort of stagnated under 7 runs per over. It has not been able to go up, and whenever there has been an opportunity or whenever the batsmen have tried, they have succumbed, and that has been a bit of a problem. So let us see in the last 18 legal deliveries that are remaining, how many more runs can Pakistan make, because it's a big game. It's the first match for both these teams, and both these teams would, of course, like to start the campaign of this Asia Cup with a victory. But India definitely on the top right now. Arshdeep starts a new over. Left arm over the wicket, and good delivery outside the off stump. And Nawaz is beaten, edged into the gloves of Dinesh Karthik. Pakistan lose their 7th wicket, as if it's the slow motion, like the last few drops of the candle melting. That's how this was a soft dismissal. And Arshdeep bowling the right length, the ball leaving the batsman, and no foot movement whatsoever from Nawaz while playing that stroke, and edged a simple catch to Dinesh Karthik. So Arshdeep is also amongst the wicket. Pakistan look lost in the Dubai International Stadium. जी बिल्कुल, जिस तरह का प्रदर्शन T20 विश्व कप में रहा था लगभग 10 माह पूर्व, आज उसकी परछाई भर भी देखने को नहीं मिली जहां तक बल्लेबाजी का सवाल है पाकिस्तान की टीम की। और पाकिस्तान की टीम की सबसे बड़ी कमजोरी भी यही है, यदि उनका शीर्ष क्रम नहीं चलता तो कहीं ना कहीं उनका मध्यम क्रम पूरी तरह से चरमरा जाता है। और आज हमने यही देखा कि जिस तरह से बाबर आजम और फकर जमा के रूप में तो शुरुआती झटके पाकिस्तान की टीम को लगे, उसके बाद से बहुत ज्यादा सफल पाकिस्तान की बल्लेबाजी या पाकिस्तान की टीम कामयाब नहीं रही, और उसी का ये परिणाम है कि फिलहाल 7 विकेट पाकिस्तान के गिर चुके हैं। 114 का मात्र स्कोर अब तक बना है 17.1 ओवर की समाप्ति के बाद। हर्षदीप जो कि 23 वर्ष के हैं, गुना मध्य प्रदेश में पैदा हुए, लेकिन अपना घरेलू क्रिकेट पंजाब की तरफ से खेलते हैं और शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। जहां तक आईपीएल का सवाल है, 2021 आईपीएल के बाद की यदि बात करें तो डेथ ओवर में उम्रा के बाद उनका सर्वश्रेष्ठ इकोनॉमी रेट है, जो कि अपने आप में इस नौजवान युवा तेज गेंदबाज के लिए काफी एक बड़ी उपलब्धि है। No doubt about that, and you said it right. By the looks, it doesn't really give the impression that Arshdeep is capable of such kind of things, but he is a dangerous bowler. Coming left arm round the wicket for the new batsman. The first ball has been hit high in the air over the covers. It's high. It should be caught. In fact, Jadeja running from the position at cover inside the circle was running backwards as Haris Rauf, the new man who hit the ball in the air, and it was a bit away from Jadeja, who could not catch it. But once again, the batsman was not
in control of that stroke. So now it's for the lower order batsmen, the Pakistani bowlers, to do the needful, because the top order batsmen have not been able to perform, have not been able to deliver, and Shadab there will have to weave some magic with the tail-enders to get some runs. Whatever runs come from here, Ashish, will be bonus for Pakistan, as they are only at 116 for the loss of 7 wickets in the 18th over. Haris Rauf is on strike. He has opened his account with those couple of runs. Here comes Arshdeep, left arm round the wicket. Shot, trying to pull it, and almost a wicket there. As the ball came off the glove of Haris Rauf, Dinesh Karthik tried to dive. He almost reached, but ball trickles into the fine leg boundary for 4 runs. REC energizing chowk. That could have been a cracker of a catch if Dinesh Karthik would have been able to reach. He did reach it, got the glove, but sometimes, Ashish, if the ball gets sort of stuck in the web in such kind of situations, the ball sticks with you. That could have been a blinder if Dinesh Karthik would have caught that. एक और शॉर्ट पिच गेंद जिस पर मौका था वहां कार्तिक के लिए, और इस तरह की गेंदों को लपकना आसान नहीं होता, किसी भी विकेट कीपर के लिए अनुमान लगाना सहज नहीं होता। फिलहाल अर्शदीप तैयार है अपने ओवर की अगली गेंद पे। Once this time a Yorker, and how did it miss the stumps? Unbelievable. How did it miss the stumps? It just went under the bat of Haris Rauf, probably a mild deflection as the ball just off the bottom edge on the pipes and then in fact moved away. But what a delivery. Arshdeep is a very intelligent bowler, and you can see why the stat that you mentioned in the death bowlers is so apt for Arshdeep. अराउंड द विकेट गेंद थी और उन्होंने बहुत बढ़िया यॉर्कर का प्रयास किया था। राउंड ऑन एक्शन में अंदर की तरफ आती हुई गेंद थी। खुशकिस्मत रहे कि शादाब खान रऊफ वहां पर, हैरिस रऊफ अभी भी पिच मैदान पर मौजूद थे। 120 for the loss of 7 wickets this time. A slow one, trying to whack it out of the park, missing it completely, and in fact, last 4 wickets have come off 23 deliveries. So that means there have been regular fall of wickets, which is good for India. And Arshdeep really a very, very intelligent bowler. Knuckle delivery, a slower one there, completely foxing Haris Rauf at that particular occasion. And this is good news. The pressure has been built. The wrestler is down on the mat. It's now to pin him down. That's what the Indian bowlers are doing. Pakistan 120 for the loss of 7 wickets. Last ball of the over. Haris Rauf on strike. This time getting a full length delivery. Whacks it through the mid-wicket zone. That's a good stroke. Connects it well into the mid-wicket fence for runs. REC energizing chowk. So that is the end of over number 18. Pakistan 124 for the loss of 7 wickets. A very eventful over where the bowler got the better of the batsman on most of the occasion. But Haris Rauf, in fact, had restored some respectability in the end with that boundary, Ashish. बिल्कुल, और इस चौके की मदद से स्कोर अब पाकिस्तान की टीम का 124 7 विकेट के नुकसान पर। ओवर की अंतिम गेंद थी और अब 19वें ओवर की शुरुआत हो रही है। रनों की औसत रफ्तार अभी भी 7 से नीचे की बनी हुई है। 6.88 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बन रहे हैं। हैरिस रऊफ 10 रन बना चुके हैं 5 गेंदों का सामना करते हुए, जिसमें 2 चौके शामिल हैं, और साथ में उप कप्तान ने अब तक 6 रनों की पारी खेली है 7 गेंदों का सामना करते हुए, और कोई चौका अभी तक उनके बल्ले से देखने को नहीं मिला है। भुवनेश्वर कुमार अपने कोटे का अंतिम ओवर लेके शेख जायद रोड एंड से तैयार हैं और पहली गेंद का सामना करेंगे इस ओवर की शादाब खान। 6 के व्यक्तिगत स्कोर पर उनके लिए ऑफ साइड में 4 फील्डर 30 गज के दायरे के आसपास। पहली गेंद इस बार फुल टॉस से लेग स्टंप पर उठा करके खेल दिया डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में। कोई फील्डर वहां पर नहीं है और गेंद आसानी के साथ सीमा रेखा पर टकराती हुई 4 रनों के लिए। REC energizing chowk. इस चौके की मदद से पाकिस्तान की टीम का स्कोर 128 7 विकेट के नुकसान पर, जो प्रोजेक्टेड स्कोर है वो 140 के आसपास अब मंडराने लगा है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि T20 मुकाबलों में अक्सर डेथ ओवर्स में बल्लेबाज हर तरह का जोखिम उठा लेना चाहता है ताकि रनों की रफ्तार को बढ़ाया जा सके, और ऐसे ही इस समय कर रहे हैं पाकिस्तान के बल्लेबाज। पाकिस्तान के शादाब खान 10 के व्यक्तिगत स्कोर पर इस चौके की मदद से अगली गेंद और पैड पर जाकर टकराती हुई भुवनेश्वर की गेंद
गेंद और अंपायर को कोई हिचकिचाहट नहीं हुई, सीधा आकाश की तरफ उंगली उठी उनकी और इस तरह से पारी का संभवतः वहां पर समापन हो चुका है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या वहां पर रिव्यू के लिए जाएंगे शादाब खान या फिर नहीं। पाकिस्तान की टीम का स्कोर 128 है और पाकिस्तान ने रिव्यू ले लिया। 2 रिव्यू उनके बचे हुए हैं और मुझे लगता है पंकज बिल्कुल सही निर्णय है। जरा सी भी गुंजाइश हो, 1% की भी गुंजाइश हो, जब आपके पास 2 रिव्यू बचे हैं तो लेने में कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए थी। Look pretty plumb, but then what are you going to take with the reviews? You're not going to take back home. You're not going to get any discounts. Might as well take it, but looks pretty plumb. जी हाँ, बिल्कुल रिप्ले में देखने के बाद साफ नजर आ रहा है कि संभवतः गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं है और बिल्कुल स्टंप के सामने उनका जो बायां पैर था उस पर जाकर के गेंद टकराई है और जो आधिकारिक निर्णय है तीसरे अंपायर का उसका आना अभी बाकी है, उसका इंतजार है। लेकिन जो हमारे टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है स्लो मोशन में, वो देखकर हम अंदाजा लगा रहे हैं कि ये विकेट भारत के खाते में जाना चाहिए। तो जी हाँ, तीसरे अंपायर का निर्णय, आधिकारिक निर्णय आता हुआ ऑन फील्ड अंपायर के निर्णय की पुष्टि करते हुए और इस तरह से इस समय शादाब वापस पवेलियन लौट रहे हैं 6 रनों का योगदान देकर। 128 रन पाकिस्तान की टीम का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर। दिलचस्प होगा देखना कि क्या भारतीय टीम बचे हुए 2 विकेट भी समेट सकती है 20 निर्धारित ओवर के दौरान या फिर नहीं। That'll be interesting, but a very disciplined bowling by the Indians, and with the 6 bowler option, Ashish, the Indian bowling lineup is looking extremely vibrant, and that gives a lot of options to Rohit Sharma to use them as per the conditions. And today, of course, Hardik Pandya doing the needful, and of course, Harshdeep, Avesh, and Bhuvaneshwar coming to the party. जी हाँ, 3 विकेट भुवनेश्वर कुमार ने ले लिए हैं। हर्षल पटेल और बुमराह की अनुपस्थिति में ऐसा कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं कमजोर साबित होगा भारतीय आक्रमण, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसी बीच अगली गेंद वहां पर और फिर से जाकर पैड पर गेंद टकराती हुई इस बार मोहम्मद नसीम के और वहां पर एक बार फिर से अपील जबरदस्त और अंपायर की उंगली आकाश की तरफ। 9वां विकेट इस समय पाकिस्तान की टीम का गिर चुका है 128 के स्कोर पर और कहना होगा कि भुवनेश्वर कुमार इस समय हैट्रिक पर है। Yes, and Pakistan have taken a review again. Once again, very plumb and a very wonderful off-cutter within the stumps. Slower one for the tail-ender by Bhuvaneshwar Kumar, and the batsman had no answer whatsoever. Looks pretty plumb, but then Pakistan have taken another review. जी हाँ, रिव्यू लिया है और देखना ये है कि सबसे पहले कि क्या गेंद और बल्ले के संपर्क हुआ है। ऐसा कुछ अल्ट्राइज में नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन तीसरा अंपायर इसके बाद जरूर देखेंगे कि इम्पैक्ट कहाँ था और उसके बाद क्या गेंद जाकर स्टंप्स पर टकरा रही थी या फिर नहीं। लेकिन परेशानी में तमाम तरह के इस समय पाकिस्तान की टीम इस मुकाबले में कहा जा सकता है। टॉस हारकर आज पहले बल्लेबाजी करना उन्हें मुफीद साबित नहीं हुआ और जो गेंद है वो अंपायर्स कॉल वहां पर विकेट्स, तो अंपायर ने क्योंकि आउट दिया था इसलिए वापस जाना पड़ेगा। The 50-50 chance when it comes as far as a review is concerned, the machine cannot take a decision and you have to go back to the umpire. But now, in fact, Bhuvaneshwar Kumar is on a hat-trick. जी हाँ, न केवल हैट्रिक बल्कि अब तक T20 मुकाबलों में वो 3 मर्तबा 4 या 4 से ज्यादा विकेट लेने का श्रेय हासिल कर चुके हैं और अगर आज ये विकेट ले लेते हैं जो कि हैट्रिक बॉल पे है वो, और अगर ये विकेट वो हासिल कर लेते हैं तो ये चौथा अवसर होगा जबकि T20 मुकाबलों में वो 4 या 4 से ज्यादा विकेट हासिल करने का श्रेय प्राप्त कर। Very interesting. 9 wickets have gone down. Pakistan 128. In fact, Kunjesh, our statistician, quickly whispers in my ear that if Bhuvaneshwar Kumar is able to do that, he'll become the second Indian to do so after Yuzvendra Chahal, who did it against Bangladesh, if I'm not mistaken, in Nagpur. Here we are at the Dubai International Stadium. तो दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम पर इस समय दिलचस्प मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच। गेंद और बल्ले के बीच जो संघर्ष हो रहा है उसमें लगातार गेंद बल्ले पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। इस ओवर की पहली गेंद पर चौका लगाया था पाकिस्तान के बल्लेबाज ने भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर, लेकिन उसके बाद से लगातार 2 विकेट उन्होंने हासिल कर लिए हैं और अपने
अगली गेंद लेकर आगे बढ़ते हुए हैट्रिक बॉल पर भुवनेश्वर कुमार एक स्लिप के साथ अगली गेंद, लेकिन सीधा ऑफ स्टंप पर आती हुई इस गेंद को सीधे बल्ले से हल्के से पुश कर दिया ऑफ साइड की तरफ और थोड़ा आगे की तरफ निकल कर आ गए थे। स्टंप की तरफ थ्रो हुआ लेकिन अपने निशाने से काफी दूर। तो इस तरह से हैट्रिक बॉल पर सफलता नहीं मिली भुवनेश्वर कुमार को भले ही, लेकिन आज उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है। मात्र 18 रन देते हुए 3 सफलताएं उन्होंने अब तक हासिल कर ली हैं और 2 गेंदों का आना बाकी है उनके 4 ओवर के कोटे में। और सबसे बेहतरीन इकोनॉमी है उनकी भारतीय गेंदबाजों का जहां तक सवाल है इस मैच में 4.90 की अब तक। भुवनेश्वर कुमार तैयार, एक बार फिर से दाएं हाथ से ओवर द विकेट सामने उनके हैं दहानी। देखना है क्या कुछ कर पाते हैं इस बार। दहानी का पीछे की तरफ हटते हुए आड़े बल्ले से गेंद को उठा करके खेल दिया दर्शक दीर्घा में, गेंद सीधा जाकर 6 रनों के लिए। इसी तरह के शॉट्स की आवश्यकता है पाकिस्तान की टीम को। पाकिस्तान की टीम के लिए इस समय रन जरूरी हैं। मात्र 1 विकेट उनका सुरक्षित है और जानते हैं कि बहुत कुछ बचा नहीं है उनके लिए। ऐसे में हर किस्म का स्ट्रोक खेलने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान के ये दोनों बल्लेबाज और देखना यह है कि अपने प्रयास में वो किस तरह से यहाँ पर सफल हो पाते हैं। तो दहानी ने वहां पर ये सफलता हासिल की 6 रन लगाकर। शहनवाज दहानी अगली गेंद का सामना करने के लिए पहले ही हट गए थे लेग स्टंप की तरफ और बल्ले को उन्होंने घुमा दिया। गेंद बल्ले का भीतरी किनारा लेती हुई पहुंची थी वहां पर डीप स्क्वायर लेग की तरफ और इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जा सकता सूर्य कुमार यादव की तरफ से आसानी के साथ 2 रनों का इजाफा और होता हुआ और इसके साथ ही 19वां ओवर समाप्त होता हुआ। पाकिस्तान 19 ओवर की समाप्ति के बाद 136 9 विकेट के नुकसान पर और भुवनेश्वर कुमार के 4 ओवर का कोटा भी इसी के साथ समाप्त हुआ। 4 ओवर की गेंदबाजी में उन्होंने कोई मेडल नहीं, 26 रन दिए, 4 सफलताएं उन्होंने हासिल की 6.50 के इकोनॉमी के साथ। Eventful over from Bhuvaneshwar Kumar. He was on a hat trick, 2 wickets, and then a huge 6 by Dahani, and 9 wickets have fallen for Pakistan at a score of 136. They would be happy that at least they have gone past 130, and this is the अगर last over कॉपीराइट of स्ट्राइक this नहीं आती ना innings. कसम से मैं आपको लाइव मैच Pakistan दिखा था, लेकिन मैं reached दिखा नहीं सकता। 150 mark, मैं which माफी would be चाहता very, very हूँ, exciting लेकिन for हाँ them. But रेडियो Bhuvaneshwar बहुत Kumar तेज has होता है, completed टीवी 4 से पहले overs, रेडियो has बोल picked up देता 4 है। wickets. We will also have a special mid-innings program called Free Hit 2020. Please do not miss that. And I'm sure our experts मोबाइल भी गर्म हो गया, and V. Krishnaswamy ये will पुराना unleash मोबाइल है, some गर्म हो wonderful गया यार। anecdotes of India and Pakistan. And of course, our host will be Adesh Kumar Gupta and Sakshi Mandwal. Left arm round the wicket for the last over. Here comes Ashdeep. Short, slow, trying to कोई put रन that नहीं। ball. Haris Rauf does not connect. The ball goes to the keeper, and score remains at 136 for 9. The smiles on the face of Rauf and Dahani when they hit those strokes were really, photogenic moments, because you don't see, the tail enders do not get a lot of opportunity to play, and whenever they get an opportunity and if they hit some big strokes, they really are very, very happy, because then they can go back in the dressing room and tell the middle order batsman, it was your job, but we did it. But Pakistan need a lot more. 136 for 9. Here comes Arshdeep. Slow delivery, and Haris Rauf tries to hit that ball. It's in the covers, and Rohit Sharma अब कैच गिरा दिया। was running ओके अच्छा प्यो backwards, reached to that delivery but could not hold on to it. Will they come back for the 3rd run? No, in fact they have picked up 2 runs. Haris Rauf wanted to hit that ball on the onside, sliced it. The ball went high up in the air over the covers. Rohit Sharma was there, stationed at covers on the 30-yard circle. The ball going over his right shoulder. He kept on moving backwards, trying to keep an eye, but could not hold on to it. That would have been a blinder if Rohit Sharma would have held on to that. Nevertheless, a couple of runs there for Pakistan. Very, very valuable. 138 for 9. Haris Rauf goes up to 12. And Pakistani fans would be expecting some antiques, some agricultural strokes from these two, because whatever they get will be bonuses. In fact, 3 runs, that was I was thinking about, because Dahani was making a dash for the 3rd. They picked up 3 runs. This time, anticipating Dahani was the batsman. Arshdeep bowls that delivery in his legs. He somehow, with a cross bat, Dahani pushes it towards long on. By the time Virat Kohli gets that ball back, a couple of runs have been taken. Desperate running by both Dahani and Haris Rauf here at this particular moment. And why not? कोई नहीं, 65 सत्यान भाई देख लो, सुन लो। मैं माफी चाहता हूँ यार, मैं दिखा नहीं सकता, वरना हमारी चैनल का जो मकसद है वो खराब हो जाएगा। Can prove very, very crucial for
for Pakistan as they have gone up to 141 for the loss of 9. And then the run rate has gone up over 7. It has broken the threshold after a long, long time. It was under 7, almost about 90% of this particular match. Dhani is on strike. Arshdeep bowls a slow one. It's been pulled. Oh, that's a massive shot. Over mid एक लगा छक्का, another 6. ये What भी a ऐसा shot there 6. by Dhani. He is enjoying every moment out here at the Dubai International Stadium. And what a shot. He just connected it and it went up the middle of the bat. Arshdeep has given away 11 runs in this last over. He's an excellent death bowler. But this time, Dhani, with his unconventional approach, is making hay in the sun signs, of course. But 75 meters, what a shot that was. And he latched onto it. Can he get a couple of more? 150 is what Pakistan would be looking at. 147 is what they have reached already. Couple of deliveries left in this over. Ashish, this is turning out to be a completely different last couple of overs for India. They did so well. Rohit Sharma not happy at all with the situation. And at a time when we were anticipating Pakistan not even going past 135, they are closing into 150 Not very, very anticipating quickly. 130 बोला था भाई. Has to do something special. कमेंटेटर भी बहुत Dhani शान is है. batting on 16. He gets the Every next ball. delivery. A Yorker, clean Bold. bowled. Revenge served for Arshdeep. But what an innings by Dhani. And Pakistan are all out on 147. 47. That means India have a target of 148 to win this encounter of the Asia Cup. The first encounter in this particular tournament for both the matches, for both the teams in fact. And Haris Rauf unbeaten on 13. What an over this has turned out to be. A high scoring one, but in the end with a Yorker, Arshdeep is able to get the wicket. So Pakistan 147 all out. India need 148 runs to win. 4 wickets for Bhuvaneshwar, couple of wickets for Arshdeep, 3 wickets for Hardik Pandya and a wicket for Avesh Khan. So that's what भाई we have कोई in भी the जीते first innings. कोई भी Time now हारे, we move ये into our गेम special है. mid-inning show. इसको गेम की तरह लेना, बड़ा ही मेहरबानी. वरना पता ही है भैया फिर क्या क्या होता है. इसलिए रिलैक्स, चिल. साक्षी मनवाल. आकाशवाणी ले आया फिर से आपके लिए क्रिकेट का रोमांच। क्रिकेट एशिया कप 2022 के सभी मैचों का लाइव एक्शन। भारत के सभी मैचों का प्रसारण एफएम रेनबो नेटवर्क, प्राइमरी चैनल्स, एलआरएस, एफएम रिले चैनल्स, डीआरएम एंड डीटीएच और अन्य मैचों का प्रसारण एलआरएस, एफएम रिले चैनल्स, डीआरएम एंड डीटीएच पर सुन सकेंगे। तो सुनना ना भूलें क्रिकेट का लाइव एक्शन शाम 7 बजे से सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी पर। This commentary is brought to you by All India Radio in association with Channel 2, exclusive audio global right holders. All India Radio is back with live action of Asia Cup 2022. All India matches on FM Rainbow Networks, primary channels, LRS, FM Relay channels, DRM and DTH. All other matches will be broadcast on LRS, FM Relay channels, DRM and DTH. Just tune into All India Radio for live action of Cricket Asia Cup 2022 from 7 p.m. onwards. Free Hit 2020. हमें सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत-बहुत स्वागत है फ्री हिट 2020 में एंड व्हाट हैज बीन द फर्स्ट गेम टुडे इन एशिया कप एंड वी आर लुकिंग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान obviously the first encounter in this entire tournament. Well, Pakistan being put to bat first, putting a total score of 147 on board, India requiring 148 to win. I'm joined over here by my co-host Adesh Kumar Gupta and along with him we have over here V Krishnaswamy and Venkat Sundaram. जी सबका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और वेंकट आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया और भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, हार्दिक पांड्या इन्होंने जिस तरह से आपस में मिलकर 9 विकेट बांटे, क्या कहेंगे? I think the bowling was very accurate and bowled well. Actually, they bowled well. But 147 on this pitch where the ball is doing a little bit. You know, the fast bowlers are getting some movement. Is a good score. And Indian batting will have to look for a good start and the top 3 will have to click. Swami, अगर हम देखें 18th over में it was 114 for 7 when we started the 18th over precisely and then इन्होंने 147 बना लिया despite the good spell that Bhuvaneshwar Kumar put up 4 for 26. Your take on
conceding all the runs we conceded in the last 3 overs? So, I mean, not just last 3 overs, but even the last wicket, putting on almost 20 runs, They were, I think, 128, I think. Yes. The 8th and the 9th wicket fell down and there was a chance for a hat-trick. So I suppose that last bit, that last hurrah, as they call it, can be useful for Pakistan, could be a little embarrassing for India if things are sticky. But I still think India has enough firepower in our batting, to take on this, kind of target of 148. So I would say, but again, it's always food for thought, when you have, say, the last 2 overs, of course, the last 2 overs are always usually quite expensive. You gave Arshdeep a chance to bowl the death over the last one. And some runs were given, but I suppose it's all a question of experience. This is something what I'm sure Rohit also had in mind when he gave the ball to Arshdeep. और विकेट बॉलिंग तो बहुत अच्छी रही, लेकिन आपको लग रहा है कि आज कहीं ना कहीं फील्डिंग में काफी कुछ कमियां नजर आई? नहीं, मैं सोच रहा हूँ आज फील्डिंग भी अच्छा रहा, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये प्रेशर गेम है, इसमें तो आपको डाइव दिखेगा, कभी बॉल इधर, कैसे कोई एक कैच वो आप सोच सकते हैं कि रोहित शर्मा ने ड्रॉप किया लास्ट ओवर में, लेकिन इसके अलावा फील्डिंग अच्छा ही रहा, बहुत अच्छा रहा। इनफैक्ट मैं सोचता हूँ कि ये हमारा फील्डिंग और जो इवन कैप्टनसी वाज गुड, जिस तरह उन्होंने बॉलिंग चेंजेस किए थे, स्पिनर्स को लाए, एंड स्पिनर्स आल्सो बोल्ड वेल, दे वर ट्राइंग टू गेट विकेट्स। इस पिच पे ज्यादा स्पिनर्स के लिए कुछ खास है नहीं, मीडियम पेसर्स के लिए है, बाउंस भी है, 2-3 बैट्समैन शॉर्ट पिच बॉलिंग पे आउट हुए हैं, तो मेरे को लग रहा है कि इवन पाकिस्तान हैज गॉट गुड फास्ट बॉलर्स, तो मैच अच्छा रहेगा। Yes, and one other thing, Swami, भुवनेश्वर कुमार का तो स्पेल बहुत खूबसूरत रहा, 4 for 26 का हम बात करें, but हार्दिक पांड्या, another bowler who just pulled the right strings for us at the right time, and you were also mentioning that he might come out to be the main player for us today, which is Venkat भी बोल रहे थे, 4 overs में 3 wickets, 25 run, economy of 6.25, T20 के अंदर. What is your take on that? Sometimes it's not just the wickets, but also the quality of wickets and the quality of batsmen that you've dismissed. Rizwan at that point of time, when Pandya got him, caught by Avesh, I think what is a very, very crucial wicket. And, at that time when they were cruising at something like almost pretty much close to 100 for 3, and it was just 14 overs, and usually what they say, 50 over match, the score that you have at 30 overs, it usually gets doubled. So similarly in T20, what you have at about, say, 14 overs, even if it's not doubled, it can get to at least, say, another, sizable number. If Rizwan had continued, he could have well seen it go beyond 160, 170. He had his eye in. He is a good hitter of the ball. He's an excellent batsman. So I think that wicket was extremely crucial. That he also got Iftikhar and Kushti Shah also was an added bonus. And anyway, Hardik Pandya on any given day is an excellent all-rounder to have in your playing 11. और विकेट कितना अच्छा लगा, जबकि सबको बड़ा ताज्जुब हुआ कि ऋषभ पंत की जगह दिनेश कार्तिक मैदान में थे, लेकिन उन्होंने कमाल की विकेट कीपिंग की और अपनी हाइट से ज्यादा कैच पकड़े उन्होंने, और 3 बेहतरीन शिकार किए विकेट के पीछे। आप ये भी देखिए कि एक 4 भी हो सकता था, एक उनका ग्लव पे लग के चले गई, थोड़ा दूर था, लेकिन आप ये देखिए उनके ऊपर कितना प्रेशर होगा कि वो खेल रहे हैं और ऋषभ बाहर बैठे हैं, तो ये तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं आराम से, लेकिन मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ है, उनके ऊपर बहुत प्रेशर हुआ, उन्होंने बहुत अच्छी कीपिंग करी आज। और मैं समझता हूँ अब देखिए उनका कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि मैंने परफॉर्म कर दिया बिहाइंड द विकेट्स, अब मैं जाके 20 रन भी बना लूं और मैच जितवा दूं, तो लेकिन वो 6ठे नंबर पर आते हैं। अगर वो ऐसा हुआ तो स्वामी कई बार कहते हैं ड्रेसिंग रूम में, अगर 7वें 8वें नंबर तक बैट्समैन जाए तो फिर इसका मतलब टीम में मुश्किलें हैं क्या स्वामी? बिल्कुल, 8वें नंबर तक या 9वें या 10वें तक आ जाए, और मेरे जैसे विशेषज्ञ जो मतलब कि कुर्सी पे बैठ के बहुत सारी बातें कहते रहते हैं मैदान में जाए बिना, और वो कहें कि अगर आखिर के 2 ओवर में 12 रन और 13 रन पड़ गए, 20-22 रन पड़ गए, तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा डेस्परेशन भी था, जिस तरीके से जो अंतिम बल्लेबाजों ने जो है आड़े तिरछे
अच्छे मारा, 6 सिक्सेस भी पड़े लास्ट के 2 ओवर में 1-1। तो आई थिंक वो डेस्परेशन भी था, बट सडनली अगर स्कोर जो है 125 से 130 के बीच में से और 148 पहुंच जाए या 147 पहुंच जाए, वो 20 रन जो होते हैं आखिरी के, वो कई बारी T20 में महंगे पड़ सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आज महंगे पड़ेंगे, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की भारत की बल्लेबाजी इतनी काफी मजबूत है कि 148 का जो लक्ष्य है वो उसको आराम से पहुंच जाएंगे वहां तक। बट इस तरीके से 20 रन आखिर में देना थोड़ा सा मतलब कि दर्द जरूर। लेकिन स्वामी एक बात तो आप मानेंगे कि जब भारत के गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि मैच कछुए की गति से चल रहा है, लेकिन थोड़ा रोमांच जरूर है। क्यों नहीं, रोहित शर्मा को रोमांच नहीं आया। करेक्ट। लेकिन अगर देखें एक चीज वेंकट आपसे, आई कम टू आस्क यू कि 148 ऑन बोर्ड फॉर अस टू विन, 147 बने हैं ऑफ कोर्स, तो ये टारगेट काफी चेजेबल है ऑन दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की बात करते हैं इस पिच के ऊपर। एनी स्ट्रैटेजी जो आपको लगता है भारतीयों को लेकर उतरनी चाहिए व्हेन दे चेजिंग अ टारगेट लाइक 148 टू विन? कि ऐसा है कि फर्स्ट 6 ओवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। उस टाइम फील्ड रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं और बैट्समैन सोचता है कि मैं मारूंगा, लेकिन उनका फास्ट बॉलर्स अच्छे हैं। पाकिस्तान has always had good fast bowlers and you should not underestimate them. If they take 2-3 wickets at the top, this will be difficult for Indian team. And the top 3 in Indian team are shaky. Correct. So they have to play very carefully and at the same time they have to play aggressively because they have to dominate the bowling. और स्वामी रोहित शर्मा और केएल राहुल, जैसा कि इशारा किया वेंकट ने, और विराट कोहली, ये 3 ऐसी कड़ी। विराट कोहली लंबे समय से ज्यादा रन नहीं बना पा रहे, रन बना रहे हैं। केएल राहुल ने जिम्बाब्वे के खिलाफ कोई बड़ी पारियां नहीं खेली और रोहित शर्मा लंबे समय बाद टीम पर हैं। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान की कोशिश होगी कि कुछ फायदा उठाया जाए? बिल्कुल, जिस प्रकार से भारत के गेंदबाजों ने जो है शुरू में बाबर आजम को काफी तंग किया और उनको जो है एक छोटे से स्कोर पर आउट भी कर दिया, तो वही जो है कि कोशिश रहेगी पाकिस्तान के गेंदबाजों की भी। उनके पास भी कुछ नए गेंदबाज हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि मतलब ऐसा नहीं हुआ कि मतलब ये बहुत ही आसान होगा 148 का लक्ष्य मगर भारत इसके पक्ष में, भारत अभी भी पलड़ा जो है हल्का सा भारत के पक्ष में भारी है। Right, and for all our listeners who are tuning in, the biggest update that we're bringing today is कि इंडिया पाकिस्तान के इस मुकाबले में पाकिस्तान को जिनको पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतारा गया, they put a score of 147 on board. India looking to make 148 to win. Thank you so much, Swami. Thank you, Venkat. Thank you, Adesh ji, for joining us. We'll be back towards the end again. Free Hit 2020 इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता प्रवीण चंद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। आकाशवाणी ले आया फिर से आपके लिए क्रिकेट का रोमांच। क्रिकेट एशिया कप 2022 के सभी मैचों का लाइव एक्शन। भारत के सभी मैचों का प्रसारण FM रेनबो नेटवर्क, प्राइमरी चैनल्स, LRS, FM रिले चैनल्स, DRM एंड DTH और अन्य मैचों का प्रसारण LRS, FM रिले चैनल्स, DRM एंड DTH पर सुन सकेंगे। तो सुनना ना भूलें क्रिकेट का लाइव एक्शन शाम 7 बजे से सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी पर। For ball by ball commentary, let's go across to our commentary team for the live action. नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर एशिया कप के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे मुकाबले में भारतीय पारी की शुरुआत होने वाली है और जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की टीम 19.5 ओवर में 147 रन बनाते बनाते पूरी टीम उनकी आउट हो गई थी, पूरी तरह से सिमट गई थी और जवाब में अब भारत को जो लक्ष्य है वो 148 रनों का है और देखना यह है कि भारत इस लक्ष्य तक किस तरह ये मंजिल तय करता है। दिलचस्प होगा। केएल राहुल, विराट कोहली और रोहित शर्मा एक लंबे अरसे के बाद T20 मुकाबलों में एक साथ खेल रहे हैं भारत की तरफ से और दूसरी तरफ पाकिस्तान की गेंदबाजी का जहां तक सवाल है उसमें नसीम शाह जैसे युवा तेज गेंदबाज हैं जिन्होंने टेस्ट मैचों और एक दिवसीय मुकाबलों में अब तक शानदार प्रदर्शन किया है और आज अपना पहला T20 मुकाबला खेल रहे हैं और पहली ही गेंद उनके इस ओवर की
मिडिल लेग स्टंप पर हल्के से गेंद को पुश कर दिया ऑन साइड में, दौड़कर 1 रन आसानी के साथ पूरा कर लिया इस अवसर पर रोहित शर्मा ने, और खाता इसके साथ खुलता हुआ भारतीय पारी और रोहित शर्मा का 1 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के जीत के लिए 148 रनों की आवश्यकता है। राहुल अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं। राहुल जैसा कि आप जानते हैं कि आईपीएल 2022 के बाद उन्होंने बहुत ज्यादा क्रिकेट नहीं खेला है, मात्र जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 एक दिवसीय मुकाबले उन्होंने खेले जिसमें कोई बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन उनका नहीं रहा। हालांकि दुबई में पहुंचने के बाद उन्होंने पूर्व अभ्यास में कुछ अच्छे शॉट्स खेले और आत्मविश्वास हासिल करने की कोशिश की है, लेकिन देखना यह है कि क्या वो आत्मविश्वास आज प्रदर्शन में तब्दील हो पाता है या फिर नहीं। भारत को निश्चित रूप से एक अच्छी शुरुआत की आवश्यकता है, और ये देखते हुए कि पाकिस्तान के पास काफी उच्च कोटि के बोल्ड पहला आउट हो गया। शाह की और पहली गेंद जिसका सामना किया के राहुल ने टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आते हुए, और बल्ला उनका इससे पहले के नीचे आता, बैट और बैट के बीच में से गेंद निकलते हुए सीधा जाकर स्टंप पर टकराते हुए, और पहला नुकसान भारत को होता हुआ मात्र 1 के स्कोर पर। और शहंशाह अफरीदी जो कि इस समय मौजूद हैं स्टेडियम पर, उन्होंने खड़े होकर करतल ध्वनि के साथ नसीम शाह की इस गेंद का अभिनंदन किया, जिस तरह से गेंद टप्पा खाने के बाद बैट को लग के सीधे अंदर की तरफ आई और बल्ले का भीतरी किनारा लेती हुई सीधा जाकर स्टंप पर लगी, प्ले डाउन हो गए, और नसीम शाह को मिलने वाली T20 मैचों में ये पहली सफलता। तो भारत को एक झटका, और जैसा कि हम कह रहे थे कि राहुल ने बहुत ज्यादा क्रिकेट नहीं खेला है, लेकिन कहीं ना कहीं पूर्वाभ्यास में कुछ आत्मविश्वास हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, और पहली गेंद जिसका उन्होंने सामना किया उस पर अपना विकेट दे बैठे, और इस तरह से गोल्डन डक बनाकर वापस पवेलियन लौटे हैं राहुल। A very difficult situation for Rahul because he was locked completely. He was sort of stung by that, and there was no thought process going on, no foot movement at all, no movement of the bat, and the ball did the needful. But what a day for Naseem Shah, and what a beginning for Pakistan, because they need big wickets in the power play in order to defend 148 runs. विराट कोहली इसमें कुछ भी नहीं कह सकते हैं। स्थान लेने के लिए पहुंचे हैं राहुल का, और कहना होगा कि विराट कोहली भी बहुत ज्यादा अच्छे टच में नहीं है, आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। 2019 नवंबर के बाद से अब तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कोई शतक नहीं लगाया है। अगली गेंद विराट कोहली के लिए, और इस बार ऑप्शन से काफी ज्यादा बाहर थी और अपने स्टंप्स को कवर किया, विकेट को कवर करने के साथ ही गेंद को जाने दिया था विकेट कीपर रिजवान के दस्तानों की तरफ, और बल्ले को हवा में भी उठा लिया था। लेकिन जिस अंदाज में वहां पर नसीम शाह उनकी तरफ आए, ऐसा लगा कि जैसे स्टंप के काफी नजदीक से ये गेंद होकर के निकल रही हो, और विराट कोहली उनके इस हाव पर मुस्कुरा दिए, बोला कि किस तरह की आपकी मुद्रा है, मुझे समझ में नहीं आई। ये तो सही है, फनी था ये। किस्म के खिलाड़ी हैं, और इस समय विराट कोहली से एक बड़ी पारी की अपेक्षा है भारतीय टीम को। 16 एक दिवसीय मुकाबला खेल रहे हैं, और रॉस टेलर के बाद मात्र दूसरे ऐसे विश्व में खिलाड़ी जिन्होंने की सभी प्रारूप में 100 या 100 से ज्यादा मैच खेलने का अरे यार अच्छा शॉट नहीं क्या तो बच गया, प्रयास में बल्ले का किनारा दे बैठे, और दूसरी स्लिप पर बॉल बच गया कोहली फकर जमा मौजूद थे। गेंद को लपकने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन गेंद उनके हाथों से छिटकी, और इस तरह से जीवन दान मिलता हुआ विराट कोहली को मात्र दूसरी गेंद पर, जबकि अभी तक खाता भी उनका नहीं खुला है। और सबसे बाहर जाती हुई गेंदों पर छेड़खानी करना अक्सर विराट कोहली को काफी महंगा पड़ा है, लेकिन तारीफ करनी होगी इस युवा गेंदबाज के नसीम शाह की, जो मात्र 19 वर्ष की उनकी आयु है, लेकिन जिस अंदाज में गेंदबाजी करते हैं वो यकीनी तौर पे काबिले तारीफ है। विराट कोहली इस समय तमाम एकाग्रता हासिल करते हुए अगली गेंद लेग स्टंप पर कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को मोड़ दिया। इस समय लॉन्ग लेग की तरफ फील्डर मौजूद है, 1 रन से खाता खुल जाएगा विराट कोहली का। खिलाड़ी चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, पहले रन का दबाव हर फॉर्मेट में, हर मैच में रहता है खिलाड़ी के ऊपर। हालांकि 100वां मैच T20 का जहां तक सवाल है खेल रहे हैं। रॉस टेलर के बाद ये दूसरे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेस्ट मैच, ODI और T20 में 100 या 100 से ज्यादा
मैच खेलने का श्रेय हासिल किया है। भारत 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर 148 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए एक खराब शुरुआत भारत की। अगली गेंद इस बार रोहित शर्मा के लिए लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर की तरफ थी और इस गेंद को डाइव करने के प्रयास में पूरी तरह से कलाबाजी खा बैठे थे और ऐसे में लगता है कि कहीं ना कहीं उनके दाएं पैर की जो मांसपेशियां हैं उनमें खिंचाव आया है और ऐसे में यदि वो आगे अपने इस खेल को जारी नहीं रख पाए तो पाकिस्तान के लिए एक चुनौती भरा समय हो सकता है। बढ़िया गेंदबाजी, लेकिन जहां तक सवाल है नसीम शाह का, मात्र 19 वर्ष की उम्र और कहना होगा कि जिस तरह से उन्होंने 16 वर्ष की उम्र में ही हैट्रिक ले लिया था टेस्ट मैच में, उसके लिए काफी उनकी प्रशंसा हुई। धमाकेदार शुरुआत उन्होंने टेस्ट मैचों और ओडीआई मैचों में अब तक पाकिस्तान की टीम के लिए की है और शाहिनशाह अफरीदी ने भी जिस तरह से करतल ध्वनि के साथ उनका अभिनंदन किया जब उन्होंने केएल राहुल का आज विकेट चटकाया। मजे की बात यह है कि रोहित शर्मा की यदि बात करें तो एशिया कप में 2016 में पाकिस्तान के खिलाफ रोहित शर्मा के बल्ले से भी कोई बहुत ज्यादा रन नहीं निकले थे और पिछले मुकाबले में T20 जो कि विश्व कप इसी मैदान पर खेला गया था उसमें रोहित शर्मा गोल्डन डक पर आए हुए थे। आज रोहित शर्मा को एक बड़ी पारी खेलने की आवश्यकता है और देखना है कि वो क्या ऐसा कर। 2016 के एशिया कप में भी पाकिस्तान के खिलाफ रोहित अपना खाता नहीं खोल पाए थे और 0 पर वो आउट हो गए थे। आज उस तरह की पुनरावृत्ति की अपेक्षा निश्चित रूप से भारतीय क्रिकेट प्रेमी उनसे नहीं करेंगे। यहाँ पर निश्चित रूप से वो चाहेंगे कि एक बड़ा स्कोर खड़ा करें और शुरुआती झटका लगा है केएल राहुल के रूप में, उससे उभरकर भारतीय टीम यहाँ पर मजबूती के साथ जो 148 रनों का लक्ष्य है उसका पीछा करे। I just went into a flashback, when you were talking about that particular wicket. I just went back 10 months back and what had happened. But Naseem Shah really has got Pakistan in a very wonderful situation. And as you said, both Rohit Sharma as well as Virat Kohli right now, who are there in the middle, haven't been in the best of form, and that is not good news. Hence, the middle order for India will be challenged in this chase of 148 runs. जी बिल्कुल, अंतिम गेंद का आना बाकी है अभी नसीम शाह के इस ओवर की और उधर रिजवान अपने दाएं पैर की मांसपेशियों में जो खिंचाव आया है उसकी वजह से जमीन पर हैं। खेल इस वजह से रुका हुआ है बीच मैदान पर और यदि ये मांसपेशियों का जो खिंचाव है कहीं ना कहीं बाधा बना मोहम्मद रिजवान के इस मैच में बाकी के खेल को जारी रखने में तो फिर पाकिस्तान के लिए विकेट कीपिंग को लेकर कुछ दुश्वारियां पेश आ सकती हैं। फिलहाल 3 रन भारत का स्कोर, 148 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 1 विकेट के नुकसान पर काफी बढ़िया शुरुआत अपने डेब्यू मैच में T20 मुकाबले का जहां तक सवाल है नसीम कर चुके हैं और अब तक मात्र 3 रन देते हुए उन्होंने केएल राहुल का एक बेशकीमती विकेट हासिल कर दिया है। तो देखना यह है कि अंतिम गेंद पर क्या कुछ कर पाते हैं, जबकि स्ट्राइक लेने के लिए वहां पर तैयार हैं इस समय रोहित शर्मा जो कि 1 रन का इजाफा अब तक कर चुके हैं अपनी टीम के लिए। आज बड़ी पारी की आवश्यकता है। रोहित शर्मा जो कि टीम के कप्तान हैं, रिजवान अपनी जगह फिर से तैयार और अगली गेंद और इस बार बहुत बढ़िया गेंद धप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकलते हुए कॉट बिहाइंड की जबरदस्त अपील वहां पर, लेकिन अंपायर टच से मस नहीं। डीआरएस लेंगे बाबर आजम या फिर नहीं, देखने वाली बात होगी। 7 सेकंड का समय और शेष है। मोहम्मद रिजवान उनसे मंत्रणा करते हुए कह रहे हैं कि ले लो, रोहित शर्मा जैसा बड़ा खिलाड़ी है, 2 डीआरएस हमारे पास है, लेकिन अंततः बाबर आजम ने सही नहीं समझा टीआरएस को लेने में। संभवतः वो समझ गए थे कि गेंद और बल्ले के बीच में काफी बड़ा फासला था और ऐसे में डीआरएस लेने का मतलब था अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, एक रिव्यू बेकार कर देना और सही फैसला मैं कहूंगा बाबर आजम का। इसके साथ ही ओवर की भी समाप्ति हुई। 1 ओवर के बाद स्कोर भारत का 148 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। But Ashish, Pakistan are definitely pumped up. There's no doubt about it. The way the entire team gathered to appeal for that particular wicket when the ball beat the outside edge of the bat of Rohit Sharma was phenomenal, and they now see an opportunity. If they can get the top 3 Indian batsmen within 6 or 7 overs very, very quickly, in fact, that will be very important for them because they would like to get India under pressure. But as you said, all the Indian fans would be hoping that Virat Kohli now, in fact, in
this particular match in his 100 T20 international turns around and does something very, very interesting. Dahani will be bowling because he did very well with the bat. What can he do with the ball? Here comes for the first ball to Virat Kohli, incoming delivery, and in swinging, in fact, delivery, which is pushed into the onside by Virat Kohli straight to the fielder. India 3 for the loss of a wicket. And talking about Virat Kohli, Kunjesh Gupte, our statistician, has given an interesting number. Just imagine the workload, Ashish, of Virat Kohli. In all, this might be his 100 T20 international game, but overall, he has played 1,238 cricket matches in all, and that includes 102 tests, 262 ODIs, 100 T20 internationals, and all of the remaining are first-class List A or IPL matches. Once again, just outside the off-stump, Dahani bowls in cutting delivery. Somehow, Virat Kohli has got the bat into the ball. The ball hits his boot on the way and trickles towards the slip quadrant. So both the opening bowlers for Pakistan, Dahani as well as Naseem Shah, have got phenomenal pace. They are raw and they are absolutely exuberant when they are running in hard to bowl to any bowler, any batsman that they are bowling to. Virat Kohli, Rohit Sharma need to take a couple of overs, just calm down and in fact target a particular Pakistani bowler. Outside the off stump, fishing with it. Appeal there by Rizwan, but typical of Virat Kohli, hanging his bat outside the off stump, jumping and trying to drive, the ball beating the outside edge of the bat, and even though there was no connection with the bat, all the Pakistani fielders went up. This is the excitement and this is the opportunity that they are seeing now. In fact, Dahani and Naseem Shah are bowling. Haris Rauf is yet to come, who himself is a very, very quick bowler and has troubled Indians quite a bit. Second over in progress, 3 for the loss of a wicket India. Here comes Dahani. Over the wicket with 2 slips, outside the off-stump, driven, not connecting well. Somehow Virat Kohli gets it over. Babar Azam at mid-off, and a couple of runs have been taken. Good running between wickets, but that was risky as Virat Kohli tried to drive that ball. Probably the bat turned in his hand, and that's the reason why he could not connect it well. But nevertheless, this is going to be a mouth-watering contest. No doubt about it. Virat Kohli would love to take on the bowlers, but it's very difficult and a bit risky to take on someone like Dahani, who's bowling at about 140-144 kilometers per hour. So the speed, both the pacers for Pakistan doing the job. Babar Azam will be very happy. The fielding placement for Virat, 2 slips, there's a point, there's a cover mid-off. On the onside, there is a, in fact, the second slip is now coming to mid-wicket, and there's a fielder which is now placed at a square leg, and there's also a mid-on. So 3 fielders inside the circle on the onside. So just a slip for Virat Kohli now, who's batting on 3. India 5 for 1. Second over is in progress. Here comes Dahani. Shot pulled over the square leg fielder. Vintage Virat Kohli, 4 runs. REC Chowk, energizing India. Pulled towards the square leg, and this boundary will give him a lot of confidence, and even India will get a lot of confidence in that case, no doubt about that. The bounce that we were talking about, Ashish, in the first innings is not visible now in the second innings. This was a short delivery, but the bounce was not as much as we saw even, for example, when Hardik Pandya was bowling. So the pitch definitely changing its nature and its behavior over the period of time as Dahani gets ready to bowl the last ball of this over. India 9 for the loss of a wicket. Here comes Dahani outside the off-stump, tries to drive Virat Kohli inside edge. Lucky that it did not ricochet on the stumps. It trickles towards short fine leg for a single. Oh, that was close. End of 2 overs. India 10 for the loss of a wicket. But India under a lot of pressure because they are in trouble after the wicket of KL Rahul. But Virat Kohli is playing, but he is not very comfortable. On occasions, he has missed out and he has been beaten fair and square, and he is living on the edge. India has to be careful. T20 मुकाबलों में भारत का वर्चस्व रहा है जहां तक पाकिस्तान के खिलाफ हुए अब तक के मैच हैं। कुल मिलाकर 9 मैच इन दोनों देशों के बीच अब तक हुए हैं, जिसमें से 7 मर्तबा भारत ने विजय हासिल की है और इन 7 में वो मुकाबला भी शामिल है जो कि 2007 में T20 विश्व कप के दौरान खेला गया था इन दोनों देशों के बीच, जो कि टाई पर समाप्त हुआ था और भारत ने अंततः बोल आउट में उस मुकाबले को अपने पक्ष में किया था। तो सिर्फ 2 ही अवसरों पर T20 मैचेस में अब तक पाकिस्तान ने
भारत को शिकस्त दी है। 7 मरतबा भारत ने पाकिस्तान को पराजय का मुंह देखने पर मजबूर किया है। नए ओवर की शुरुआत हो रही है नसीम शाह के द्वारा। 19 वर्ष के नसीम शाह को एक विकेट की खुराक पहले ही ओवर में मिल चुकी है केएल राहुल के रूप में। इस ओवर की पहली गेंद विराट कोहली के लिए फ्रंट फुट पे जाकर इस गेंद को ऑन ड्राइव करना चाहते थे, लेकिन गेंद ठीक तरह से बल्ले पर आई नहीं और गेंद बल्ले से टकराती हुई फील्ड कर ली गई 30 गज के दायरे के अंदर शॉट मिड ऑन की दिशा में। नसीम शाह का रनअप काफी रिदमिक है, अच्छी लय के साथ दौड़ते हैं और क्रीज का खासा अच्छा इस्तेमाल करते हैं। वाइड ऑफ द क्रीज भी बॉलिंग करते हैं, स्टंप के बिल्कुल नजदीक रहकर भी बॉलिंग करते हैं और तमाम तरह की मुश्किलें वहां पर बल्लेबाज के लिए पैदा करते हैं। अगली गेंद शॉट ऑफ लेंथ और इस बार इस गेंद की लाइन के पीछे आकर के इस गेंद को हल्के से पुश कर दिया ऑफ साइड में। बहुत तेजी के साथ गेंद पर झपटे पॉइंट के खिलाड़ी गेंद पर और रन बनाने की तमाम संभावनाओं को वहां पर समाप्त कर दिया। पिछले विश्व कप के बाद जो कि 2021 में इसी मैदान पर हुआ था, यूएई में हुआ था और उसमें पराजय के बाद भारतीय टीम प्रबंधन ने टीम की सोच में परिवर्तन के लिए जो तमाम कोशिशें की हैं पिछले 10 महीनों में, उसका अभी तक कोई चित्रण नजर नहीं आ रहा। भारत की कोशिश थी कि एग्रेशन लाए अपनी बल्लेबाजी में, जो माइंडसेट है पहले सेफ्टी उसे पीछे छोड़ करके एग्रेशन के साथ बल्लेबाजी करे, लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा और उसका पूरा श्रेय देना होगा पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों को। दोनों ही छोर से कसावट भरी गेंदबाजी, इसी बीच अगली गेंद विराट कोहली के लिए और इस बार इस गेंद को मोड़ दिया कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए आसानी के साथ स्क्वायर लेग की दिशा में 1-2 रनों के लिए और 2 रनों की मदद से विराट कोहली पहुंचे दोहरे अंक में 10 के व्यक्तिगत स्कोर पर 12 गेंदों का सामना करने के बाद और भारतीय टीम का स्कोर 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। रोहित शर्मा से उम्मीद है कि वो एक एक्यूमुलेटर की जगह एक एग्रेसर की भूमिका निभाएंगे, लेकिन देखना यह है कि क्या उस रणनीति में उस ताने बाने के साथ बल्लेबाजी करने में कामयाब होते हैं या फिर नहीं। विराट कोहली ने पिछले मैच में भी जो पाकिस्तान के खिलाफ हुआ था काफी बढ़िया प्रदर्शन किया था और एकमात्र ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने कि उस मैच में कहीं ना कहीं पाकिस्तान के गेंदबाजों का डट के सामना किया था। अर्धशतक लगाते हुए 57 रनों की एक बेहतरीन पारी खेली थी T20 विश्व कप के उस मुकाबले में जो इसी मैदान पर खेला गया था 10 महीने पहले। भारत 13 1 विकेट के नुकसान पर। विराट कोहली 8वां मुकाबला खेल रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। 321 रन अब तक बनाए हैं, 80 का औसत है और जो कि निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। स्ट्राइक रेट 117 की और 3 अर्धशतक अब तक उनके बल्ले से निकले हैं। 78 नाबाद रन अब तक का उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर है T20 मुकाबलों में। अगली गेंद इसी बीच और इस बार इस गेंद को जो कि ऑप्शन से बाहर की तरफ थी बल्ले का मुंह खोलते हुए दिशा दे दी रोहित शर्मा ने। आसानी के साथ दौड़कर 1 रन पूरा कर लेंगे। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर के रोहित शर्मा का हुआ 2 और भारत का स्कोर 14 1 विकेट के नुकसान पर। विराट कोहली ने जिन्होंने कि लगभग पिछले 1 महीने से बल्ले को छुआ नहीं है, एक निजी चैनल को जो साक्षात्कार उन्होंने दिया, कहीं ना कहीं उसमें माना कि जो तारतम्य था उनके मानसिक तनाव में और शारीरिक क्षमता में, उसमें वो सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे थे और इसी कारण जो ब्रेक लिया उसमें उन्होंने बल्ले को हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन अब वापसी के लिए पूरी तरह से आतुर है। महान क्रिकेटर निश्चित रूप से अगर मैं कहूं विराट कोहली इस सदी के तो शायद गलत नहीं होगा। इसी बीच अगली गेंद विराट कोहली के लिए और इस बार इस गेंद को पुश कर दिया बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। स्क्वायरिश थर्ड मैन पर फील्डर मौजूद है सीमा रेखा के नजदीक। गेंद को उन्होंने फील्ड किया लेकिन तब तक आसानी के साथ इस अंतिम गेंद पर 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया और इस 1 रन की मदद से 3 ओवर की समाप्ति के बाद 148 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए अब भारत का स्कोर 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। विराट कोहली खेल रहे हैं 12 के व्यक्तिगत स्कोर पर 1 चौके की मदद से, जो कि 14 गेंदों का सामना करते हुए उन्होंने अब तक बनाए हैं और रोहित शर्मा अपेक्षाकृत शांत पारी खेल रहे हैं। मात्र 2 रन अब तक उनके बल्ले से निकले हैं। Yes, India was stung very early with that wicket of KL Rahul, but after that, Virat Kohli and Rohit Sharma have tried to stabilize, though Virat Kohli has not looked very comfortable or very fluid as such, and Pakistan would like to kind of exploit this particular situation, get the wicket of Virat Kohli as early as possible. Changing the bowling, Haris Rauf comes in place of Shahnawaz Dahani, and Dahani bowled a very interesting over. He gave away 7 runs in his first over, but Haris Rauf, a very, very quick bowler, and in
fact, he's known to be one of the top fast bowlers in Pakistan. Had a very good PSL season last time around, and he will be bowling to Virat Kohli, who's batting on 12. Right arm over the wicket with a slip in place. Haris Rauf on the middle stump, going on the back foot nicely, pushing it towards square leg for an easy single. India will move to 16, and Virat goes up to 13. 148 is the target for India to win this particular match. Pakistan sort of got a push, got a sort of a jump in the last couple of overs when the last pair of Dahani and Naseem went berserk and got some runs for them. Couple of hits by Shahnawaz Dahani over the boundary that helped Pakistan reach 147. They were all out, and 148 is the target. Pakistan also didn't get a good start. They lost 2 wickets in the power play, and in the next one to Rohit Sharma outside the off-stump, the ball skidding, beating the outside edge of the bat and going into the gloves of Rizwan. Whenever the ball goes into the gloves of Mohammad Rizwan, the keeper, he just jumps up, giving an impression that there was an edge and there could have been a wicket. That is the because they know that they need to put this Indian batting lineup under pressure and get into the middle order by picking up quick wickets in the power play. 4th over is in progress, and Rohit has been at the other end, has got a lot of strike, has played only 4 deliveries, coming down the track, trying to hit the ball over the bowler, but the bat turning in his hand, and it goes off the bottom of the bat towards wideish mid-on for a single. So Rohit and Virat, both of them are trying to show their aggressive side, because they know that the first 5-7 overs, if you get a good start, if you go, in fact, get a flyer, that will help build momentum and continue the journey towards 148, because 148 as a number in T20 doesn't really sound big, but then on this track, in these conditions, it's a challenging total to chase. Virat Kohli outside the off stump, the ball from Haris Rauf pushed towards point. No run on that occasion. All the 3 bowlers, Shahnawaz Dahani, Naseem Shah and Haris Rauf, bowling at 143, 144 kilometers per hour. Absolute brilliant pace battery that Pakistan have, and if they can actually exploit these kind of conditions, they will really be dominant in this particular Asia Cup. But as you also mentioned earlier, Ashish, they're batting, they're too dependent on the top 3, and if they're able to come out of that, if the middle order starts working for Pakistan, they can be a force to reckon with in this particular championship. But India, right now, with the target in mind of 148, Indian fans expecting some fireworks now. Here comes Haris Rauf. Shot pulled, top edge for Virat Kohli. Over the keeper. Goes all the way for... the umpire is confirming, so I'll just continue with the antiques. Is it a 4 or a 6? Looks like a 6, Ashish, but quick delivery, shot. The bounce was there. Virat Kohli went for the pull, top edge, and looks like it has gone all the way into the side screen behind the wicket keeper. Or yes, it looks like it, and should be called as a 6, and it's 6 runs. It is. So Virat Kohli getting a lucky 6, 23 for the loss of a wicket. Now Haris Rauf trying to sort of intimidate the Indian batsman with those short deliveries, but it turns out to be half a dozen runs. This in fact, the Pakistani batsmen are a bit unlucky because they attempted similar strokes, but they all got out. Here comes Haris Rauf down the leg side, slow one, and that could have been a wicket because there was a shot, fine leg fielder in the form of Khushdil. The ball just bouncing in front of him. End of 4 overs, India 23 for the loss of a wicket. 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर। This commentary is brought to you by All India Radio in association with Channel 2, exclusive audio global right holders. तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान के जो लक्ष्य दिया भारत को 148 रनों का, उसके जवाब में 4 ओवर की समाप्ति के बाद भारत ने अब तक 23 रन बना लिए हैं 1 विकेट के नुकसान पर। रोहित शर्मा टीम के कप्तान ने अब तक 3 रन बनाए हैं 5 गेंदों का सामना करने के बाद, और विराट कोहली ने एक चौके और एक छक्के की मदद से 19 रन अब तक बना लिए हैं 18 गेंदों का सामना करने के साथ ही। विराट कोहली निश्चित रूप से
वापसी करना चाहेंगे और एक धमाकेदार वापसी करना चाहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है भारतीय टीम के लिए और एक महान क्रिकेटर की श्रेणी में अपने आप को ला करके खड़ा की है। ये अलग बात है कि पिछले कुछ समय से वो फॉर्म में नहीं चल रहे, लेकिन क्लास, जैसा कि हम क्रिकेट में अक्सर कहा करते हैं कि क्लास हमेशा परमानेंट होती है, फॉर्म आती जाती रहती है और कौन जाने कि आज ही वो दिन हो जबकि फॉर्म उनकी लौट करके वापस आए। और भारत के तमाम क्रिकेट प्रेमी यही चाहेंगे। फिलहाल नए ओवर की शुरुआत होती हुई धानी के द्वारा पहली गेंद ऑफर मिडल स्टंप पर सीधे बल्ले से बैक टू द बॉलर, हल्के हाथों से पुश किया, फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड कर लिया गया बिना किसी रन के। विराट कोहली का यदि T20 में अब तक का प्रदर्शन देखें तो इस मैच से पूर्व मोहम्मद रिजवान के बाद सबसे बेहतरीन औसत था उनका 50.12 का उनका औसत, जबकि 50.3 के आसपास का औसत मोहम्मद रिजवान का। तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं था दोनों में और आज तमाम संभावनाएं हैं कि यहाँ पर वो मोहम्मद रिजवान के उस औसत को भी पार कर जाएं। फिलहाल अगली गेंद और इस बार इस गेंद को खेलने के प्रयास में पूरी तरह से चूकते हुए रोहित शर्मा, कॉट बिहाइंड की अपील जबरदस्त वहां पर गेंदबाज और विकेट कीपर के द्वारा, लेकिन अंपायर पर उसका कोई प्रभाव नहीं। अपराइट सीम के साथ बढ़िया गेंदबाजी और इस बार अपने बल्ले को काफी पहले ही चला बैठे थे। गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा रुक करके आई, बिल्कुल अपराइट सीम के साथ ही, और बाकी का काम पूरा किया मोहम्मद रिजवान ने। खुशकिस्मत वहां पर रोहित शर्मा के गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। 3 के व्यक्तिगत स्कोर पर रोहित शर्मा इस समय तमाम तरह की परेशानियों में नजर आ रहे हैं। अगली गेंद इस बार स्टंप के नजदीक से ऑप्शन पे बाहर थी और बल्ले को आड़ा करते हुए गेंद को दिशा दे दी थर्ड मैन की तरफ। फील्डर वहां पर मौजूद है इस समय हैरिस रॉफ के रूप में। गेंद को उन्होंने फील्ड किया लेकिन आसानी के साथ 1 रन के लिए छोर बदल लिया और इस 1 रन की सहायता से रोहित शर्मा का व्यक्तिगत स्कोर बढ़कर पहुंचा 4 और भारत 24 1 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले की समाप्ति में अभी 1 ओवर और 3 गेंदों का आना बाकी है, यानी कि कुल मिलाकर 9 अधिकृत गेंदें होनी बाकी हैं अभी पावर प्ले की समाप्ति में। और विराट कोहली फिलहाल तैयार है। खूबसूरत स्टेडियम, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, और जो इसकी छत की परिधि है, आमतौर पर आपने देखा होगा कि स्टेडियम में जो प्रकाश स्तंभों पर कृत्रिम प्रकाश के बल्ब लगे होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो उसकी वृत्ताकार परिधि है उसमें ये लाइटें हैं, फ्लड लाइट्स हैं और बहुत ही सुंदर लगती हैं देखने में। इसी बीच अगले गेंद विराट कोहली के लिए और इस बार इस गेंद को उठा करके खेल दिया पॉइंट के ऊपर से, गेंद सीमा रेखा से बाहर दंदनाते हुए 4 रनों के लिए। REC चौका, energizing India. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर इसी तरह के स्ट्रोक्स इस समय तमाम भारतीय प्रशंसक देखना चाहते हैं। और जैसे ही गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क हुआ था, क्या अंजाम होगा इस गेंद का वो बिल्कुल साफ हो गया था। गेंद हवा में काफी ऊपर उछलती हुई सीधा बैकवर्ड पॉइंट से होती हुई 4 रनों के लिए सीमा रेखा से बाहर चली गई थी। कोई मौका नहीं था वहां पर किसी भी खिलाड़ी के लिए उस गेंद तक पहुंचने का और झूम उठे तमाम दर्शक स्टेडियम पर बैठे हुए। इसी बीच धानी की अगली गेंद ऑफ स्टंप पर और इस बार गेंद की लाइन के पीछे आकर बिल्कुल सुरक्षात्मक ढंग से इस गेंद को खेला, बल्ले को थोड़ा सा तिरछा करते हुए बैट से टकराती हुई गेंद फील्ड कर ली गई ऑफसाइड में बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में 30 गज के दायरे के अंदर बिना किसी रन के। 4.5 ओवर की समाप्ति के बाद भारत 148 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए फिलहाल 28 है 1 विकेट के नुकसान पर। रनों की औसत रफ्तार की यदि बात करें तो 5.8 के आसपास इस समय भारतीय पारी का औसत स्कोर मंडरा रहा है और रनों के जो औसत रफ्तार है वो कोई निश्चित रूप से समय चिंता का विषय नहीं है। आवश्यकता भारत को ये है कि भारत यहाँ से अपने विकेट सुरक्षित रखे और रनों की गति को बरकरार रखे। किसी भी चकली गेंद इस बार बैकआउट गए तो बैकआउट पे जाकर खूबसूरती के साथ इस गेंद को पंच कर दिया था कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से। गेंद इससे पहले कि फील्ड की जा सके आसानी के साथ दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया और इस 1 रन की मदद से स्कोर हुआ 29 1 विकेट के नुकसान पर। 5वें ओवर की भी समाप्ति हुई। So India slowly moving towards a very stabilized partnership between Rohit Sharma and Virat Kohli, and both Rohit and Virat have attempted some extravagant strokes which they couldn't connect, but good to see that Virat Kohli is amongst the runs. He's batting on 24 and as an earlier number given to us by a statistician Kunjesh Gupta, he mentioned that inclusive of all the matches that he has played, including test matches, ODIs, T20s, first class, list A and the IPL, 1238 matches is what Virat Kohli has played.
and that's the reason why we love him so much and we expect so much from him. Overall, if we count all the runs, 58,000 plus runs has been scored or have been scored by Virat Kohli. Unbelievable. Thank you, Kunjesh, for those numbers, and those include a combined of 166 centuries and 308 half centuries. Unbelievable. For a T20 game, we need more, and that's the reason why we are getting you all these numbers on All India Radio on our broadcast. The average is 48 overall, inclusive of all matches. Please remember that. But right now, Haris Rav will be bowling to Virat Kohli. India 29 for 1. This time on the off stump, bat together, giving enough respect to that delivery. Good length one, not really too much to drive, not much to go on the back foot. So pushed towards mid-on by Virat Kohli. Both Rohit and Virat have also made sure that they have not gone berserk. They have not gone all out, and they have given enough respect and played as per the situation and as per the delivery, and that's the reason why they have been able to stabilize this whole innings after KL Rahul was out very early in the very first over. But India require another 119 runs from here. A sixth over is in progress. That means it's the last over of the power play. Slightly short, pull, trademark Virat Kohli stroke, front foot pull stroke, one bounce into mid wicket, 4 runs. REC Chowka, energizing India. Stand and deliver. What an elegant stroke. And Ashish, whenever Virat plays this kind of a stroke, it looks effortless, though a lot went behind the scenes in his mind. 145 किलोमीटर की रफ्तार थी इस गेंद को, लेकिन जिस सहजता के साथ उसे फ्रंट ऑफ द विकेट उन्होंने खेला वो देखते ही बनता है। और एक बाउंस के बाद गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई थी 4 रनों के लिए। 33 एक विकेट के नुकसान पर भारतीय टीम का स्कोर इस समय। विराट कोहली बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। अगली गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ और ऑफ स्टंप से बाहर इस गेंद को बल्ले को आड़ा करते हुए दिशावर दे दी। स्क्वायरिश थर्ड मैन पर फील्डर मौजूद है। 1 रन से ही संतोष करना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ भारत 34 एक विकेट के नुकसान पर 3 गेंदों का आना बाकी है इस ओवर में। We'll have to see how Babar Azam executes his plans, because the top 3 bowlers, they got an early wicket, but otherwise they have not been able to kind of go further into the Indian batting lineup. The expectation was, get a couple of wickets or maybe 3 wickets in the power play and then put the pressure on the Indian batting. But Babar Azam will have to rely on his spinners. He has the services of Shadab, also part-time services of Iftikhar and Asif Ali if required. But Pakistan need a wicket. Ball down the leg side by Haris Rauf and Virat, in fact, Rohit Sharma wanted to flick it over square leg, but the ball goes off the legs in the fine leg zone for 4 leg byes. REC Chowka, energizing India. Straying down the leg side, and Virat, in fact, Rohit Sharma wanted to flick it. If he would have connected, that would have been an awesome stroke over backward square leg. But it was a slower delivery which went down the leg side and 4 leg byes. India won't mind them, because as many runs come in these particular overs, that will help India build the momentum. 38 for the loss of a wicket is the score. Rohit Sharma is batting on 4 because he has only got 9 deliveries that he has faced till now. Virat Kohli has had the bulk of the strike. Rohit on strike and good ball. What a delivery. Out cutter on the off stump, bouncing, moving away. Rohit Sharma completely foxed, but lucky escape. There was kitten's whiskers between the bat and the ball, but what a beautiful delivery there by Haris Rauf. And this is what is very, very dangerous. And he can really create those opportunities, and he can just get those fingers on the ball. The wrist movement is so good at the last moment, and the pace of the delivery is also very good. Keeps a lot of control on such kind of deliveries, Haris Rauf. But Haris Rauf would expect such kind of deliveries to prove lucky for him if they would have kissed the outside edge of the bat. Rohit on strike, 38 for 1. Once again on the back foot, punched it, square the wicket straight to Shadab at point. No run on that occasion. An end of 6 overs. India are 38 for the loss of a wicket. Both these batsmen have stabilized the Indian innings, Ashish, especially the way, in fact, nervous start for Virat Kohli, but he has done bulk of the scoring, which has helped India stabilize. 29 रन अब तक बना चुके हैं 24 गेंदों का सामना करते हुए, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का था। और पिछले ओवर के दौरान जो चौका उन्होंने लगाया मिड विकेट क्षेत्र में, वो बेहतरीन टाइमिंग के साथ खेला हुआ स्ट्रोक, आत्मविश्वास से भरा हुआ स्ट्रोक, और जो कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि विराट कोहली संभवतः
इस मैच में ही अपनी फॉर्म में वापस लौट रहे हैं, अपनी फॉर्म में। पावर प्ले स्कोर्स की अगर हम तुलना करें तो पाकिस्तान ने 6 ओवर में 43 रन बनाए थे 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि भारत ने जवाब में 38 रन बनाए हैं 1 विकेट के नुकसान पर। तो मुकाबला कमोबेश फिलहाल बराबरी का। ये कहना फिलहाल मुश्किल है कि किसकी तरफ ये पड़ा फिलहाल झुका हुआ है इस मैच में, लेकिन निश्चित रूप से जो कश्मकश है, जो संघर्ष है गेंद और बल्ले के बीच में, वो लगातार जारी है। और पावर प्ले जैसे ही समाप्त हुआ, स्पिन गेंदबाजी का समावेश किया है वहां पर कप्तान बाबर आजम ने, और शादाब खान जो कि टीम के उप कप्तान हैं, वो इस समय गेंदबाजी के मोर्चे पर हैं। पहली गेंद फ्लाइटेड, दाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं, लेग ब्रेक गेंदबाज हैं। पहली गेंद पर कोई रन नहीं। अगली गेंद विराट कोहली खेलने के लिए तैयार 29 के व्यक्तिगत स्कोर पर, और इस बार कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद की पिच तक पहुंचे। गेंद को बैक टू द बॉलर, हवा में खेलने का प्रयास उन्होंने किया था, लेकिन रोहित शर्मा सामने आ गए और संभवतः गेंद उनको टकराई है हाथ पे, जिसकी वजह से थोड़ा सा परेशानी में रोहित शर्मा इस समय नजर आ रहे हैं। लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट है, जो कि इस बात का संकेत है कि वहां पर परेशानी वाली कोई स्थिति नहीं है। सीधा जाकर गेंद उनकी चेस्ट की तरफ आ रही थी, लेकिन गेंद चेस्ट पर ना लगे, इसलिए उन्होंने हाथ से गेंद को रोकने का प्रयास किया था वहां पर। रोहित शर्मा थोड़ा सा मुस्कुराते हुए, जवाब में हंसकर मुस्कुराकर विराट कोहली ने भी उनको उत्तर दिया, और विराट कोहली इस समय निश्चित रूप से काफी आत्मविश्वास से भरी हुई पारी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। अगली गेंद इस बार विराट कोहली के लिए टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकल रही थी, लेग ब्रेक होने के साथ ही, लेकिन गेंद की लाइन के पीछे आकर हल्के से बैक टू द बॉलर गेंद को पुश किया। इस अवसर पर रोहित शर्मा ने रनों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं, और भारत का स्कोर अभी भी 39 1 विकेट के नुकसान पर। 109 रनों की आवश्यकता है भारत को बची हुई 81 गेंदों में, और 9 विकेट भारत के सुरक्षित। इसी बीच अगली गेंद, और इस बार पूरी तरह से बीट होते हुए टप्पा खाने के बाद दाएं हाथ के बल्लेबाज रोहित शर्मा को छकाती हुई गेंद उनके बल्ले के काफी नजदीक से निकल गई थी। सीधा विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान के दस्तानों में जाकर कैद हुई, और वहां पर स्टंप के ऊपर से गिल्लियां भी बिखेर दी थी मोहम्मद रिजवान ने। न केवल कॉर्ड बहन की अपील थी, बल्कि स्टंपिंग की अपील भी थी, लेकिन उसे वहां पर अंपायर ने खारिज कर दिया। देखना यह है कि क्या अंपायर वहां पर तीसरे अंपायर के लिए जाते हैं, क्योंकि रिजवान कह रहे हैं कि मैंने वहां पर स्टंपिंग की अपील की है, तो कायदे से आपको वहां पर तीसरे अंपायर का निर्णय लेना चाहिए था, और उन्होंने कहा कि मैंने वो लिया है, और मुझे इंतजार है तीसरे अंपायर अपना क्या निर्णय देते हैं उस स्टंपिंग के अवसर पर। इस समय लगातार जो संघर्ष है गेंद और बल्ले के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर चलता हुआ, और हर गेंद एक घटना के रूप में प्रतीत हो रही है। निश्चित रूप से रोहित शर्मा बहुत ज्यादा आत्मविश्वास में फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं, और इस समय जो रिव्यू लिया जा रहा है अंपायर के द्वारा, उसमें पहले देखा जा रहा है कि क्या गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क हुआ या फिर नहीं। उसके बाद जब स्टंप के ऊपर से गिल्लियां बिखेरी गईं, तो क्या रोहित शर्मा का पांव क्रीज के अंदर था, हवा में था या फिर नहीं। लेकिन रिप्ले देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि वो क्रीज में सुरक्षित थे और उनका पैर जमीन पर टिका हुआ था। और इसी बीच तीसरे अंपायर का भी निर्णय आता हुआ एक जायंट स्क्रीन पर स्टेडियम पर, जो कि ये बताता हुआ कि विराट कोहली वहां पर सुरक्षित है। तो शादाब का एक महत्वपूर्ण घटनापूर्ण और इस समय चलता हुआ लगातार परेशानियों में डाले हुए समय रोहित शर्मा को, लेकिन अगली गेंद, और इस बार गेंद की पिच के नजदीक पहुंचकर, जो कि मिडिल और लेग स्टंप पर थी, हल्के से गेंद को पुश कर दिया ऑन साइड में। गेंद को वहां पर फील्ड किया जा रहा है मिडिल विकेट क्षेत्र में, लेकिन आसानी के साथ दौड़कर 1 रन पूरा कर लेंगे इससे पहले कि गेंद फील्ड हो सके। इस 1 रन के साथ नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर अब रोहित शर्मा थोड़ी सी राहत की सांस ली होगी, और विराट कोहली इस समय स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है अपने 30 के व्यक्तिगत स्कोर पर। शादाब के इस ओवर की अंतिम गेंद, और बैकफुट पे जाकर खूबसूरती के साथ इस गेंद को स्क्वायर कट कर दिया, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद है डीप पॉइंट के क्षेत्र में। गेंद को उन्होंने फील्ड किया। 1 रन से ज्यादा नहीं मिल पाएगा इस अंतिम गेंद पर विराट कोहली को, और इसके साथ ही ओवर की भी समाप्ति हुई। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 148 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए फिलहाल भारत ने 41 रन बना लिए हैं 1 विकेट के नुकसान पर। रोहित शर्मा 5 रन बनाकर खेल रहे हैं। विराट कोहली ने अब तक बढ़िया पारी खेली है, 27 गेंदों में 31 रन, जिसमें 3 चौके 1 छक्का शामिल है, और स्ट्राइक रेट उनका 114 के आसपास। लेकिन रोहित शर्मा कहीं ना कहीं अब तक आत्मविश्वास से बल्लेबाजी करने में कामयाब नहीं हुए हैं, और उनका स्ट्राइक रेट अब तक 14 गेंदों में सिर्फ 5 रन, 35 के आसपास का स्ट्राइक रेट, जो कि अपने आप में पूरी कहानी बयान कर देता है।
Ashish, is not going to be easy because overall this wicket becomes very sticky whenever the slower bowlers come into picture. Mohammad Nawaz, the left arm spinner, is now into action, and whenever the faster bowlers are there, the bounce is quite precarious, and that's the reason why Rohit and Virat haven't really gone after the bowling. They have been circumspect, they have been careful. इसे क्या हो गया? दिया गया बिना किसी रन के। रावलपिंडी से आते हैं मोहम्मद नवाज, और रावलपिंडी की वो धरती, वो भूमि, वो मिट्टी जिसने पाकिस्तान को शोएब अख्तर, अजहर महमूद और मोहम्मद वासिम जैसे तमाम तेज गेंदबाज दिए हैं। इसी बीच अगली गेंद, और इस बार इस गेंद को लॉफ कर दिया। गेंद हवा में काफी ऊपर है, लेकिन फील्डर गेंद के नीचे वहां पर, और इसके साथ ही ये सफलता मिलती हुई इस समय मोहम्मद नवाज को, और दूसरा विकेट भारत का गिरता हुआ रोहित शर्मा के रूप में 12 के व्यक्तिगत स्कोर पर इस समय वापस पवेलियन लौट रहे हैं काफी निराश कदमों के साथ। 8वें ओवर की अंतिम गेंद पर ये सफलता मोहम्मद नवाज को अपने पहले ही ओवर में इस तरह से मिल चुकी है, और कहना होगा कि रोहित शर्मा कहीं ना कहीं इस अवसर पर उस झांसे में फंस गए जिस झांसे में फंसाना चाहते थे मोहम्मद नवाज। गेंद को थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ किया, कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद की पिच तक आना चाहते थे, गेंद को उन्होंने लॉफ्ट कर दिया। गेंद ज्यादा दूरी हासिल नहीं कर पाई, हवा में ज्यादा उड़ गई थी, और वहां पर इफ्तिकार ने कोई गलती नहीं की, एक अच्छे पूर्वानुमान के साथ एक बेहतरीन कैच मुकम्मल किया, और इसके साथ ही भारतीय टीम को दूसरा झटका दिया। This commentary is brought to you by All India Radio in association with Channel 2, exclusive audio global right holders. Big wicket there for Pakistan, and Mohammad Nawaz has done the trick. Rohit Sharma, of course, hit him for a huge six. I thought that it was like a reaction when we are in the chemistry lab and the liquid just starts boiling after reaching the boiling point. I thought that was the point where Rohit Sharma reached, but that was not the case. Big wicket, 50 for 2. But Ravindra Jadeja looks like a left and a right hand combination is what India is looking for.
टीम में शायद ऋषभ पंत होते तो संभवतः वो यहाँ पर देखे जा सकते थे लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, लेकिन चूंकि आज दिनेश कार्तिक मैदान पर हैं उनकी जगह पर, तो ऐसे में जडेजा को वहां पर भेजा गया है। शादाब खान नए ओवर की शुरुआत करते हुए, विराट कोहली उनके सामने हैं पहली गेंद के, और इस बार गेंद के पिच के नजदीक पहुंचकर सीधे बल्ले से बैक टू द बॉलर हल्के हाथों से पुश कर दिया। फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया। रनों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं। स्कोर भारत का 50, अभी भी 2 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद, और इस बार गेंद के टर्न होने का इंतजार किया। बैकफुट पे जाकर कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को दिशा दे रही मिड विकेट क्षेत्र में। फील्डर वहां पर मौजूद है। इससे पहले कि मोहम्मद नवाज गेंद को वहां पर फील्ड कर सके, थ्रो कर सके आसानी के साथ, तो दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन के लिए अपने छोर को बदल दिया। 51, 2 विकेट के नुकसान पर जडेजा से इस समय काफी उम्मीदें हैं भारतीय टीम को कि यहाँ पर विराट कोहली के साथ मिलकर वो एक बड़ी पारी खेले, एक बड़ी साझेदारी दे, और देखना यह है कि क्या अपने इरादे में वो कामयाब हो पाते हैं या फिर नहीं। अब तक 62 T20 के मुकाबले उन्होंने खेले हैं, 422 रन और 46 उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर है। 125 के आसपास का उनका स्ट्राइक रेट। शराब की अगली गेंद, और इस बार ये गेंद टर्न होकर बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए अंदर की तरफ आई थी, लेकिन बैकफुट पे जाकर लेग स्टंप की तरफ हटते हुए इस गेंद को हल्के से पुश कर दिया। ऑफ साइड में 30 गज के दायरे के अंदर कवर क्षेत्र में गेंद को फील्ड कर लिया गया बिना किसी रन के। शादाब खान अपने इस ओवर में चौथी बार, इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, और गेंद को अक्रॉस द लाइन खेल दिया। घुटने को जमीन पर टिकाने के साथ ही बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में फील्डर मौजूद है। 1 रन से ज्यादा नहीं मिल पाएगा इस अवसर पर। इस 1 रन के साथ भारत का स्कोर बढ़कर के हुआ 52, 2 विकेट के नुकसान पर, और जडेजा ने खाता भी अपना खोल लिया है इस 1 रन की सहायता से। भारत को इस समय एक बड़ी साझेदारी की आवश्यकता है, और देखना यह है कि दूसरे विकेट के लिए जो 49 रनों की साझेदारी हुई, क्या उससे भी बड़ी साझेदारी तीसरे विकेट के रूप में भारत को यहाँ पर देखने को मिल पाएगी या फिर नहीं। यदि ऐसा होता है तो काफी हद तक मैच भारत के पक्ष में झुका हुआ नजर आएगा, और ऐसे में कहीं पाकिस्तान 1-2 विकेट और चटका देता है बहुत जल्दी, तो फिर कहीं ना कहीं मुकाबला काफी कांटे का हो जाएगा, काफी रोचक हो जाएगा। भारत फिलहाल 52, 2 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद एक्शन पर, और इस गेंद को खूबसूरती के साथ फ्लिक कर दिया है बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में खड़े हुए फील्डर के पास, और गेंद को इससे पहले कि वहां पर फील्ड किया जा सके 1 रन बटोर लिया दोनों बल्लेबाजों ने, और इस 1 रन की मदद से 9 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर 53, 2 विकेट के नुकसान पर। विराट कोहली 35 के व्यक्तिगत स्कोर पर 33 गेंदों का सामना करते हुए 3 चौके और 1 छक्का अब तक उन्होंने लगाया है, जबकि रविंद्र जडेजा ने अब तक मात्र 1 रन दिया है, और अभी थोड़ी देर पहले ही वो रोहित शर्मा के आउट होने के बाद बीच मैदान पर आज बैटिंग ऑर्डर में ऊपर भेजे गए हैं। राइट और लेफ्ट का संभवतः कॉम्बिनेशन बीच मैदान पर रखना चाहते ही टीम मैनेजमेंट, और जिसके तहत इस समय उन्हें आज बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट किया गया है। Also the fact that there's a leg spinner and also a left arm spinner there, that's the reason why probably the left-right combination works much better. But Mohammad Nawaz has impressed pretty much. He's got a wicket in his very first over. Bowling to Virat Kohli, he comes down the track. The ball has been hit in the air. This could be another wicket. Long off. Virat Kohli succumbs. He is trapped. He falls for the bait. Kohli out. And Mohammad Nawaz picks up the big wicket of Kohli out. Virat Kohli. Almost checking his shot as if coming down the track, because the ball was fired in his legs, and the fielder at long off does not make any mistake whatsoever. What a wicket this is for Pakistan. And India, मैच अभी भी as you खुला है said, लेकिन Ashish, were looking pretty good with that partnership between Rohit and Virat. Both of them are back in the pavilion, and the Indian middle order will be under tremendous pressure now on, because Mohammad Nawaz has done something absolutely unbelievable for his team. पिछले ओवर के अंतिम गेंद पर विकेट लिया था, और इस ओवर की पहली गेंद पर विकेट चटका दिया है। हैट्रिक पर है इस समय मोहम्मद नवाज। Quite interesting. That's pretty good, and probably this could be a golden moment for the Pakistani boy. But what a moment this is! We'll have to really see how the Indian middle order faces this, because Surya Kumar Yadav, Hardik Pandya, and company will have to do the needful. Surya Kumar Yadav is there in the middle, and yes, he is on a hat trick. The hat trick ball. We have to keep a track of so many things. It was the last ball of the earlier over where he picked up a wicket. The first ball of a new over.
Nawaz picks up a wicket. He has given away 9 runs in his 7 deliveries that he has bowled, but he has picked up 2 wickets. Can you believe it? Pakistani team suddenly they are absolutely excited, and why shouldn't they? Because Rohit Sharma and Virat Kohli, Ashish, both of them fell for a similar trap, and that is what is surprising. Surya As Kumar. Surya Yadav gets ready to Agla face the batsman. hat-trick ball. India 53 for the loss of 3 wickets. The left-arm slow spinner from Rawalpindi, as you mentioned, has created a problem here for India. 10th over is in progress. Slip in place. Pakistan all over India now. Suryakumar Yadav under tremendous pressure, facing the hat-trick ball. Here comes Nawaz, and it's been driven through the covers by Suryakumar to open his account and take India to 54 for the loss of 3 wickets. The equation stands at 64 deliveries left, 94 runs to be made by India, and mind you, this is the Asia Cup encounter, the first encounter in this tournament for both the teams. India the defending champions, but Virat Kohli fell to a wonderful trap, and the elation, the celebration was animated, and Pakistan knows the importance, the significance of the wicket of Virat Kohli. Jadeja, Suryakumar Yadav, 2 new batsmen in the middle. They will have a lot to work around. It's not easy playing the slower bowlers of this particular track. Left arm over the wicket, and the ball turns and hits the pad as Jadeja tried to drive. Was there an inside edge? Because it looked pretty straight. And the umpire says it's not out. Looks like there was an inside edge because the ball just pitched around that off stump, turning slightly inside. Jadeja tried to drive it on the onside, caught it on the pad straight away. This is a very, very tentative moment for Jadeja. Very, very sort of delicate moments for the Indian middle order as Nawaz bowls the next one. Coming down the track, Jadeja hits it over the bowler. Gone! It's gone into the second tier of the Dubai International Stadium for 6 runs. Doesn't matter you try and hat-trick, doesn't matter you pick up wickets, I am there. That's the statement made by Ravinder Jadeja as India go up to 60 for the loss of 3 wickets. But the best part about this particular shot was Jadeja picked up the ball very well. He was very clear about his intentions, and he went ahead with his stroke. And before the bowler could anticipate his move, Jadeja already had latched on to that delivery. The Indian fans extremely happy, looking forward for some more fireworks. India need a pretty regulated but a very proactive approach here as they require another 88 runs to win this match. Half the journey is not yet complete. India 60 for the loss of 3 wickets. Mohammad Nawaz bowls to Jadeja, slightly short outside the off stump, opening the face of the bat, trying to run it towards the short third man. There is Dahani, who fields, dives, but batsman crossover for a single. Good to see that Mohammad Nawaz is an intelligent bowler, Ashish. He's constantly thinking, he's constantly laying that trap, and he's making sure that the batsmen are not really, dominating him all the time. And he's also changing the pace of the delivery very often. Suryakumar Yadav to face the last ball of the over. 87 runs required from 61 deliveries for India as they are aiming for their first victory in this tournament. They are the defending champions. India have won the last 2 editions of the Asia Cup. This could be a hat-trick, but this is just the beginning of this long tournament. Here comes Nawaz, left arm round the wicket to Suryakumar. On the legs, whips it towards deep mid-wicket for a single, and that is the end of over number 10. India 62 for the loss of 3 wickets. 9 runs coming from that last over, but it was an eventful over because the wicket came on the very first delivery, and drinks will be on the field right now. But Ashish, this has been a very interesting journey for India, and India have to be careful, even though they might be facing Hong Kong in their next match. It's the top order has a lot to work around. जी इसमें कोई संदेह नहीं है। बल्लेबाजी में कहीं ना कहीं जैसे कि हमने मैच शुरू होते समय भी कहा कि जो टॉप ऑर्डर है, पहली मर्तबा है कि एक लंबे समय के बाद राहुल, रोहित शर्मा और विराट कोहली एक साथ एक मैच में खेल रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि ये तीनों बल्लेबाज जो टॉप के 3 बल्लेबाज हैं वो कहीं ना कहीं अपनी फॉर्म से हाल फिलहाल में जूझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा रन बल्ले से बढ़ा नहीं पा रहे हैं, जो एक कहीं ना कहीं भारतीय टीम
उनके लिए चिंता का विषय हो सकता है। मोहम्मद नवाज की हम बात कर रहे थे कि रावलपिंडी से हैं और ये वो भूमि है जहां पर हमें शोएब अख्तर जैसे तेज गेंदबाज मिले हैं जिन्हें रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता था। और शुरुआती दौर में मोहम्मद नवाज भी मध्यम तेज गति की गेंदबाजी किया करते थे, लेकिन एक अंडर 15 चैंपियनशिप में जब वेस्ट इंडीज गए तो वहां पर धीमी गति की पिचों पर उन्हें उनके कोच आमिर खान और मैनेजर हारून रशीद ने कहा कि आप बाएं हाथ से ऑर्थोडॉक्स स्पिन गेंदबाजी कीजिए, आप शायद ज्यादा बेहतर गेंदबाजी कर पाएंगे इन पिचेस पे। बस वो एक टर्निंग पॉइंट था और आज इस 28 वर्षीय मोहम्मद नवाज के रूप में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के पास एक बाएं हाथ का ऑर्थोडॉक्स स्पिन गेंदबाज है जिसने भारत को 2 महत्वपूर्ण झटके इस एशिया कप में दिए हैं। और मजे की बात है कि एशिया कप में ही T20 मुकाबलों में उनका पदार्पण हुआ था 2016 में यूए के खिलाफ वीरपुर। Only investments make a lot of difference, right? Investment in Mohammad Nawaz and change of tactics have brought about a very important point in this particular match. But Ashish, Pakistan will be very happy because the wicket that they were expecting in the power play, they have got it a bit later. But then now the Indian middle order is under tremendous pressure. जी हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। भारतीय टीम पर एक जबरदस्त दबाव है इस समय और सूर्य कुमार हालांकि बीच मैदान पर है और उनमें तमाम क्षमताएं हैं। 360 डिग्री प्लेयर उन्हें कहा जा सकता है। मैच में कभी भी किसी भी परिस्थिति में वो हर क्षेत्र में मैदान के शॉट लगाने में सक्षम है और बड़े स्कोर भी हासिल करने में उन्हें कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती। ये अलग बात है कि पिछली बार इसी मैदान पर जब पाकिस्तान के खिलाफ वो थे T20 विश्व कप के उस मुकाबले में जिसमें भारत को 10 विकेट से शिकस्त का सामना करना पड़ा था, उस मैच में वो सिर्फ 11 रन बनाकर आउट हुए थे। लेकिन तब से परिस्थितियां बहुत कुछ बदल चुकी है। गंगा में बहुत पानी बह चुका है। 24 मैचों में अब तक 674 रन उन्होंने बनाए। 175 का स्ट्राइक रेट है उनका और ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो स्ट्राइक रेट 175 का है कि वो किस तरह के खिलाड़ी हैं। फिलहाल नए ओवर की शुरुआत शादाब खान के द्वारा और पहले ही गेंद को खेल दिया डीप कवर के क्षेत्र में। आसानी के साथ दौड़कर 1 रन पूरा कर लेंगे। इस 1 रन के साथ sonmarg यादव का व्यक्तिगत स्कोर 3 और भारत 63 3 विकेट के नुकसान पर। जडेजा 8 रन बनाकर खेल रहे हैं। स्ट्राइक लेने के लिए अब तैयार हैं। सूर्य कुमार यादव और जडेजा की इस जोड़ी पर काफी कुछ निर्भर करेगा कि भारतीय टीम की पारी की क्या दिशा और दशा होगी। अगली गेंद इस बार शादाब की और इस बार लेग स्टंप पर आती है। इस गेंद को कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए मोड़ दिया मिड विकेट क्षेत्र में। फील्डर वहां पर मौजूद है फकर जमा के रूप में। गेंद को उन्होंने फील्ड किया। थ्रो पहुंचे इससे पहले कि मोहम्मद रिजवान के दस्तानों की तरफ 1 रन के लिए दोनों बल्लेबाज आसानी के साथ स्कोर बदल चुके थे। इस 1 रन की सहायता से भारत का स्कोर बढ़कर के अब 63 3 विकेट के नुकसान पर। 11वां ओवर इस समय प्रगति पर है और इस 1 रन की मदद से अब जडेजा पहुंचे हैं अपने 9 के व्यक्तिगत स्कोर पर। ऑन साइड की फील्ड का काफी बारीकी से इस समय मुआयना कर रहे हैं सूर्य यादव और सूर्य कुमार यादव के लिए अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर थी और इस गेंद को ड्राइव किया, लेकिन पॉइंट क्षेत्र पर फील्डर तैनात वहां पर 30 गज के दायरे के अंदर। गेंद सीधा उनके हाथों में पहुंचती हुई रन बनाने का कोई प्रश्न नहीं था और स्कोर भारत का अभी भी टिका हुआ 64 3 विकेट के नुकसान पर। 148 रनों का लक्ष्य है भारत को जीत के लिए। अगली गेंद इस बार फ्लाइटेड लेग स्टंप पर और गेंद को खूबसूरती के साथ स्वीप कर दिया। गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। REC चौका एनर्जाइजिंग इंडिया। सूर्य कुमार यादव इसी तरह के स्ट्रोक्स के लिए खेले जाने जाते हैं और इस चौके की मदद से उन्होंने अपना व्यक्तिगत स्कोर पहुंचाया 7 पर। जैसे ही देखा कि गेंद इस बार ऑफर मिडिल स्टंप पर है, अपने पैर को थोड़ा सा क्रॉस ले गए और गेंद को खूबसूरती के साथ स्वीप करने के साथ ही बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में पहुंचा दिया जहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं था। और जैसा कि मैंने इस गेंद से पहले भी कहा था कि काफी बारीकी से वो ऑन साइड की फील्ड प्लेसमेंट का मुआयना कर रहे हैं और ये शॉट उन्होंने प्लेसमेंट करते हुए जानबूझ करके उस दिशा में लगाया था। अगली गेंद हल्के से गेंद को पुश किया ऑफ साइड में। रनों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं। स्कोर भारत का 68 3 विकेट के नुकसान पर। सूर्य कुमार यादव 7 के व्यक्तिगत स्कोर पर 6 गेंदों का सामना करने के बाद और इस समय तमाम जो परेशानियां हैं वो निश्चित रूप से भारतीय बल्लेबाजों के ऊपर साफ नजर आ रही हैं कि जिस तरह से भारत ने अब तक 3 अपने विकेट गंवा दिए हैं। चोटी के 3 बल्लेबाज, पहले राहुल, उसके बाद रोहित और उसके बाद विराट कोहली अब से थोड़ी देर पहले वापस पवेलियन लौट चुके हैं। अगली गेंद सूर्य कुमार यादव के लिए और इस बार इस गेंद को खूबसूरती
खूबसूरती के साथ ड्राइव कर दिया, लेकिन फील्डर वहां पर स्वीपर कवर पर मौजूद है। 1 रन से ही संतोष करना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर के अब भारत का पहुंच चुका है 69 रन। 3 विकेट के नुकसान पर ओवर की भी समाप्ति हुई। 11 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की औसत रफ्तार फिलहाल भारत की 6.27 रन है। तो रनों की औसत रफ्तार कोई परेशानी का सबब नहीं है पंकज, लेकिन विकेट सुरक्षित रखना भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जानते हैं कि चोटी के 3 बल्लेबाज जिस तरह से वापस पवेलियन लौटे हैं, गेंदबाजी की जो एक धार नजर आ रही है पाकिस्तान की टीम की तरफ से, तेज गेंदबाजी की बात करें या फिर स्पिन गेंदबाजी की, वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। और अभी तक हमने देखा कि जिस अंदाज में मोहम्मद नवाज ने अपने पहले 2 ओवर में मात्र 18 रन देकर 2 विकेट चटका दिए हैं भारत के, वो काबिले तारीफ है। The only way Pakistan can beat India here is by picking up wickets. They have picked up 2 quick wickets and that has really helped them. But India now requires 79 runs from the remaining 54 deliveries. मजे की बात यह है कि भारतीय स्पिनर्स को कोई विकेट नहीं मिला। Exactly. Quite interesting, but the Pakistani spinners have really made their mark. Suryakumar Yadav will now be facing Mohammad Nawaz, who is bowling his 3rd over and has picked up 2 wickets and giving away 18 runs. Left arm around the wicket, slightly short outside the off stump. Beautiful square cut, but straight to the fielder and backward point. Sometimes, it really feels sad. You feel sad because a batsman hits the ball so well. The timing is immaculate, but the ball goes straight into the hands of the fielder. That's cricket for you. There's a short third man, there's a point, there's a deep cover for Suryakumar, and the partnership is already worth 16 runs as Nawaz gets ready to bowl the next one. On the middle of the leg, going on the back foot, and Suryakumar whips it towards a deep mid wicket for a single. India go up to 70 for the loss of 3 wickets. Pakistan has used 5 bowlers, Naseem Shah, in fact, 2 overs, 8 runs and a wicket. Shahnawaz Dahani, 2 overs, none for 13. Haris Rauf, 2 overs, none for 13. Shadab has bowled 3, none for 13. And Mohammad Nawaz is now in his 3rd over. So 3 bowlers, Shahnawaz, Haris and Shadab, have all bowled 2 overs each, in fact, and given away 13 runs. In fact, Shadab has bowled 3 overs, but all 3 bowlers have given away 13 runs each. Jadeja, batting on 9, was promoted up the order, coming down the track, straight drive, past the bowler, into the boundary line at long on for 4 runs. REC Chowk, energizing India. A very geometrical stroke there by Jadeja, bisecting the long on and the long off fielder straight. Absolutely straight. In fact, Mohammad Nawaz wanted to stop in his follow through, but the ball was hit so hard and he decided not to take that risk. But a good shot nevertheless by Ravinder Jadeja. India 74 for 3. Slower down the leg side, pulled somehow. There's a shot, fine leg, throw at the non-striker's end. Will they come for an overthrow? No, just a single. Good call there by both the batsmen. And India has gone up to 75 for the loss of 3 wickets. These 2 batsmen have managed to play Mohammad Nawaz much better than probably Virat Kohli and Rohit Sharma. But right now, India still in a slight bother, a spot of bother, because they require another 73 runs from 50 deliveries. So 50% of the journey is more or less over. The remaining 50%, we hope that the Indian vehicle doesn't suffer any breakdown as it goes down the highway, because Suryakumar Yadav and Jadeja are forging a very decent partnership now as Shahnawaz, in fact, Mohammad Nawaz bowls, delivery on the off stump, pushed towards the covers, a quick single has been taken. Running between the wickets by Surya and Jadeja has been very, very good. Pakistan has to be careful because they cannot allow the Indians to build a partnership. Pakistan, if they have to win this match, has to pick up wickets at regular intervals, and that's the only way they can win the match. But as of now, Jadeja and Suryakumar seem to have blunted their plans, and they have more or less played and negotiated Mohammad Nawaz quite well, who is in his 3rd over. Just 1 more delivery in this over is left. A very good spell here by Mohammad Nawaz, and he will be expected to do more. Here comes Nawaz to Jadeja, shot down the leg side, pulled towards deep backward square leg for a single, and that is the end of over number 12. India 77 for the loss of 3 wickets, and this partnership very crucial for India, and also sort of a partnership which has helped India recovered. In fact, Indian fans will hope that this partnership continues further till the end of the game.
This commentary is brought to you by All India Radio in association with Channel 2, exclusive audio global right holder. 12 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान की टीम ने 87 रन बनाए थे 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि 148 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए फिलहाल भारतीय टीम ने 77 रन बना लिए हैं 3 विकेट के नुकसान पर। तो ये है दोनों की टीमों की यदि तुलना आप करें 12 ओवर की समाप्ति के बाद, तो ऐसे में कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक एज 12 ओवर की समाप्ति के बाद आप देखें तो पाकिस्तान की तरफ है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत को पता है कि लक्ष्य क्या है और उसके हिसाब से वो अपने खेल में परिवर्तन कर सकता है। अगले गेंद नए ओवर के शादाब खान की और इस बार बैकफुट पे जाकर कट करना चाहते थे जडेजा, कॉट बिहाइंड की जबरदस्त अपील वहां पर मोहम्मद रिजवान के द्वारा, लेकिन अंपायर के चेहरे पर मुस्कुराहट, जानते थे कि सिर्फ कहीं ना कहीं जोश में ये अपील है, तथ्य नहीं है इसमें। गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं हुआ। अगली गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर थी और इस बार इस गेंद को बल्ले में लपेट करके खेलना चाहते थे गेंदबाज के बाईं तरफ से, लेकिन गेंद सीधा गेंदबाज की तरफ गई और शादाब खान ने वहां पर बहुत आसानी के साथ गेंद को फील्ड कर लिया। पहली 2 गेंदों पर कोई रन नहीं। जडेजा चाहते हैं कि कोई भी डॉट गेंद वो नहीं खेले। काफी बारीकी के साथ इस समय फील्ड प्लेसिंग का ऑफ साइड पर और उसके बाद ऑन साइड पर मुआयना कर रहे हैं शादाब खान, जो कि अपने कोटे का चौथा और अंतिम ओवर कर रहे हैं। काफी किफायती गेंदबाजी उन्होंने अब तक की है। 13 रन, विकेट हालांकि कोई नहीं मिला है और इस बार ये गेंद जो कि लेग स्टंप पर थी, इस गेंद को मोड़ दिया बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में एक आसान से रन के लिए और इस 1 रन की सहायता से जडेजा पहुंचे 16 के व्यक्तिगत स्कोर पर और भारत का स्कोर 78, 3 विकेट के नुकसान पर। गेंद और रनों की भाषा में यदि बात करें तो 45 बची हुई गेंदों में यहाँ पर 70 रनों की आवश्यकता है। समीकरण निश्चित रूप से मुश्किल नहीं है। अगर भारत के विकेट सुरक्षित रहते हैं तो निश्चित रूप से भारत इस मंजिल तक पहुंचने में कामयाब हो सकता है। इस बात की तमाम संभावनाएं हैं और 7.3 ओवर कुल मिलाकर ओपी शर्मा जी बता रहे हैं कि यहाँ से भारत को आवश्यकता है। इसी बीच अगली गेंद और इस बार इस गेंद को खूबसूरती के साथ कट किया सूर्य कुमार यादव ने और आसानी के साथ दौड़कर 2 रन पूरे कर लेंगे। इससे पहले की गेंद फील्ड होकर थ्रो के रूप में विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान के दस्तानों की तरफ पहुंचे और इन 2 रनों की मदद से अब स्कोर भारत का बढ़कर 80, 3 विकेट के नुकसान पर। शादाब के इस ओवर की 2 गेंदों का आना बाकी है। सूर्य कुमार यादव काफी सहजता के साथ, काफी आत्मविश्वास के साथ इस समय स्पिन गेंदबाजी का सामना करते हुए नजर आ रहे हैं। किसी किस्म का कोई दबाव उन पर नजर नहीं आ रहा, भले ही भारत के 3 विकेट अब तक गिर चुके हैं और दूसरे छोर पर जडेजा ने अब तक अपनी बल्लेबाजी से काफी मुतासिर किया है। अगली गेंद इस बार मिडल और लेग स्टंप पर, गेंद को ड्राइव कर दिया ऑन साइड पर मिड विकेट क्षेत्र में। इससे पहले कि गेंद फील्ड हो सके आसानी के साथ दौड़कर 2 रन और पूरे कर लिए और इन 2 रनों के साथ भारत का स्कोर 82, 3 विकेट के नुकसान पर। 5 अतिरिक्त रनों के साथ ये 82 रन भारत के बने हैं 148 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए और इस सफर में अब तक भारत 3 विकेट अपने गंवा चुका है। अंतिम गेंद का आना बाकी है 13वें ओवर की। शादाब खान तैयार, एक बार फिर से सामने है उनके सूर्य कुमार 14 के व्यक्तिगत स्कोर पर अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार हैं और ड्रेसिंग रूम में इस समय तमाम भारतीय खिलाड़ी भारतीय जीत की अपेक्षा कर रहे होंगे और ये अपेक्षा कर रहे होंगे कि इस जोड़ी से एक बड़ी साझेदारी बीच मैदान पर भारतीय समर्थक दर्शकों और भारतीय टीम को देखने को मिले। फिलहाल चौथे विकेट के लिए 29 रनों की साझेदारी हो चुकी है। अपने बॉलिंग मार्ग पर आगे आए थे जिस वजह से सूर्य कुमार को हटना पड़ा अपने स्थान से और एक बार फिर से तैयार वहां पर शादाब खान। अगली गेंद देकर और इस बार ऑफ मिडल स्टंप पर आती हुई इस गेंद को हल्के से फ्रंट फुट पे जाकर पुश कर दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में। फील्डर से पहले की गेंद को फील्ड कर सके आसानी के साथ दौड़कर 1 रन और पूरा करते हुए सूर्य कुमार इस अंतिम गेंद पर और इसके साथ ही स्कोर बढ़कर के भारत का 83 रन 3 विकेट के नुकसान पर 13 ओवर की समाप्ति के बाद। ओम प्रकाश शर्मा ने तुरंत हमें बताया कि शादाब खान का जो कोटा है 4 ओवर का वो समाप्त हो चुका है। काफी किफायती गेंदबाजी निश्चित रूप से उन्होंने की है। अपने 4 ओवर में सिर्फ 19 रन दिए हैं, कोई मेडल नहीं और कोई विकेट नहीं। जहां तक इकोनॉमी का सवाल है मात्र 4.75 की उनकी इकोनॉमी। बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन पाकिस्तान के उप कप्तान के द्वारा। Ashish, but the required run rate is hovering around 9.5 runs per over. That is a slight concern for India, though in the T20 parlance, if we look at the number of deliveries and the runs which are required, 65 runs required of 42 deliveries doesn't really sound very alarming, but the required run rate is something which India need to be careful about. They will need to target one particular bowler in order to compensate for all these things so that the required run rate and the runs required and the
deliveries remaining, probably that equation becomes much more easier. The spinners have done a wonderful job for Pakistan, especially Shadab. Maybe he didn't take wickets, but he kept the pressure with some tight bowling, and Nawaz, of course, has done the needful. Dahani, Shahnawaz Dahani, has been brought back into the attack for his third over, and he bowled 2 overs, gave away 13 runs, and let us see how he's able to kind of trap Surya or Jadeja, because both of them are playing pretty well. Surya Kumar Yadav batting on 15 of 13 deliveries. This is going to be a very interesting phase of the next 2 to 3 overs, because then India will realize what is the situation. Pakistan need to get wickets here in these next couple of overs in order to build the pressure. But this is a wonderful contest being played at the Dubai International Stadium. Just a quick recap for all our listeners. India won the toss, decided to bowl first. Pakistan were 147 all out. First ball of a new over. Cheeky stroke there by Surya Kumar. The ball cutting in sharply. Surya Kumar jumping up on his toes and playing it through the slips towards third man for a single. That was very close. I thought it was played just in front of that off stump. The ball, if you would have missed, would have gone and hit at the top corner of that off stump. But nevertheless, Surya Kumar gets a single. Pakistan looking quite excited. They know the importance of this phase of the game. Mohammad Rizwan has been animated as usual. Be it behind the wickets while appealing or while setting the field along with Babar Azam. India 84 for the loss of 3 wickets. Both the batsmen, Jadeja and Surya Kumar, batting on 16. Shahnawaz Dahani bowls to Jadeja. Slightly short, goes to the back foot, tries to cut it. Missing it completely. Beaten for pace. And Dahani and Rizwan looking at each other in excitement whether should we appeal or not. But this does have a lot of effect, Ashish, on the batsman, because whenever the bowler and the wicket keepers are constantly animated about the appeals, that definitely works at the back of the mind of the batsman. But Jadeja has to be careful here. He needs to be sort of aggressive, but he needs to pick and choose the right deliveries. Shahnawaz hasn't really troubled the Indian bowlers, but he's not easy to hit. That's the problem. Indian batters, 84 for the loss of 3 wickets. The not equation bowlers. stands at 64 required of 40 deliveries. Jadeja, next ball, short down the leg side. Should be called as a wide. And we'll have to wait for the umpire's call. 136 kilometers per hour was the delivery. Is Pakistan looking for a review? Because Rizwan appealed and we were waiting for the umpire to give a wide decision, but it's been called as a wide. That's the soft signal they have to give it. And Babar Azam has taken a review, because Mohammad Rizwan appealed sort of half-heartedly, but Jadeja doesn't look perturbed at all. Umpire has called it as a wide, but still Babar Azam has gone for a review. A delivery which was down the leg side. Was there any contact with the glove? Because the ball was somewhere around that handle of the bat as Jadeja tried to pull it. But looks like the ball went first and then the bat came in. So we'll have to see what is the situation. The third umpire should consult the ultra edge machine in order to get something. There it is on the screen of our studio. The ultra edge as the ball passes the blade. No contact with the blade or the ball or the glove. It's going to be a wide. Nothing much. So the third umpire should give the decision in the favor of India. And yes, the on-field umpire says, I am right. There is no change in the decision. The decision stands that it was a wide, and India 85 for the loss of 3 wickets. The equation now stands at 63 runs required of 40 deliveries. Somewhere the intensity that is required by the Pakistani bowlers seems to be missing, because the spell by Mohammad Nawaz and the support given by Shadab was wonderful, but the fast bowlers need to create something extraordinary as Jadeja gets the next delivery. Short, goes to the back foot, works it nicely towards fine leg. The ball is racing quickly along the carpet, but there is a fielder, Iftikhar Ahmed, and just a single there. So the runs are coming in singles, not in boundaries. If I may ask, when was the last boundary scored? It's been probably quite some time, and probably about a couple of overs.
13 deliveries. Oh, exactly. So last 13 deliveries, there hasn't been any boundary. That has sort of reduced the momentum for India. Thank you, OP Sharma, our scorer. OP Sharma, our scorer, and Kunjesh Gupte, our statistician, have been really fantastic partners as they have given us some really interesting statistics and numbers to talk about. Suryakumar Yadav drives that ball uppishly through point. There's a fielder, Kushdil at deep point, just a single, 87 for 3. So the runs are coming, but they're coming in singles. That is not what India wants. Babar Azam would continue to constrict the Indian batsmen like a python, not giving them an opportunity, not giving them any loose over. India needs one good over in order to get close to the number of deliveries that are remaining, because if that does not happen, then the last 2-3 overs, if 35-40 odd runs are required, that will be a big headache for India, and that's where the game can break for them. Till now, India have been pretty much in control of the situation, but the required run rate is just creeping past 10 now. And here comes Shahnawaz Dahani to Jadeja. Jadeja makes room for himself. Dahani follows him, pulls that ball in the deep square leg zone. Just another single. This is what we have been talking about. 5 runs in this over, including a wide, no boundary for the last 15 deliveries. That has been a bit of a problem for India. 88 for 3. I'm sure, Ashish, this Asia Cup, we can't really expect a very high-scoring one because the runs are coming pretty slow. The surfaces are going to be quite interesting. It's not easy to make runs on these kind of surfaces, but this particular phase of the game is turning out to be very critical, turning out to be slightly pricky for India, as the Indian batsmen have not been able to get those boundaries because the required run rate is almost 10 runs per over. 88 for the loss of 3 wickets is the score. 14th over is in progress right now. Suryakumar Yadav batting on 17 of 15 deliveries is on strike. Here comes Dahani over the wicket, and Suryakumar tries to go for a big hoik over mid-on, but finds the fielder at wide-ish mid-on, just a single there. So 6 runs coming from the last over. 14 overs have been bowled. India 89 for 3. This is looking a bit tricky for India, as the required run rate is 10 runs per over, almost 10 runs per over. And of course, Kunjesh throws in some numbers here. The highest total at the Dubai International Cricket Stadium is 211 runs, and the lowest, of course, is 55. So it has seen the ups and the downs. It has seen the contrast. It has seen ends of the spectrum. But Ashish, this particular phase of the game is turning out to be slightly difficult for India now. धानी के पिछले ओवर में सिर्फ 6 रन ही आए और इस समय भारत 14 ओवर की समाप्ति के बाद 89 रन है 3 विकेट के नुकसान पर। बची हुई 36 गेंदों में 59 रनों की आवश्यकता है भारत को और 7 विकेट भारत के सुरक्षित है। सूर्यकुमार यादव मोहम्मद नसीम शाह के नए ओवर की पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार हैं 18 के व्यक्तिगत स्कोर पर। और देखना ये है कि यहाँ पर नसीम शाह की इस ओवर की पहली गेंद का वो किस तरह से सामना कर पाते हैं। काफी बढ़िया चतुर तेज गेंदबाज हैं नसीम शाह का, जहाँ तक सवाल है। काफी युवा खिलाड़ी हैं और पूरी तरह से ऊर्जा से लबरेज। अपने पहले ही ओवर में उन्होंने भारत को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया था केएल राहुल का विकेट जब उन्होंने हासिल किया था। और देखना ये है कि अपने दूसरे स्पेल में क्या कुछ कर पाते हैं। फिलहाल पहले स्पेल की गेंदबाजी की यदि बात करें तो उन्होंने 2 ओवर की गेंदबाजी में मात्र 8 रन दिए थे और केएल राहुल का विकेट उन्होंने चटकाने में कामयाबी हासिल की थी। तो नसीम शाह तैयार हैं और सामना करने के लिए तैयार हैं सूर्यकुमार यादव, जो कि आईसीसी रैंकिंग में जहां तक T20 का सवाल है उसमें बाबर आजम के बाद दूसरे स्थान पर हैं। और आज निश्चित रूप से भारतीय टीम को उनसे काफी अपेक्षाएं हैं, क्योंकि भारत नहीं चाहेगा कि भारत के निम्न क्रम के बल्लेबाजों के ऊपर ये दायित्व आए कि वो भारतीय टीम को जीत के मार्ग की तरफ ले जाएं। वो चाहेंगे कि भारत के जो एस्टेब्लिश्ड बल्लेबाज हैं, स्थापित बल्लेबाज हैं, ऑलराउंडर्स हैं, वो ये काम करके दिखाएं। फिलहाल नसीम शाह के इस ओवर की पहली गेंद, और इस बार ये गेंद बैक ऑफ लेंथ मिडल और लेग स्टंप पर हल्के से गेंद को पुश कर दिया ऑन साइड पर मिड विकेट क्षेत्र में, लेकिन वहां पर कोई रन नहीं। जडेजा संभवतः उनसे कह रहे हैं कि स्ट्राइक रोटेट करो, गेंद को प्लेस करो गैप में। सूर्य
कुमार कह रहे हैं कोशिश तो मैंने की थी, लेकिन अगली बारी मुझे लगता है कि अपने प्रयास में चूकूंगा नहीं। देखना है कि क्या सूर्य कुमार यादव अपने अगले प्रयास में चूक पाते हैं या फिर नहीं। फिलहाल जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो 10 से ऊपर है, 10.11 रन प्रति ओवर। यहाँ पर न केवल अब भारत को विकेट सुरक्षित रखने होंगे, बल्कि साथ ही साथ रनों की रफ्तार पर भी ध्यान देना होगा। इसके साथ ही क्लीन बोल्ड, एक और आउट। सूर्य कुमार यादव जैसे ही गेंद को स्लॉक करना चाहते थे, गेंद की लाइन को पूरी तरह से चूके और गेंद ने उनका ऑफ स्टंप उड़ा दिया और भारत को इस तरह से चौथा झटका लगता हुआ सूर्य कुमार यादव मात्र 18 रन बनाकर 18 गेंदों का सामना करने के बाद वापस निराश कदमों के साथ पवेलियन लौट रहे हैं। और नसीम शाह ने क्या शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा किया है। अपराइट सीम के साथ उनकी एक गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ा बाहर पिच हुई और टप्पा खाने के बाद थोड़ा अंदर की तरफ आती हुई और इस गेंद को खेलने का प्रयास ऑन साइड में किया था। पूरी तरह से चूके सूर्य कुमार यादव और गेंद सीधा जाकर उनके ऑफ स्टंप पर लगी। तो निश्चित रूप से दूसरे स्पेल की पहली गेंद पर एक बार फिर से अपनी धाक जमाते हुए इस समय नसीम शाह दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर। Bang on target, Naseem. It's not easy to hit him through the line, and he has, in fact, struck at a very crucial moment. India were looking so strong. Suddenly, they have got sort of caught up like a zombie in between, and they're not able to increase or they're not get to build a momentum. 89 for 4. अपने पहले स्पेल की दूसरी गेंद पर केएल राहुल को प्ले डाउन कराया था और अपने दूसरे स्पेल की पहली गेंद पर उन्होंने यहाँ पर अरे मैच अभी भी ओपन है। कमेंटेटर अंग्रेजी कमेंटेटर तो रोता क्यों है? हार्दिक पांड्या है। मैच बाद में जल्दी वरना खाता उनको अनुभव है। 834 रन उन्होंने अब तक बनाए हैं और निश्चित रूप से जानते हैं कि उनके कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लगभग 144 का उनका स्ट्राइक रेट है, 23 के आसपास का उनका औसत है T20 मुकाबलों में और एक अर्धशतक भी उनका नाम है T20 मैचों का। जहां तक सवाल है 51 उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर है। थोड़ा सा अपने शरीर को लूज करते हुए हल्का सा व्यायाम और उसके बाद दाईं और बाईं तरफ हल्की निगाहें, फिट फेसिंग का मुआयना, तैयार। सामने नसीम शाह पूरे ऊर्जा के साथ और इस बार ये गेंद और इस गेंद को फ्लिक कर दिया। वहां पर फाइन लेग की दिशा में फील्डर मौजूद हैं। शाहनवाज गेंद को उन्होंने फील्ड किया, पूरा नियंत्रण नहीं रख पाए थे गेंद को फील्ड करते समय, असंतुलित हो गए थे, लेकिन उसके बाद जैसे ही उठाकर गेंद को उन्होंने फील्ड किया तब तक आसानी के साथ दौड़कर 2 रन पूरे कर दिए थे इस अवसर पर नए बल्लेबाज हार्दिक पांड्या। तो इन 2 रनों के साथ उनका खाता खुलता हुआ। हार्दिक पांड्या और जडेजा के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन सामने पाकिस्तान के युवा गेंदबाज नसीम शाह मानो इस समय कहर भर पाने के लिए आमादा हों। दाएं हाथ से राउंड द विकेट, एक बार फिर से तैयार। स्टंप के नजदीक से गेंद लेग स्टंप पर थी और इस बार बेहतरीन अंदाज में गेंद को फिर से फ्लिक कर दिया। लगातार दूसरी बार लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को फ्लिक करने के अंदाज में फाइन लेग की दिशा में खेला, लेकिन इस बार 1 रन से ही संतोष करना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ हार्दिक पांड्या का स्कोर हुआ 3। 2 गेंदों का सामना करने के बाद जडेजा 18 रन बनाकर खेल रहे हैं। 15 गेंदों का सामना अब तक उन्होंने किया है और भारत का स्कोर 92, 4 विकेट के नुकसान पर। 148 रनों की दरकार है भारत को इस मैच को जीतने के लिए। क्या भारत ऐसा कर पाएगा या फिर दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर पाकिस्तान की टीम भारत के खिलाफ इस मुकाबले को जीत के अपना परचम लहराने में कामयाब होगी? देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल नसीम शाह तैयार मंत्रणा करने के साथ अपने कप्तान के सामने है उनके रविंद्र जडेजा, जिनके पास एक लंबा अच्छा खासा अंतर्राष्ट्रीय अनुभव है और जानते हैं कि इन परिस्थितियों से कैसे जूझना होता है। इस बार ये गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद को शॉर्ट ऑन पुल कर दिया, लेकिन डीप मिड विकेट पर फील्डर मौजूद है। वहां पर 1 रन से ही संतोष करना पड़ेगा, इससे पहले कि आसिफ अली गेंद को फील्ड करके थ्रो कर सकते हैं मोहम्मद रिजवान के हाथों की तरफ। इस 1 रन की मदद से भारत का स्कोर 93, 4 विकेट के नुकसान पर। डॉट बॉल नहीं खेलनी है, ये दोनों ही खिलाड़ी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि कोई बीच में आप बाउंड्रीज भी लगाएं, क्योंकि जो लगातार आस्किंग रेट है वो बढ़ता जा रहा है। थोड़ी देर पहले 10.11 था, अब 10.65 हो गया। अगली गेंद बैकफुट पे जाकर खूबसूरती के साथ हार्दिक पांड्या ने इस बार स्क्वायर कट कर दिया। गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए। IC Chaka, energizing India.
बैकवर्ड पॉइंट पर फील्डर जरूर मौजूद था, लेकिन जैसे ही देखा कि थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद है, बैकफुट पे गए, थोड़ी सी विड्थ थी इस गेंद में और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में अच्छे टाइमिंग के साथ इस स्ट्रोक को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया। इस चौके की मदद से स्कोर भारत का 97, 4 विकेट के नुकसान पर 15वें ओवर की समाप्ति हो चुकी है और रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो इस समय 10.2 रन प्रति ओवर है। तो निश्चित रूप से भारत को यहाँ पर एक निगाह रनों की औसत रफ्तार पर भी रखनी होगी और साथ ही साथ उससे भी जरूरी कि अपने विकेटों को भी सुरक्षित रखें। Very important, and the pair of Jadeja and Hardik Pandya will have to see India through because, as you said, the required run rate is just about 10 runs per over. A sticky wicket for India, and India wouldn't like to lose from here because a silly mistake here and there will really make things difficult. Though we still have the services of Dinesh Karthik, who has been groomed and who has developed into a fantastic finisher as far as T20 games are concerned, and India would like to kind of get this comfortably done. 51 runs required of 30 deliveries. Dahani will continue. 3 overs for Shahnawaz. Dahani has given away 19 runs, hasn't picked up a wicket, but India 97 for 4. 16th over is about to begin. Warm conditions, testing all the players between the overs. The physios of both the teams are rushing in with replenishments and trying to repair the fielders on the fielders there. Very important. But somewhere, both the teams seem to have sort of slowed down, expecting the other or the opponent to make the mistake. Jadeja now on strike. He's batting on 19 and there's a short fine leg. There is a backward point for Jadeja. Just opens the face of the bat and runs it towards third man for his single. And even now, the Indian batsmen are waiting for the opportunity. Though a boundary game of the last ball of the earlier over from a lovely square cut by Hardik Pandya. But otherwise, India will need some quick shots here. Lovely shot that was. He just kind of tapped it, slapped it and rolled his wrist over the ball as he timed it very well. He didn't have a lot of space there, Ashish. जी हाँ बिल्कुल, और कहना होगा हार्दिक पांड्या की यदि बात करें तो उनके रूप में भारत भविष्य का कप्तान भी देखता है। जिस तरह से उन्होंने इस वर्ष आईपीएल में गुजरात टाइटंस की कप्तानी करते हुए उसे विजेता बनाने में एक अहम भूमिका निभाई कप्तान के तौर पर, और न केवल वो बल्कि उन्होंने कप्तानी वेस्ट इंडीज के दौरे पर अंतिम T20 मुकाबले में भी की थी। फिलहाल अगली गेंद और इस बार इस गेंद को हल्के से पुश किया ऑन साइड पे, आसानी के साथ 1 रन दौड़कर पूरा कर लेंगे। इस 1 रन की मदद से भारत का स्कोर अब 99 यानी 99, 4 विकेट के नुकसान पे 15.2 ओवर की समाप्ति के बाद शाहनवाज दहानी इस समय गेंदबाजी के मोर्चे पर हैं, जो कि अपने कोटे का अंतिम ओवर कर रहे हैं। Yes, there's not too much of panic in the Indian camp, but things can get a bit serious here because 49 runs are required of 28 deliveries, and an over here and there, a wicket here and there can really make it very difficult, and the cat can be set amongst the pigeons. Pakistan will be expecting that. Dahani bowls to Jadeja, lovely cover drive, and a single there for Jadeja. Once again, both the batsmen are taking the singles, keeping the scoreboard ticking, but they have not been able to squeeze that additional boundary or a 6 in between, and that's the reason why India, of course, have reached 100 runs for the loss of 4 wickets in the 16th over. I guess Pakistan also reached 100, somewhere similar. At that time, we were talking about Pakistan not being able to reach the triple figure mark, and we can talk about it. Our scorer will help us somewhere in the 16th over probably. It was 15th over. Oh, so Pakistan got to 100 before India. That's interesting. 48 required of 27 deliveries. Beautiful shot there by Hardik Pandya on the back foot, punched towards the covers, couple of runs there, and Indians are feeling the pressure as the target is getting slightly out of reach. 46 runs required from 26 deliveries. This can really go anywhere. The match is not yet over. The blockbuster Sunday continues. The mouth-watering contest also continues. But what India needs is one special over in order to catch up with the number of deliveries that are remaining. Though off late, with so many matches being played, Ashish, the Indian batsmen do not panic in these kind of situations. They like to play deep. The Dhoni concept works here pretty well as shot into the ribs of
Hardik Pandya somehow uncomfortably pulls it towards deep backward square leg for a single. Dahani is making sure that he is not giving any loose deliveries and he's also not giving any space whatsoever to the Indian batsmen, as India are 103 for the loss of 4 wickets. Bowling at about 140, 143 kilometers per hour, Shahnawaz Dahani. Everyone, though he has not picked up a wicket, he has really given good support to Naseem and to Rauf. It will be interesting how Babar Azam does the needful. Babar Azam's captaincy will be tested here because these are very good opportunities for him. If he is not able to exploit these conditions, then it will not be a good thing for Pakistan. Jadeja gets a ball short down the leg side, trying to pull it. Rizwan missing it completely. Ball is going towards fine leg. The fielder will get it back. The batsman come back for 2. Will it be called as a wide? Yes, that means 3 runs here for India and an additional delivery, and that will take India to 106 for the loss of 4 wickets. A rare moment where Rizwan missed out. He's feeling the pressure. He did a lot of batting in these warm conditions, Ashish, and then he's been jumping around, animated, appealing, has taken a toll on his hamstrings. But 42 from 25, that's the equation. 9 extras till now, 5 wide deliveries by Pakistan. That's not good news, and that's the discipline they'll have to maintain in a T20 encounter. But right now, Jadeja is on strike. Dahani getting ready to bowl the last ball of his over. India still require runs at about 10 runs per over if they want to win this match. Pulled over mid-wicket. Good shot there by Jadeja, but there is a fielder, Iftikhar Ahmed, deep mid-wicket. Just a single. 16 overs have been bowled. 107 for the loss of 4 wickets is the score right now. This commentary is brought to you by All India Radio in association with Channel 2, exclusive audio global right holders. पंकज, अब दिलचस्पी की बात यह है कि नसीम शाह का 1 ओवर बाकी है, हैरिस राउफ के 2 ओवर बाकी हैं और 1 ओवर बाकी है मोहम्मद नवाज की के सामने, गेंदबाजी के सामने किस तरह का प्रदर्शन रहता है इन दोनों बल्लेबाजों का, ये देखना खासा दिलचस्प होगा, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज ये स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं और वो संभवतः वो ओवर कहीं ना कहीं इस मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है. And Hardik Pandya would be waiting for that opportunity because he's been striking the ball really very well. Couple of shots of Hardik Pandya right from the meat of the bat, great timing, but 41 from 24 looks pretty decent in a T20 format, Ashish, but slightly tricky for India. जी हाँ, बिल्कुल. ये देखते हुए कि पाकिस्तान की गेंदबाजी अब तक काफी जहीराना रही है, काफी आक्रामक रही है और काफी धार लिए हुए रही है. 4 विकेट भारत गवा चुका है 16 ओवर की समाप्ति के बाद 107 रन बनाते बनाते, और रिक्वायर्ड रन रेट फिलहाल है 10.3 रन की. तो हैरिस राउफ, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था कि वो गेंदबाजी के मोर्चे पर होंगे, अब अपने दूसरी स्पेल का पहला ओवर कर रहे हैं. पहले 2 ओवर में उन्होंने 13 रन दिए और 7 डॉट गेंदें की, और विकेट लेने का जहां तक प्रश्न है उसमें अब तक उनको सफलता नहीं मिली है. इस ओवर के पहली गेंद का सामना करेंगे जडेजा, जो कि अब तक 22 शानदार रन बना चुके हैं भारतीय टीम के लिए, और ये 22 रन उन्होंने 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 19 गेंदों का सामना करते हुए अब तक बनाए हैं. इस समय रोहित शर्मा और विराट कोहली ड्रेसिंग रूम में आपस में मंत्रणा करते हुए कि यहाँ पर इन दोनों बल्लेबाजों को किस तरह से जीत के मार्ग की तरफ अग्रसर होना चाहिए. लेकिन ड्रेसिंग रूम में बैठकर टिप्पणी करना, चर्चा करना, ताना बाना बुनना एक अलग बात होती है, लेकिन बीच मैदान पर वास्तविक परिस्थितियों का सामना करते हुए जीत के मार्ग तक पहुंचना बिल्कुल एक अलग कहानी होती है. भारत 107 4 विकेट के नुकसान पर नए ओवर की शुरुआत करते हुए इस समय 28 वर्षीय, जो कि लाहौर कलंदर्स की तरफ से खेलते हैं जहां तक पाकिस्तान सुपर लीग का सवाल है, और पिछले T20 मैच में जो कि विश्व कप के अंतर्गत हुआ था, इसी मैदान पर भारत के खिलाफ 2 विकेट उन्होंने चटकाए थे, लेकिन आज उन्हें सफलता नहीं मिली. पहली गेंद उनके ओवर के लेग स्टंप से काफी बाहर, धीमी गति की ये गेंद थी. वाइड का इशारा निश्चित रूप से वहां पर अंपायर की तरफ से आएगा, और वहां पर वाइड के रूप में 1 रन मिलता हुआ इस अवसर पर, बल्कि 2 रन वहां पर दौड़कर 1 रन भी उन्होंने पूरा कर लिया था. इन 2 रनों के साथ भारत का स्कोर 109 4 विकेट के नुकसान पर. धीमी गति की गेंद करने की कोशिश की थी, लेकिन दिशा पर अपना नियंत्रण पूरी तरह से खो बैठे थे इस अवसर पर हैरिस राउफ.
भारत को इस समय रनों की आवश्यकता है, चाहे किसी भी तरह से आए। भारत हर तरीके से आए हुए रन का इस समय स्वागत करेगा। भारत 109 4 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 24 गेंदें बची हैं भारतीय पारी की। पंड्या तैयार अगले गेंद का सामना करने के लिए, और इस बार ऑफ से बाहर ये गेंद, बल्ला चला बैठे थे। गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं, अपनी जगह से हिले तक नहीं थे, किसी किस्म का कोई फुटवर्क देखने को नहीं मिला, और ये कहीं ना कहीं परेशानी में डाल सकता है हार्दिक पांड्या को। A bit of confidence here, definitely by the Indian batsmen, that they can take it till the end and cover it. But that can be very, very difficult because it's a very small difference between confidence and overconfidence. 1 इंच का भी पैरों का मूवमेंट नहीं था हार्दिक पांड्या का इस गेंद को खेलने के दौरान, और फौरन ही जैसे ही गेंद उनके बल्ले को क्रॉस करते हुए विकेट कीपर तक पहुंची थी, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। लेकिन अब की बार फिर से रॉफ की उसी तरीके की गेंद और उसी तरीके का शॉट वहां पर पांड्या के द्वारा, गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं, और लगातार पिछली 2 गेंदें डॉट गेंदें साबित हुई है। पहली गेंद वाइड थी जिस पर एक रन दौड़कर भी ले लिया था, 2 रन अतिरिक्त के रूप में मिले थे भारत को, लेकिन उसके बाद से लगातार 2 गेंदें वाइड हैं, और भारत को यहाँ पर निश्चित रूप से वाइड गेंदें पसंद नहीं है। भारत चाहेगा कि हर गेंद पर स्ट्राइक रोटेट हो, एक आध बाउंड्री भी मिले ओवर के दौरान तो सोने पे सुहागा, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? 16.2 ओवर के बाद भारत 109 4 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद शॉर्ट ऑफ लेग गेंद और खूबसूरती के साथ इस बार इस गेंद को खेल दिया है डीप कवर क्षेत्र में। 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया, दूसरे रन के लिए भी दौड़ पड़ेंगे इससे पहले कि थ्रो पहुंचे। काफी विविड थ्रो था जो कि मिड विकेट क्षेत्र पर खड़े हुए खिलाड़ी को फील्ड करना पड़ा, बैकअप कर रहे थे वहां पर, और इन 2 रनों के साथ भारत का स्कोर अब 111। नेल्सन फिगर भारत के लिए, अमूमन इंग्लैंड के लोग इसे बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली नहीं मानते, एक अनलकी नंबर मानते हैं, लेकिन फिलहाल भारत इस नंबर पर है। 4 विकेट का नुकसान भारत को अब तक हो चुका है 16.3 ओवर की समाप्ति के बाद। लक्ष्य 148 रनों का है। देखना है कि हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा क्या कुछ कर सकते हैं। गुजरात और सौराष्ट्र से ये दोनों खिलाड़ी भारतीय टीम के लिए इस समय बीच मैदान पर हैं, जबकि हैरिस रॉफ तैयार अपने इस ओवर की अगली गेंद लेकर। इस बार शॉर्ट पिच गेंद शरीर की तरफ करने की कोशिश की थी, गेंद को पुल करने का प्रयास किया था वहां पर हार्दिक पांड्या ने, लेकिन गेंद ठीक तरह से बल्ले पर आई नहीं, बल्ले के काफी ऊपरी हिस्से पर लगी, और गेंद इससे पहले कि ऑन साइड पर फील्ड हो सके 1 रन का अवसर तो बन ही चुका था दोनों बल्लेबाजों के बीच। इस 1 रन की सहायता से स्कोर बढ़कर के भारत का 112 4 विकेट के नुकसान पर। प्रतिद्वंदता चाहे कितनी ही ज्यादा कांटे की क्यों ना हो इन दोनों देशों के बीच, लेकिन खिलाड़ियों के बीच जो आपसी भाईचारा, मेल मिलाप इस एशिया कप के शुरू होने से पूर्व और आज के इस मैच के दौरान देखने को मिला है, वो यकीनन काबिल तारीफ है। 112 4 विकेट के नुकसान पर भारत का स्कोर। अगली गेंद लेकर फिर से तैयार हैरिस राउफ, और इस बार लेग स्टंप से बाहर की गेंद, वाइड का इशारा निश्चित रूप से अंपायर की तरफ से आएगा। एक और वाइड गेंद इस ओवर में, 2 वाइड गेंदें अब तक कर चुके हैं हैरिस राउफ, और निश्चित रूप से कप्तान बाबर आजम उनसे खुश नहीं होंगे। जाकर उनसे जरूर कहेंगे कि अपनी गेंदों पर अनुशासन बरते, नहीं तो भारत के लिए राह आसान बनाई जा सकती है। 113 4 विकेट के नुकसान पे 17वां ओवर इस समय प्रगति पर है। 2 गेंदों का आना अभी भी बाकी है। एक लंबा ओवर साबित होता हुआ हैरिस राउफ का। 10.5 रिक्वायर्ड रन रेट है इस समय भारतीय दृष्टिकोण का। जहां तक सवाल है, क्या भारत इस रन रेट से रन बनाता हुआ 148 की मंजिल तक पहुंच पाएगा? अगली गेंद, और जडेजा ने इस बार इस गेंद को फ्लिक कर दिया, 1 रन दौड़कर पूरा किया, दूसरे रन के लिए भी दौड़ लिए इससे पहले कि नॉन स्ट्राइकिंग एंड की तरफ थ्रो आए। और दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर बैठे तमाम दर्शकों ने इस अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट को अपनी करतल ध्वनि के साथ सराहा, और सराहे भी क्यों ना। जानते हैं कि इस समय हर रन भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस 1 रन के साथ भारत का स्कोर बढ़कर के अब 115 4 विकेट के नुकसान पर। अंतिम गेंद का आना बाकी है। इस ओवर में अब तक 8 रन आ चुके हैं। पाकिस्तान खेमा थोड़ा सा शांत इस समय। जानते हैं कि कांटे का मुकाबला है, चिर प्रतिद्वंदी टीमें एक दूसरे के आमने सामने हैं, और कभी भी ये मैच किसी भी टीम की तरफ पूरी तरह से झुक सकता है।
19 बची हुई गेंदों में 33 रनों की आवश्यकता है। भारत को कुछ बड़ी हिट्स की आवश्यकता है। अगली गेंद स्टंप्स पैड्स पर आती हुई और इस बार इस गेंद को फ्लिक करना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं हुआ। संभवतः लेग बाय का इशारा वहां पर अंपायर की तरफ से आएगा और इस एक लेग बाय के साथ स्कोर भारत का बढ़कर के 116, 4 विकेट के नुकसान पर 17वां ओवर इसी के साथ समाप्त हुआ। Ashish, it's not yet over. It can get a bit difficult because India is leaving it a bit too late. India has been chasing a required run rate of almost 10 runs per over for the past 6 to 7 overs now, and they have not been able to compensate. But as you said, the dream over for India can come from Mohammad Nawaz because his 1 over is remaining. Only 5 bowlers have been used by Babar Azam, out of which Shahnawaz Dahani has completed his 4 overs, none for 29, and Shadab Khan has completed his 4 overs, none for 19. But India require 32 from 18 runs from here. Hardik is batting on 14, Jadeja is batting on 24. Both of them have pretty much controlled the proceedings pretty well. But when you leave it a bit too late, it can just slip out of your hand like sand through your hands. That's the biggest problem, and that's what's the concern for Rohit Sharma and Rahul Dravid, who we can see in the dressing room are not very excited, but they are slightly concerned. इस समय नसीम शाह को गेंदबाजी के मोर्चे पर याद किया है कप्तान बाबर शाह ने, और संभवतः इसलिए कि वो उन्हें 20वें ओवर में यूज नहीं करना चाहते, उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि इस जोड़ी को तोड़ करके भारतीय टीम पर दबाव को और ज्यादा बढ़ा दिया जाए, ताकि उसके बाद जो बाकी के 2 गेंदबाजों के पास ओवर्स हैं उस पर पाकिस्तान के ऊपर कोई बहुत ज्यादा दबाव न रहे। जानते हैं कि एक विकेट टेकर बॉलर है, विकेट टेकिंग बॉलर है नसीम शाह। अब तक 2 विकेट चटका चुके हैं 3 ओवर में, मात्र 16 रन देकर, और बाबर शाह निश्चित रूप से अपेक्षा उनसे करेंगे कि इस ओवर के दौरान भी वो कुछ बाबर आजम है, बाबर शाह नहीं है। वो ऐसा कर पाएंगे या फिर भारतीय बल्लेबाज उन पर हावी रहेंगे। But it's a risk because then if that happens, it's a risk worth taking but then Mohammad Nawaz will be bowling the 19th over. That's going to be, again, it might just backfire for Babar Azam, but Babar Azam has to take a call. This is a wonderful match going on at the Dubai International Stadium. The first match for both these teams in the Asia Cup, and both these teams would like to make a winning start, and you still cannot predict who will be the winner because 32 runs are required for India to win this match, and there are only 18 deliveries remaining. इंडिया को तो टेंशन नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब This से। looks like a never 6 ending विकेट है। encounter. Naseem Shah getting ready to bowl from the DSC end, and there have been a lot of false बाकी starts अल्लाह because मालिक, either the batsman is not ready sometimes मैं or the हम bowler क्या runs अपना in दिमाग quickly खराब करें। before the batsman एंटरटेनमेंट is है, एंटरटेनमेंट से डाल लो looking उसको। up. So that has been a problem. But off late in the last 5 to 7 overs, Pakistan has bowled a lot of wide deliveries, which has not helped their cause, making it more difficult for them. Short, slow, outside the off stump. It will go past the batsman as it's been left by Jadeja for a wide. Oh, we were talking about wide deliveries, and Naseem Shah bowls another one. It's been 3 hours and 50 minutes into this encounter that it's going on, and with this wide delivery will help India with another extra opportunity, but Pakistan has to be careful. Are the Pakistani players slightly sort of draining out? Because Naseem is now holding his hamstring. Rizwan is already struggling with his hamstring. Warm conditions here, almost 35, 34 degrees right now later in the evening, but it actually is more warm than what it looks like. But as of now, India 117 for the loss of 4 wickets. Fans from both the sides waiting patiently for something special to happen. Jadeja batting on 24 is on strike. He and Hardik will have to see India through because India require another 31 runs to win. Coming down the track, smash through the covers. Good shot by Jadeja. He saw that the fielder at mid-off is inside the circle. There was the cover, found the gap, 4 runs. REC Chaka, energizing India. That takes India to 121 for the loss of 4 wickets, and now the equation much under control because this is what was the case. The runs required almost 10 runs per over, but this boundary will relieve some pressure. It's just like a pressure cooker at home, and Jadeja using his feet very nicely. 121 for the loss of 4 wickets is the score for India. 27 runs required. Jadeja has been taking care of one end very well. He was promoted up the order for the left-right combination because Rishabh Pant is not in the side today as Naseem Shah bowls to Jadeja. So good one, good length delivery.
Jadeja thought it was a bit short, wanted to pull it, wanted to kind of sort of take it on the onside, but missed it completely. The ball beating the collar of the bat into the gloves of the keeper. But Naseem Shah is not good in terms of his health. He is struggling. He is not happy with his hamstring. It's hurting, हाँ उसकी but still टांग he's में running प्रॉब्लम है, hard वो and बेचारा pulling थोड़ा because बहुत it's चल नहीं पा important रहा for है him to दूसरी take बात। another wicket if Pakistan dreams to win this particular match. He has already picked up 2 wickets on debut, and Babar Azam is expecting some more for him. His bowled his heart out. Beautiful action. Lovely fast bowler. Here comes Naseem Shah. Jadeja gets a ball outside the off-stump, angled across. Dot ball. This is not what India wants. And Naseem Shah is limping. Oh, this is a very, very difficult sight for any Pakistani fan, because Naseem Shah is bowling, but his left leg is hurting very, very badly. He's somehow managing to kind of control, hold on, gather himself, but 15 deliveries remaining and 27 runs to win this particular match for India. This is getting a bit sticky, a bit tricky, because if you leave it a bit too late and you're not able to connect later on in the last few overs, it's going to be very difficult. Naseem Shah bowls on the middle stump, hits the pads, big appeal, and it's been given out. लो जी Wicket falls. So does Naseem, holding his calf, the left calf. Jadeja has gone for a review. Looks like an inside edge, but Naseem Shah is struggling with his leg, and he's down. The physio runs in hard. Everything is happening here, Ashish. The support staff in action, the bowlers in action, the batsmen in action, the on-field umpires in action, as well as the third umpire in action. जी और साथ ही पाकिस्तान के दृष्टिकोण से यदि आप बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी पहले ही चोटिल हैं, उसके बाद मोहम्मद वसीम चोटिल हो चुके हैं, और अगर यहाँ पर जो काफ मसल की में खिंचाव है, मांसपेशियों में जो खिंचाव है वो ज़्यादा हुआ तो फिर कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान के अगले कुछ मैचों में नसीम शाह भी गेंदबाजी करते हुए नजर नहीं आए, जो कि पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय हो सकता है। इस ओवर में भी अभी 2 गेंदें और बाकी बची हुई हैं, और इस समय तीसरे अंपायर रिव्यू कर रहे हैं, और वहां पर जो निर्णय उन्होंने दिया था ऑन फील्ड अंपायर ने, उसे उन्हें पलटा है और कहा है कि जडेजा नॉट आउट है, जडेजा सुरक्षित है। एक राहत की सांस पूरे भारतीय खेमे में ड्रेसिंग रूम में। विराट कोहली ने करतल ध्वनि के साथ आकाश की तरफ अपनी निगाहें उठाकर ईश्वर का धन्यवाद मानो उन्होंने किया हो कि जडेजा बीच मैदान पर मौजूद है, और भारत को जो जीत के सफर तक, जीत के मंजिल तक जो सफर है उस तक ले जाने के लिए जडेजा अभी भी बीच मैदान पर अपनी चुनौती पेश कर सकते हैं। लेकिन बीच मैदान पर अभी भी खेल रुका हुआ है, क्योंकि नसीम शाह 19 वर्ष के पाकिस्तान के बेहतरीन गेंदबाज, जिन्होंने कि डेब्यू किया T20 में, आज के इस मुकाबले में भारत के खिलाफ दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम पर 2 विकेट अब तक वो चटका चुके हैं भारतीय टीम के। लेकिन इस समय बाएं पैर की मसल्स, काफ मसल्स में खिंचाव है, जिसकी वजह से वो बीच मैदान पर है। और यहाँ पर देखना दिलचस्प होगा कि इस ओवर की बाकी बची हुई 2 गेंदें भी वो कर पाएंगे या फिर नहीं। Very interesting, because Pakistan has used only 5 bowlers till now, and from where will they get another bowler? Because Iftikhar Ahmed is there, they have Khoshtil who can also bowl, but then getting part-time bowlers at such crucial moments will be very, very difficult for Babar Azam. And in fact, the third umpire overruled and got the review in the favor of Ravinder Jadeja, because the ball, it hit the pads in front of the stumps, but it pitched outside the leg stump. That's the reason why Ravinder Jadeja was given a not out. But while bowling the delivery, Naseem Shah has suffered some really very, very dangerous calf cramps in his left leg, and he's looking very, very agitated. He's withering in pain, and the physio working overtime, and it's difficult. Youngsters, 19-year-old boy, playing his first T20 international, fighting his heart out. Very, very crucial over where Pakistan are defending 148 runs. India require 27 runs from the remaining 14 deliveries. Jadeja is still there. 28 is what he has made. But Ashish, looks like India is leaving everything too late. That's not something which is comfortable. Doesn't really give you a comfortable feeling. But Naseem Shah looks good. He's limping and running while bowling the next one. Not very comfortable, and Jadeja gets the ball in the slot. He hits it over long on into the side screen for 6 runs.
What a shot. This is what the doctor ordered for India. But Naseem Shah definitely not in the best shape, limping and bowling. Somehow he managed to bowl a delivery. And I think what you mentioned about who will bowl those last two deliveries, I guess Babar Azam and company know that there's nobody else. So Naseem Shah only has to do the needful. But a good shot there by रविंद्र जडेजा। लेकिन निश्चित रूप से सराहना करनी होगी नसीम शाह की 19 वर्ष के इस युवा गेंदबाज की। काफ मसल्स पूरी तरह से खिंचे हुए हैं, मांसपेशियां पूरी तरह से खिंची हुई हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने फैसला किया कि बची हुई 2 गेंदें वो करेंगे। हालांकि पिछली गेंद पर जडेजा ने एक लंबा शॉट लगाकर गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया 6 रनों के लिए। अगली गेंद पर क्या कुछ कर पाएंगे जडेजा, देखने की बात होगी। फिलहाल अब जो समीकरण है वो ये कि 13 गेंदों में 21 रनों की आवश्यकता है भारत को इस मुकाबले को जीतने के लिए। गेंद और रनों की भाषा में यदि बात करें तो ऐसा संभव है। इसी बीच अगली गेंद और इस बार उछाल लेती हुई गेंद अपरकट करना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं। बाकी का काम पूरा किया मोहम्मद रिजवान ने। ओवर की समाप्ति हुई 18 ओवर के बाद भारत 127, 4 विकेट के नुकसान। तो पंकज, बाकी के 2 बचे हुए ओवर, 12 गेंदें और इन 12 गेंदों में 21 रन संभव है। क्रिकेट के दृष्टिकोण से, T20 के दृष्टिकोण से निश्चित रूप से संभव है, लेकिन दबाव निश्चित रूप से भारत के ऊपर है। हालांकि ये देखते हुए कि जो उनके मुख्य गेंदबाज हैं, तेज तरार गेंदबाज, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की आज नसीम शाह ने, उनके 4 हो चुका है। अब 1 ओवर बचा है वहां पर हरीश रऊफ का और 1 ओवर बचा हुआ है मोहम्मद नवाज का। तो ये 12 गेंदें निश्चित रूप से बड़ी कश्मकश भरी होंगी, बड़ी संघर्षपूर्ण होंगी। हर गेंद एक घटना के रूप में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। देखना है कि पलड़ा किसका भारी रहता है। और जैसे ही अपना ओवर समाप्त किया वहां पर नसीम शाह ने, वो वापस ड्रेसिंग रूम चले गए हैं और वहां पर तमाम उनके खिलाड़ियों ने उनकी पीठ थपथपाकर उनकी सराहना की। जिस तरह का प्रदर्शन अपने पहले ही T20 मुकाबले में उन्होंने किया और साथ ही साथ जिस तरह से मांसपेशियों में खिंचाव के बावजूद उन्होंने अपनी अंतिम 2 गेंदों को किया। हैरिस राउफ तैयार, नए ओवर की शुरुआत। पहली गेंद पंड्या ने गेंद को खेल दिया मिड विकेट क्षेत्र में। फील्डर वहां पर मौजूद, 1 रन दौड़कर पूरा किया। दूसरे रन को लेना चाहते थे, लेकिन फिर अपना इरादा बदला। 1 रन से ही संतोष करते हुए इस 1 रन के साथ भारत का स्कोर 128, 4 विकेट के नुकसान पर। बची हुई 11 गेंदों में अब पंकज 20 रनों की आवश्यकता है। दोनों ही देशों के समर्थक दर्शक अपने अपने ईश्वर से, अपने अपने अल्लाह से प्रार्थना करते हुए कि ईश्वर अल्लाह अपनी टीम को कामयाबी दे। देखना ये है कि अंततः ये मैच किसके पक्ष में जाता है। लेकिन जहां तक इस मैच का सवाल है, निश्चित रूप से काफी कश्मकश भरा रहा, काफी संघर्षपूर्ण रहा और इस समय पराकाष्ठाएं छू रहा है इस मैच का रोमांच। If Harish Rauf is bowling this over, looks like Mohammad Nawaz will bowl the last over. That's going to be very interesting because looks like Babar Azam got his equations wrong, or probably he didn't have enough bowlers. But right now, Jadeja is asking for a change of gloves. It's very warm there, but the umpire is objecting to this. It's not really a good idea. But Jadeja says that these are completely wet, and these are also tactics of getting information and updates from the dressing room. But both the teams trying equally hard to make sure that they entertain everyone. But the on-field umpire is definitely taking objection to this. जी बिल्कुल, फिलहाल नए ग्लव्स पहन करके तैयार हैं जडेजा बीच मैदान पर। 19वां ओवर इस समय प्रगति पर है। 128, 4 विकेट के नुकसान पर भारत का स्कोर है। जडेजा ने अब तक काफी बढ़िया बल्लेबाजी की है। 34 रन बना चुके हैं 37 गेंदों का सामना करते हुए, और जिसमें बल्कि 27 गेंदों का सामना करते हुए, माफ कीजिएगा, जिसमें 2 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। भारत को इस समय निश्चित रूप से रनों की आवश्यकता है। अगली गेंद इस पर दौड़कर बहुत तेजी के साथ 1 रन बना लिया। हालांकि उस प्रयास में जडेजा और हैरिस राउफ आपस में टकराए थे, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच काफी सौहार्दपूर्ण वातावरण देखने को मिला है एशिया कप के शुरू होने से पूर्व। चाहे वो विराट कोहली और बाबर आजम के प्रैक्टिस ग्राउंड पर बैटिंग हो, या फिर इस मैच के दौरान जिस तरह से टकराने के बाद भी दोनों खिलाड़ियों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। 129, 4 विकेट के नुकसान पर अगली गेंद लेकर के तैयार हैरिस राउफ। सामने है इस समय पांड्या पूरी एकाग्रता के साथ।
दाएं हाथ से हैरिस राउफ की अगली गेंद और इस बार इस गेंद को उठा करके खेला है वहां पर इनसाइड आउट। गेंद एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में सीमा रेखा की तरफ जा रही है, लेकिन दो खिलाड़ी वहां पर गेंद को फील्ड करने की कोशिश करते हुए पहले प्रयास में गेंद हाथ से छिटकी। देखना होगा कि क्या गेंद सीमा रेखा से आई या उससे पहले ही दोबारा से फील्ड कर ली गई थी, लेकिन इस बीच दौड़कर 3 रन तो वहां पर पूरे कर ही लिए हैं इन दोनों बल्लेबाजों ने। और वहां पर 4 रनों का इशारा आता हुआ गेंद सीमा रेखा पर जाकर टकराई थी, इससे पहले कि दूसरे प्रयास में वहां पर गेंद को फील्ड करने का प्रयास किया जाता। हालांकि बैकअप कर रहे थे वहां पर फकर जमा भी, लेकिन वो गेंद तक नहीं पहुंच पाए और इस चौके की मदद से स्कोर भारत का 133 4 विकेट के नुकसान। REC चौका, energizing India. 9 गेंदों में अब 15 रनों की आवश्यकता है। समीकरण धीरे धीरे भारत के पक्ष में झुकता हुआ नजर आ रहा है। अंतिम ओवर मोहम्मद नवाज को करना है, जो कि बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स स्पिन गेंदबाज हैं और डेथ ओवर में गेंदबाजी करना यकीनन आसान नहीं होता और बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज के लिए निश्चित रूप से एक चुनौती भरा ओवर होगा। हैरिस राउफ की बीच अगली गेंद धीमी गति की गेंद खूबसूरती के साथ गेंद को पुल कर दिया, गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। फकर जमा ने वहां पर एक लंबी डाइव लगाई जरूर थी, लेकिन गेंद उनके सामने से उनके हाथों के नीचे से निकलती हुई सीमा रेखा से बाहर चली गई और इस चौके की मदद से भारत का स्कोर 137 4 विकेट के नुकसान पर। हैरिस राउफ का ये ओवर थोड़ा महंगा साबित होता हुआ लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके लगाने में कामयाब रहे हैं हार्दिक पांड्या और अब तक 10 रन इस ओवर में आ चुके हैं। इसी तरह के प्रदर्शन की आवश्यकता है इस समय भारतीय टीम को। एक बार फिर से तैयार वहां पर बाबर आजम अपना सर हिलाते हुए, इस तरह की अपेक्षा नहीं कर रहे थे वो हार्दिक पांड्या से कि वो हैरिस राउफ के गेंदों के सामने बल्लेबाजी कर पाएंगे। इसी बीच अगली गेंद और इस बार पटकी हुई गेंद ये, लेकिन वहां पर अंपायर का इशारा आता हुआ कि एक ओवर की जो बाउंसर है वो पूरी हो चुकी है। 137 4 विकेट के नुकसान पर इस समय भारतीय टीम का स्कोर है। यहाँ से 11 रनों की आवश्यकता है, मात्र 7 गेंदें और बची हैं। समीकरण काफी हद तक भारत के पक्ष में झुके हुए नजर आ रहे हैं। काफी उछाल था, कंधे का खासा इस्तेमाल किया था पिछली गेंद पर और मोहम्मद रिजवान को हवा में उछलते हुए दोनों हाथ आकाश की तरफ करते हुए उस गेंद को एकत्र करना पड़ा था अपने दस्ता। हैरिस राउफ के इस ओवर की अंतिम गेंद इस बार फिर से पटकी हुए शॉर्ट आर्म पुल कर दिया खूबसूरती के साथ, गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। REC चौका, energizing India. मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में जो गैप था उसका खासा अच्छा इस्तेमाल किया, बैकफुट पे जाकर अपना मौका ताड़ा हार्दिक पांड्या ने और गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया। भारत का स्कोर 141 4 विकेट के नुकसान पर। और क्या शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया है इस ओवर के दौरान हार्दिक पांड्या ने। 27 रन 15 गेंदों का सामना करते हुए उन्होंने अब तक बनाए हैं 4 चौकों की मदद से और जिस तरह का प्रदर्शन उनका हालिया दौरे पर रहा, उससे पहले आईपीएल में रहा, ठीक उसके अनुरूप इस समय भी दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड पर उनका प्रदर्शन जारी है। A flurry of boundaries making it quite comfortable for India, and the partnership has been a half century one. So 52 runs, the first half century partnership here, 52 runs from 28 deliveries, absolutely brilliant. And when it looked that things were getting a bit difficult for India, it's turning out that India are now pretty much in control because 141 for the loss of 4 wickets now, and the last over cost Pakistan 14 runs, which has changed the scenario of the game. Of course, whatever may be the result of this game, please do not forget to tune in to our post-match show, Hero of 2020, where our experts Venkat Sundaram and V. Krishnaswamy will try and bisect and dissect this game and get some good stuff out of it. Along with our hosts, the moderators will be Adesh Kumar Gupta and Sakshi Mandwal. But what a partnership, a half-century stand between Jadeja and Hardik Pandya, getting India closer to victory as Mohammad Nawaz will be bowling the last over. So it's more or less a couple of hits as India would try to finish this up quickly. 6 deliveries and 7 runs required. Probably Babar Azam missed an extra bowler. इस मैच की सबसे बड़ी साझेदारी है अब तक इन दोनों बल्लेबाजों के द्वारा और निश्चित रूप से जिस तरह की बल्लेबाजी जडेजा और हार्दिक पांड्या ने की है काबिले तारीफ है। भारत अपनी मंजिल से मात्र 7 रन दूर है, 6 गेंदें बची।
Let's see how quickly can India finish this, or can Pakistan get something out of it. Clean ball, first ball, left arm round the wicket, Mohammad Nawaz balls, and straight one. Jadeja tries to go for a big heave over mid-wicket. Ball missing the bat, but hitting the stumps, furniture disturbed, and the match is not yet over. Oh, what a delivery. Flatter, quicker, completely foxy Jadeja. Jadeja had the right ideas, but at the other end, distraught Hardik Pandya, holding his hands in his head, because this is not what India expected. Suddenly, the Pakistani fans are up, and this match is alive for them. जी हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी फिनिशर भारत के बाकी हैं। दिनेश कार्तिक का मैदान पर आना बाकी है। रविंद्र जडेजा ने अपना रोल अदा कर दिया, बाकी की 6 गेंदें भी खेल लेते और भारत को जीत के द्वार तक ले जाते तो निश्चित रूप से एक अलग ही बात होती। लेकिन फिलहाल काफी जिम्मेदारियों के साथ, काफी दबाव के साथ इस समय पहुंच रहे हैं बीच मैदान पर दिनेश कार्तिक, और हार्दिक पांड्या ने आते ही उनसे मंत्रणा की, बातचीत की और उन्हें कहा कि आप संयम के साथ खेलें और अपना विकेट सुरक्षित रखें, और बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है जो समीकरण है। 5 गेंदों में 7 रन T20 मुकाबले में आसानी से बनाए जा सकते हैं। 140 का स्ट्राइक रेट अब तक T20 मुकाबलों में रहा है। 48 मैचों का जहां तक सवाल है दिनेश कार्तिक का, और 28 के लगभग उनका औसत रहा है। मोहम्मद नवाज का ओवर, जिसका हम कह रहे थे कि क्या वो टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, दोनों ही तरह से एक दुधारी तलवार होती है इस तरह की गेंदबाजी। अगर बल्लेबाज आपकी गेंदों पर रन बनाने पर आमादा हो जाए और कामयाब हो जाए तो ताबड़तोड़ अंदाज में रन बनते हैं, और अगर आपको विकेट मिल जाए तो फिर कहीं ना कहीं दबाव पूरी तरह से बल्लेबाजों के ऊपर आ जा सकता है। अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार हैं और सामने है इस समय दिनेश कार्तिक पूरी एकाग्रता के साथ। क्रीज के बिल्कुल कोने से ये गेंद, और इस बार खूबसूरती के साथ गेंद को पुल कर दिया, लेकिन डिग बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद है। आसिफ अली गेंद को उन्होंने फील्ड किया, पहली ही गेंद पर अपना खाता खोल लिया, और अब जमे जमे बल्लेबाज हार्दिक पांड्या अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार है। और माइक्रोफोन पर पंकज अठा। It's been 4 hours and 10 minutes, Ashish, that this encounter is going on, and yet we don't have a clear winner. But this has been absolute entertainment. What will be the story in the last few episodes of this particular match? 6 runs required from 4 deliveries for India. Hardik Pandya is on strike. Ideally speaking, one hit over the park would do the needful, but that will be quite ideal. Will Mohammad Nawaz come up with something special? Brave player Mohammad Nawaz bowling the last ball of the over. Hardik Pandya gets the ball on the middle stump, makes room for himself, smashes that hard towards the cover, straight to the fielder. A dot ball. 3 deliveries and 6 to win. Can this be more dramatic? Can this have any more spice in the match? But India needs to be careful, because a small mistake here will really create a lot of problems. पिछली गेंद पर रन नहीं बना और दिनेश कार्तिक को जो निगाहों ही निगाहों में इशारा किया हार्दिक पांड्या ने, लगा ऐसा कि दिनेश कार्तिक चिंता न करिए, मैं हूँगा। Let's see. हाँ, ऐसे लगा। ये बात तो सही कहा कमेंटेटर ने। Huge six, end of the story. Half a dozen runs. India have won this match by 5 wickets, and Mohammad Nawaz, brave, absolutely kudos to him, the way he bowled the last over, and he did manage to kind of create some problems for the Indians. But India have won this match against Pakistan by 5 wickets. Their first encounter of the Asia Cup, and they have done the needful. What a match this turned out to be. India won the toss, decided to bowl first. They got Pakistan all out on 147 and chasing 148 runs. India did have a few hiccups here and there. They had to work till the last over, and they have won this match by 5 wickets. Quick bowling run through for you. Couple of wickets for Naseem Shah. 3 wickets for Mohammad Nawaz. Brave bowling by him, but in the end it was Hardik Pandya who, along with Jadeja, with a half-century stand, made the difference. And with a hit over the boundary, Hardik Pandya got India past the checkered flag. So the news here is that India has won the match by 5 wickets. Pakistan, India was the encounter, and we take you now to the post-match show called Hero of 2020. Be there with our experts Venkat Sundaram and V. Krishnaswamy, along with our host Adesh Kumar Gup and Sakshi Madwal. All India Radio
is back with live action of Asia Cup 2022. All India matches on FM Rainbow Networks, primary channels, LRS, FM relay channels, DRM and DTH. All other matches will be broadcast on LRS, FM relay channels, DRM and DTH. Just tune into All India Radio for live action of Cricket Asia Cup 2022 from 7 p.m. onwards. This commentary is brought to you by All India Radio in association with Channel 2, exclusive audio global right holders. आकाशवाणी ले आया फिर से आपके लिए क्रिकेट का रोमांच। क्रिकेट एशिया कप 2022 के सभी मैचों का लाइव एक्शन। भारत के सभी मैचों का प्रसारण एफएम रेनबो नेटवर्क, प्राइमरी चैनल्स, एलआरएस, एफएम रिले चैनल्स, डीआरएम एंड डीटीएच और अन्य मैचों का प्रसारण एलआरएस, एफएम रिले चैनल्स, डीआरएम एंड डीटीएच पर सुन सकेंगे। तो सुनना ना भूलें क्रिकेट का लाइव एक्शन शाम 7 बजे से सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी पर। Hero of the 2020. हमें सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। मैं हूँ साक्षी मांडवाल। हम आपके लिए लेकर आ गए हीरो ऑफ द 2020 और उसके अंदर बड़ी खबर ये है कि आज भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया है। यस, द इंडियंस went on to win their first encounter in Asia Cup 2022 against Pakistan, defeating them by 5 wickets in what could be said to be a very thrilling encounter, going down to the wire till the last over with just 2 more balls to remaining in that over in the last one. मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में समय जुड़ रहे हैं former Indian cricketer and former manager of the Indian cricket team, Venkat Sundaram. Good evening, Venkat. Hi, good evening. And along with him, senior sports journalist and writer, we have B. Krishnaswamy. Good evening, Swami. Thank you. And of course, मेरे साथ यहाँ पर इस समय मौजूद है my dear friend and co-host also for our show, we are Adesh Kumar Gupta. Good evening, Adesh जी. जी हाँ, गुड इवनिंग और बहुत बहुत स्वागत सभी का। और क्या दिलचस्प मुकाबला रहा। वेंकट और चेतन शर्मा जिनकी गेंद पर छक्का लगाकर कभी जावेद मियांदाद ने मैच जिताया था, आज हार्दिक पांड्या ने वो कारनामा कर दिखाया है। क्या कहेंगे जी? उसमें ऐसा है कि वी मेड हेवी वेदर ऑफ दिस। एक्चुअली देयर वर times when the partnership was brewing between Rohit Sharma and Virat Kohli. Both of them threw away their wickets. It looked as if they threw away. There was no need. Both were playing well. Kohli was getting back. Yes, Venkat also will take directly. हम अपने श्रोताओं को लेकर चलते हैं इस समय closing ceremony की ओर। सबसे पहले the end. Well played. Thank you very much. Yeah, that is what we are looking to, play till the end. We all know that they have a very good bowling attack. They're fast, especially their fast bowler. They are very accurate and they're not giving any loose balls. So we have to play good shot. Do you want to talk about that particular shot that you played, because you seemed so unhappy after you got out because you were so close? Yeah, I could have finished the game because left-arm spinner against left-hander and last over. So yeah, I think I could have finished the game, but unfortunately I didn't finish the game. But yeah, Hardik was playing superbly. Yeah, what about Hardik Pandya? I think he was very clear. When he came for batting, he said, "Okay, I'll play my shots no matter what." So he knew his strength, and also I was also looking to play positive and giving him a strike at the other end. You did really well. Congratulations and all the best for the rest of the tournament. Thank you very much. Well, there you had a very happy man, Ravinder Jadeja. Of course, 35 रन की उन्होंने पारी खेली, से 29 बॉल्स के अंदर उनका कंट्रीब्यूशन रहा। ओवरऑल बॉलिंग में भी he had a good play today, but all praise for the man, जो भी आदेश जी ने बोला, जिनका नाम लिया, वही नाम अभी हमने देखा रविंद्र जडेजा ने भी लिया, हार्दिक पांड्या। स्वामी, your input on him first of all. Well, I must say, all credit, of course. Ravindra Jadeja mentioned a lot of Hardik Pandya, but so did my colleague Venkat Sundaram. In the earlier 2 segments of the commentary that we had, or expert comments, whatever you say, he had said that Hardik Pandya, now that he is fully fit and he is bowled so well, and of course we know about his absolutely worldwide batting. So I think
You know, the way he's playing, he's worth his weight in gold and more. And so I say, hats off to him. India made a little heavy weather, as Venkat said right at the start. We gave away some 20 odd runs extra towards the end, and then threw away a couple of wickets while batting. It should have been a much, much easier passage, through this match. But nevertheless, it created a lot of, it was a lot very thrilling and set the stage for the rest of the tournament. और वेंकट, आपको लगता है कि विराट कोहली का कैच जिस तरह से छूटा, वो एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ भारत के लिए? बिल्कुल ऐसा है कि ये T20 क्रिकेट ऐसे ही चलता है। इसमें कभी कैच छूट जाएगा, कभी विकेट कीपर ब्रिलियंट कैच पकड़ भी लेगा, कभी रन आउट हो जाएगा। ये अनप्रेडिक्टेबल टाइप ऑफ गेम है। लेकिन हाँ, वो उस टाइम वो 0 पे बैटिंग कर रहे थे, फर्स्ट ओवर में वो 3 विकेट ले जाता, एंड वो यंगस्टर बोल्ड सो ब्रिलियंटली। ही इज द फाइंड ऑफ दिस मैच। इंडिया माइट हैव वन दिस मैच, but Pakistan has found a unique talent, and that boy Shah, as I said, you should never underestimate a young Pakistani fast bowler. They have tremendous talent, and we've seen that today. True, Naseem Shah And he almost bowled on one and a half legs. Yes. 4 overs, 2 wickets, economy of 6.8, सिर्फ 27 रन देना। And as Venkat just pointed out, अगर हम नसीम शाह की बात भी करते हैं तो KL राहुल का उन्होंने क्रूशियल विकेट लिया, और उसके साथ ही साथ उन्होंने सूर्य कुमार यादव का भी। And let's not forget, both the wickets that he took were bowled, and that speaks a lot on the kind of bowling this young 19-year-old boy Venkat can throw. See, most of the fast bowlers that come out from Pakistan are 18, 16, 15, whatever. And the rages are always suspect. Yeah, that of course. But anyway, the thing is, they've got tremendous talent. You don't forget that Jadeja was given out of his bowling, and he had to have a review, and it was overruled. Otherwise, he would have taken 3 wickets. And he was bowling, as Swami said, with 1.5 legs. He had cramps and he could hardly walk. And he bowled at 142 with such a severe cramp. जी हाँ, लगभग आधा अधूरा चोटिल होने के बावजूद उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। स्वामी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो पाकिस्तानी टीम है, उन्होंने जो स्लो ओवर्स में उनमें तो अच्छे रन बनाए, लेकिन आपको लगता है कि बीच में रनों की रफ्तार काफी धीमी रही, और पूरा क्रेडिट इंडियन बॉलर्स को जाता है? देखिए, मैं उन्हें स्लॉग ओवर्स नहीं कहता हूँ, क्योंकि वो था डेस्परेट रन गेटिंग था। आखिर के 2 ओवर में जो उन्होंने 20-25 रन जो बनाए, तो वो मेरा ख्याल है शायद इंडियंस की कमी थी जो हमने उनको दिए। पाकिस्तानीज का उतना क्रेडिट नहीं था, क्योंकि आई थिंक वी गेव अवे फ्यू रन्स एक्स्ट्रा, एंड दैट मेड थिंग्स डिफिकल्ट फॉर अस। आई थिंक द match as such, India played much, much better than what the result shows. The result shows a 5-wicket win with 2 deliveries to spare, but I think the gap was far, far more between the 2 teams. Pakistan actually did well to make a fight of it. Indians should not have allowed that much, but I would say that the Indians have got great firepower. Absolutely, Bhuvi was as usual amazing, when he bowled his spell, and I think also hats off to both our youngsters, Avesh and Arshdeep. So I think a good bowling performance, and Hardik Pandya, of course, was absolutely outstanding, and I don't think I need to say anything more than that. I mean, he did just about everything. और स्वामी, देखिए, आप जिस तरह से मैच को डिस्क्राइब कर रहे हैं वेंकट और साक्षी, लेकिन कमाल है हमारे श्रोताओं का भी। हमने अपने टेलीफोन नंबर उन्हें नहीं बताए हैं, लेकिन उन्हें पता है कि किस टेलीफोन नंबर पर फोन करना है। तो देखिए, 2 श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अच्छा आदेश जी, वाह, आपने तो मुझे ये खुशखबरी दे दी। आई वॉज नॉट अवेयर कि हमारे साथ 2 लिसनर्स इस समय जुड़ गए। आइए उनसे भी थोड़ी सी बातचीत करते हैं। गुड इवनिंग, नमस्कार। क्या नाम है आपका, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? अच्छा, हाँ, आप तो मुझे खुश। मेरा नाम पिंटू सिंह, यूपी रायबरेली, तहसील पिलई, गांव का नाम पूरे सुप्रसन्न सिंगापुरा। और जिस तरह से जो मैच हुआ, हार्दिक पांड्या तो हार्दिक है ये हैं, और जो बताया सबसे पहले असली चंगू का, जिन्होंने कमेंट्री की जबरदस्त एफएम रेनबो की जितनी तारीफ की जाए। और लेकिन लास्ट में ये कहना था, खेल और खिलाड़ी के साथ मैं हूँ आदेश कुमार गुप्त। बाद में टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला उनका बढ़िया रहा, और उनको जो 25 रन गए थे वो बहुत अजीब था। लेकिन भारत ने इस मैच को पाकिस्तान को हराकर पूरा यहाँ हमारे कॉलोनी में हल्ला मच गया। ये इस समय टिकरी बोर्डर इलेक्ट्रो कंपनी में काम कर रहा हूँ मैं। क्या बात है पिंटू जी, आपकी मुलाकात, एक बार बात आपको आवाज सुनाई देते हैं आदेश जी की। आदेश जी, पिंटू जी सुन लेंगे, लाइन पे जी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया है। आप जुड़ते हैं एक और लिसनर से। हेलो जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जरा जोश के साथ बोलिए। सर, मैं चतुर्वेदी बोल रहा हूँ। जी, कहाँ से?
दिल्ली से। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताइए। जी मैच में बहुत बढ़िया मजा आया सर, जो इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था जी उसमें बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी किया हार्दिक पांडे ने हमारे। जी कोई सवाल पूछिए हमारे एक्सपर्ट से। सवाल यही पूछना था, आए दिन कमेंट्री नहीं आती, इससे खुश नहीं हूँ। जी जरूर हम आपको बताएंगे कि कहाँ आप सुन सकते हैं। स्वामी देखिए जो श्रोताओं की प्रतिक्रिया मिल रही है, यानी स्वामी आप देखिए कि आधी रात बीत चुकी है, चांद अपने पूरे शबाब पर है, लेकिन क्या माहौल होगा इस समय भारतीय ड्रेसिंग रूम का? देखिए ऐसा है, भारतीय ड्रेसिंग रूम में माहौल तो खैर मतलब बहुत ही अच्छा होगा। सब जो है बहुत खुश हैं और पसीने में लथपथ है। वहाँ पे गर्मी इतनी होगी, ह्यूमिडिटी इतनी है, यहाँ पर हमें जो है कम से कम भारत और पाकिस्तान जो उनके अपने देश हैं वहाँ से भी ज़्यादा कम से कम 10 डिग्री अधिक है वहाँ पर दुबई में। और स्टेडियम के अंदर जो है जो ह्यूमिडिटी और ड्यू और सब कुछ है, इस समय जो है मैं कहता हूँ जो खिलाड़ी खेल रहे हैं, गेंदबाजी करें या बल्लेबाजी करें, को दाद देनी चाहिए, because I think the conditions are extremely difficult. But I suppose, you know, when you are competing at that level and when you are winning, I suppose all the pain goes. And when you're making an effort like Naseem Shah did, all that pain is put into the background. और मेरा ख्याल है कि दोनों टीमों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया। मगर बधाई भारत को, क्योंकि उन्होंने जो है आखिर तक जो है अपना जो है संयम मतलब खोया नहीं। मतलब कि जब आखिरी ओवर में भी जब जडेजा आउट हुए तो थोड़ा सा टेंशन सा हो गया था, मगर फिर भी जो है हार्दिक पांड्या ने जिस प्रकार से खत्म किया मैच एक और सिक्सर के साथ, अगर उन्हीं के जैसे खिलाड़ी दिनेश कार्तिक भी दूसरे छोर पे खड़े थे और वो भी अगर उनको मौका मिलता तो वो भी शायद एक सिक्सर मार के ही खत्म करते मैच। वेंकट, विराट कोहली को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की और अच्छे रन भी बनाए, तो आपको लग रहा है ये शुभ संकेत? जी बिल्कुल ऐसा है कि वो विकेट पे खड़े रहे, 10 ओवर खड़े रहे, 35 रन बनाए, ठीक है, आउट हो सकते थे जीरो पे, इनर एज आउटर एज सब कुछ हुआ उनका, टॉप एज पे हुआ 6 रन हो गए उसके, लेकिन ये क्रिकेट है ऐसे ही। तो इसमें बॉलिंग अच्छा है, विकेट में कुछ दम है, बॉलर अच्छे हैं, उसमें 35 रन बनाना भी आपको काबिलियत होना चाहिए, तभी आप बना सकते हैं। तो वो तो हमने देखा कि उनमें क्लास तो है, अभी आ जाएंगे। ये T20 में आप उनसे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो कि वो 100 रन बनाएंगे, उनसे आप एक्सपेक्ट करो 40-50 रन बनाएंगे, वही जरूरत है। लेकिन आज मिडिल नहीं कर रहे थे, बाद में वो खेलने लगे और जब वो खेलने लगे तब आउट हो गए, तो इसी चीज का अफसोस है। नहीं तो आज 60-70 रन बना के ये मैच आराम से जिता सकते थे। एंड स्वामी, व्हाट आई वांट टू आस्क यू इज कि आज ये पहला एनकाउंटर था जो हमने देखा इंडिया पाकिस्तान का, लेकिन अभी एक बार फिर से हो सकता है, चांसेस बहुत हाई कि दोनों टीम्स एक दूसरे के सामने फिर से आएंगी। बिल्कुल। गिवन हाउ मच ऑफ अ ड्रैग टुडे द इंडियंस मेड ऑफ द गेम व्हेन वी हैड अ टारगेट ऑफ 147 एंड पाकिस्तानीज ने हमने होल्ड कर लिया लास्ट ओवर तक, do you think there are a few learnings that the Indians would want to take away from this game to make sure not to implement in the next game? Certainly, I mean, you know, Rohit and the team management made a few decisions. They, you know, the kind of choices that they made, they still have, you know, I mean, the best thing is that India still has an Ashwin back there, Rishabh Pant sitting on the bench, you know, and you also, you know, so I would say, you know, Deepak Huda, he's another fine all-rounder. So I suppose, you know, India has got excellent bench strength, and I think that is what probably, you know, gives Rohit and the entire team management a lot of confidence. So I would say that, you know, this was like an experiment. This was the first match. They were kind of warming up for the tournament as such, and I would say, I mean, this team certainly did pass the test with flying colors, even if it was with only 2 balls to spare. और वेंकट आपसे जानना चाहेंगे कि आपका मैन ऑफ द मैच कौन है आज के मैच में? उसमें तो मैं आऊंगा, लेकिन जो आपने स्वामी जी से पूछा क्वेश्चन कि व्हाट आर द लर्निंग्स, अकॉर्डिंग टू मी इंडिया मस्ट हैव अ लेफ्ट हैंडर इन द टॉप 3. अनलेस वी हैव अ लेफ्ट हैंडर वी विल नॉट विन एनी टूर्नामेंट. वे राइट हैंडर्स आर शेकी. हमारा स्टार्ट आज भी नहीं हुआ, 50 for 3 हो गए थे. इट कुड हैव बीन 0 for 3. फर्स्ट डे ओवर में 3 जाने थे तो आई थिंक हाँ पहले तो गया वो, फिर कोहली का कैच ड्रॉप हुआ, फिर एक गॉड बैंड का अपील हुआ, आउटसाइड एज वाज ड्रॉप्ड. या सो यू नो व्हेन यू लुक एट इट, इट कुड हैव बीन 0 for 3 and we must have a left hand right hand combination at the top of the order, and therefore I feel that Dhawan, who's in form, Shikhar Dhawan, he should be included in this team if you want to do well, because our top order is looking very shaky and we are too dependent on middle order and lower middle order to win matches. ईशान किशन, ऋतुराज गायकवाड़.
Well, whatever. I'm not taking names. You can even have Pant opening the batting. So these are the options. These are the difficulties. You don't have to take somebody from outside, but you can take somebody from within the squad. और इससे पहले कि प्रेजेंटेशन सेरेमनी में चले, यहाँ आपसे स्वामी छोटी सी टिप्पणी ये चाहेंगे कि भुवनेश्वर कुमार को हम क्यों बोल रहे हैं? नहीं, भूलने की बात ही नहीं, वो क्योंकि वो हमारे लिए हमेशा मैच विनर रहे हैं। उन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए पाकिस्तान के खिलाफ जो है यहाँ पर पिछले कुछ टाइम पे, और वो जो है बहुत ही डिपेंडेबल बॉलर है। और जिस प्रकार से अगर आप भारत की गेंदबाजी देखें तो पिछले कुछ सालों से जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर और ये जो हमारे तेज गेंदबाज जो है, इन्होंने हमें तमाम मैचेस जिताए हैं। तो मेरा ख्याल आज एक और मैच था जहां पर इतने सारे खिलाड़ियों का योगदान था, उसमें भुवी का भी जो है योगदान बहुत बड़ा था। और अब सीधे चलते हैं प्रेजेंटेशन सेरेमनी में। Pakistani captain Babar Azam to have a chat with us. Have to say well done क्योंकि इतना बड़ा स्कोर नहीं था, लेकिन आपने तो मैच बना दिया। डेफिनेटली मेरे ख्याल से जिस तरह हमने स्टार्ट किया था, और मेरे ख्याल से हम 10 से 15 रन शॉर्ट थे, और जिसके बाद जो हमने बॉलिंग में कमबैक किया और फास्ट बॉलर ने जिस तरह बॉलिंग की और आउटस्टैंडिंग। रौफ और दहानी को भी आप शुक्रिया अदा करेंगे क्योंकि अगर उनके रन ना होते तो शायद ये मैच इतना नहीं बनता। डेफिनेटली जो टेल ने थोड़ा सा स्टेप अप किया और थोड़ा सा रन से चिप इन किए तो उससे काफ़ी हेल्प मिली, और मेरे ख्याल से जिस तरह उन्होंने बैटिंग में भी किया और बॉलिंग में भी आउटस्टैंडिंग रहा, लेकिन हम फिनिश कर नहीं पाए। वो एक ओवर जो था लेफ्ट आर्म स्पिनर का, वो किस तरह से आप सोच रहे थे उसके बारे में? सोच यही रहे थे कि हम थोड़ा सा डीप लेके जा रहे थे गेम को, और हम यही चाह रहे थे कि लास्ट में 25 या 15 भी मिल जाते तो गेम चेंज हो सकती थी, लेकिन मेरे ख्याल से जिस तरह उसने बॉलिंग किया, लेकिन वो हार्दिक फिनिश अच्छा कर गया। और अच्छा डेब्यू हुआ, नसीम शाह बहुत स्पिरिट है इनमें। डेफिनेटली यंग बॉलर, और बिल्कुल शहीन की काफ़ी कमी महसूस हुई, लेकिन उसने आके जिस तरह बॉलिंग की और जिस तरह उसने अपना एग्रेशन दिखाया वो आउटस्टैंडिंग। ऑल द बेस्ट अगले गेम के लिए, हार्ड लक टुनाइट। So that was Babar Azam, the captain of Pakistan. Next up, I'm going to invite Mr. Nishan Pitti to present the best catch of the match winner, check of USD 3,000, and the award goes to Dinesh Karthik to dismiss Iftikhar Ahmed. Dinesh Karthik with the catch of the match gets a check of USD 3,000, and just to rejig your memory, this is the catch. Dinesh, if you're watching, this is it. Good high catch to dismiss Iftikhar Ahmed. Very good catch, a very safe catch, and that was the catch of the match. Next up, I'm going to invite the winning captain Rohit Sharma to sign the match ball for Mr. Yuvraj Narayan. Rohit Sharma will sign the match ball for Mr. Yuvraj Narayan. What a cracker of a game. At the halfway stage, everyone felt maybe it's another one-sided encounter, but it wasn't to be. No, of course. Halfway through the stage, we knew, of course, belief is always there in this group. No matter what the situation we are in, we're going to try and pull it off. That is the kind of belief, we want to have it in the group. And yes, when you have that kind of belief, these things will happen quite often, where you're not in the game and suddenly you can pull off a game like that. Because we believe in the quality of all the players that we have. We want to make sure that they've been given enough clarity about what they want to do out in the middle. And then, it was a perfect game for us. Although it was a bit challenging, but, I will take wins like this rather than a one-sided win. India's seam bowling as well came of age, all 10 wickets picked up by seamers. Yeah, look, they have been brilliant in the last few months that they've played. They understand their bowling a lot better, and it's all about giving them confidence and making them understand, what situation they are bowling in. And they just came out and deliver what they were expected to do. Yes, we were challenged at times, but I think overcoming those kind of challenges is what will make them, go forward and take that confidence.
you want to read into Hardik Pandya the kind of magic that is creating virtually every game. I mean, runs, high quality runs under pressure. Yeah, absolutely. Like, I mean, since the time he's made his comeback into the team, he's been brilliant. He had a great IPL as well. So obviously, it all matters. And when he was not part of the team, he went back. He figured out what he needs to do with his body. Got into his fitness regime. And now he's clicking 140 plus, which is a great sign for us. And his batting quality is obviously, we all know that. He's been brilliant with the bat, since he's come back into the team, and it's a good sign for us. Something that you notice that has changed in Hardik Pandya, the person, when you're with him in the dressing room, because a lot has changed in the way he gets those performances, in the calmness. Yeah, I mean, a lot calmer, to be honest, yes. But he's very confident of what he wants to execute on the field. Whether it's with the bat, whether it's with the ball. Quite confident. He understands what sort of field placement he needs to have when he's bowling. And he can bowl quick. We saw that today, those short ball. Obviously, a lot of hard work goes into it, and it was more about understanding his own game, and which I think he understands now. With the bat as well, he was quite calm in the middle, trying to guide the team through it. When you're in a situation like that, high pressure game, to get 10 runs in an over, there are times where you can panic as well. But he didn't show that at all. He was quite calm and just took us through. Well done. Congratulations on the win. Thank you very much. So that was Rohit Sharma, the Indian captain. Now my final duty is to invite Mr. Yuvraj Narayan, Group Deputy CEO and CFO of DP World. There's a match check of USD 5,000 and a trophy to the player of the match, which happens to be Hardik Pandya. All-round performance today has made that